A very warm welcome to the celebrations on the occasion of the World Water Day 2024. Ladies and gentlemen and our esteemed guests, we gather here today to mark the beginning of our special event with the auspicious ceremony of lighting the ceremonial lamp, symbolizing the light of knowledge that guides us. I would now like to request the Honorable Chief Guest, Professor Ramesh Chandji, Honorable Member Niti Aayog, Dr. R.C. Agarwal, DDG Education ICAR, Dr. P.K. Singh, Agriculture Commissioner, Government of India, Dr. Rajiv Sharma, Chairman IIPA, Delhi Regional Chapter, Dr. Mrs. Balwinder Shukla, Vice Chancellor, Amity University, Uttar Pradesh, Dr. R.J. Agarwal, Chairman, Dhanuka Group, Mr. M.K. Dhanuka, Vice Chairman and MD, Dhanuka Group, and Mr. Rahul Dhanuka, Joint MD, Dhanuka Group, to kindly do the honors of lighting the ceremonial lamp and formally inaugurating today's conference. May I request for a group photograph with the lamp, please? से निवेदन है कृपया लैंप के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ कर लें. And along with the ceremonial lamp, we also invoked Ma Saraswati, the goddess of learning and knowledge. And let's put our hands together for this auspicious beginning of today's conference. I would now request our dignitaries to kindly grace the stage with their august presence. And let's put our hands together to welcome all our dignitaries on the stage for the inaugural session. Joining us in a short while is Dr. Mrs. Balwinder Shukla, Vice Chancellor, Amity University, Uttar Pradesh. Namaskar and good morning. Our Honorable Chief Guest, Professor Ramesh Chandji, Honorable Member Niti Aayog, Government of India, our eminent dignitaries on the days, our special invitees, senior officials, distinguished participants, respected members of the press and media, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the inaugural session of the conference on the occasion of the World Water Day 2024, which is being organized by Dhanuka Agritech Limited. World Water Day 2024 is a momentous occasion when we come together to recognize the critical role of water in shaping peace, prosperity, and sustainability. Today we gather under the theme Water for Peace and Prosperity, which underscores water's pivotal role in fostering cooperation, stability, and conflict prevention. On World Water Day 2024, Dhanuka Group has taken a significant initiative with the aim of focusing on the importance of fresh water and its sustainable management. This is an important step that raises awareness for all of us about water preservation and safety. And today, ladies and gentlemen, on this momentous occasion, we are honored to have with us Professor Ramesh Chandji, Honorable Member Niti Aayog, and other eminent dignitaries. I would now request Dr. R.J. Agarwal, Chairman Dhanuka Group,
to kindly welcome and honor our Honorable Chief Guest with a floral bouquet. We welcome Professor Ramesh Chandji, Honorable Member Niti Ayog, with a floral bouquet. I would request you, sir, to also welcome Dr. R.C. Agarwal, DDG Education, ICAR. A very warm welcome to you, sir. May I request you, sir, to do the honors of welcoming Dr. P.K. Singh, Agriculture Commissioner, Government of India. We also welcome Dr. Rajbir Sharma, Chairman IIPA Delhi Regional Chapter. Thank you very much indeed, sir, for doing the honors. Ladies and gentlemen, Dhanuka Agritech Limited is one of India's leading agrochemical companies. It is listed in the Forbes magazine in the category of 200 best under $1 billion companies in Asia Pacific. The company specializes in producing and selling various agrochemicals for the Indian farmers, including fungicides, insecticides, plant growth regulators and herbicides, and Dhanuka's R&D division collaborates with leading agrochemical companies from the US, Japan, Europe, bringing the latest technology to Indian farmlands. And ladies and gentlemen, Dr. R.G. Agarwal, the Group Chairman of Dhanuka Agritech Limited, is a visionary leader with over 25 years of experience in the agri-inputs industry. He spearheads the Dhanuka Group's prominence in agritech and farmer society sector, emphasizing innovation and sustainability. Dr. Agarwal champions agriculture extension programs and research through initiatives. The Dart Center, his contribution have earned him the prestigious accolades including an honorary doctorate from the MIT University, National Safety Award thrice, Forbes Award for being strong among the 200 best under $1 billion companies in Asia Pacific, and Lifetime Achievement Award from CHAI, Chai and FICCI. And ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. R.G. Agarwal to kindly begin the proceedings with his welcome address. सबसे पहले मेरा प्रणाम आप सबके नाम। आज यह हम विश्व जल दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे कुछ किसान भाई हैं, तो मैं जहाँ भी बोलता हूँ सबसे पहले किसानों का स्वागत करता हूँ। और ये परंपरा हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देके जवानों का और किसानों का सम्मान बनाया। तो आगे भी ऐसे लोग हैं। एक जवान है जो बॉर्डर पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम यहाँ शांति से बैठे हैं, और किसान हमारा पेट भर रहा है तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर ये दोनों ना हो तो जिंदगी में कोई सुख शांति ना हो। तो मंच पे आज हमारे विशेष मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद जी, मेंबर नीति आयोग, जिन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। उनके साथ डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, डीडीजी एजुकेशन, हमारे डॉक्टर पी.के. सिंह जी, कमिश्नर एग्रीकल्चर, और उधर हमारे राजवीर जी IIPA के चेयरमैन दिल्ली चैप्टर के, पधारे हुए सभी वैज्ञानिकगण, स्टूडेंट्स, माय कलीग्स। मैं सबका इंडिविजुअल नाम तो नहीं ले रहा, बहुत से वैज्ञानिक बैठे हैं हमारे बीच में, लेकिन डॉक्टर माई साहब स्पेशली नागपुर से पधारे हैं, तो उनको मैं, और डॉक्टर साईं दास जो आज मेज के एक्सपर्ट हैं, जो मेज के अंदर एक नई क्रांति में काम कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का
हार्दिक स्वागत करता हूं। जल के ऊपर धानुका ने 2005 में खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में नारा दिया था और तब से हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते आ रहे हैं। इस साल जो यूएनओ ने थीम दी है वाटर फॉर पीस, आज हम देख रहे हैं कि विश्व में चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जिससे शांति हो सकती है। हमारे शरीर में भी गर्मी हो तो पानी मिल जाए तो शांति हो जाती है। तो आज विश्व में शांति के लिए आज कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पेट्रोल के लिए ना होकर पानी के लिए होगा। पानी की हिस्ट्री में हम जाएं तो 400-500 साल पहले भी उस समय के जो कवि हुए हैं, उस समय के कवि रहीम ने लिखा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे माटी मानस शून। आप सब इसका मतलब समझते हैं। अगर हम अपने पुराने वेदों की तरफ जाएं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, तो यजुर्वेद में पानी की महत्ता को बताते हुए लिखा है, ओम सन्नो देवी रविश्रेय आयो भवन्तु सन्या रविस्त्रतु। मतलब संस्कृत में आपको जल कहा गया है और जल से ही मानव, वनस्पति, पशु पक्षी सारा जीवन जल के ऊपर है। तो हम सभी वरुण, आज कोई भी हमारे यहाँ पूजा होती है तो सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं, जो वरुण देवता जल की हम पूजा करते हैं। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि जल देवता हमारे ऊपर, सबके ऊपर कृपा करें। और इसी कृपा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो लिखा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः अयज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यत् कर्म समुद्भवः। मतलब भगवान ने गीता में अपने मुख से कहा है जल के बारे में कि भाई हम सब प्राणी जल के ऊपर निर्भर हैं और मतलब अन्न के ऊपर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ तब होता है जब लोग अच्छे कर्म करें। इसी तरह हम अगर वेदों में देखें तो ऋग्वेद में लिखा है, ओम विश्वानि देव सवितुर्दानी परासुख यद भद्र तन्ने आसु है। मतलब हमारे वेदों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी पानी की महिमा को बताया गया है और ऋग्वेद में सूर्य से पानी का संबंध बताया गया है कि सूर्य समुद्र से पानी सोखता है और वो फिर वर्षा के रूप में आता है। तो यहाँ सूर्य देव को भी पानी से संबंध बताया गया है। आज मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे। पानी का कृषि से बहुत ही गहरा संबंध है। क्या कृषि पानी के ऊपर हो सकती है, पानी के बिना हो सकती है? हमारे बीच हम सब लोग जानते हैं कि पानी के बिना कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। आज हम सब जानते हैं कि इंसान के लिए, इकोसिस्टम के लिए, आज हमारे प्लेनेट के लिए, क्लाइमेट के लिए, और आज हमारी पृथ्वी का 71% भाग पानी से कवर्ड है, लेकिन इसमें से 97% जो पानी है वो ऐसा है कि ग्लेशियर्स और दूसरे रूप में है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ 3% ही फ्रेश जल है जिसका हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अलग अलग डेटा कहता है 69% वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, 19% इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं और 12% पानी को हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाटर की हम दिखा रहे हैं कि आज क्या है और आने वाले समय में क्या होने जा रही है।
आज जो हमारा नदियों का एक नेटवर्क था, आज बहुत सी नदियां विलुप्त हो गई हैं और आज इरिगेशन के लिए 50% से ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 दिन पहले ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पंजाब के इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ने लिखा है कि आज पंजाब का जो वीट पैडी रोटेशन है वो वायबल नहीं है। आज वैज्ञानिक 10 साल से कह रहे हैं कि भैया पानी नीचे जा रहा है, आप वीट और पैडी के रोटेशन को चेंज करके, हमारे डॉक्टर साईं दास जी बैठे, उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने हमें नया कॉन्सेप्ट 3M का दिया कि भाई अगर गेहूं चावल से निकलकर 3M पे काम करें तो किसान का खर्चा भी कम होगा, आमदनी ज्यादा होगी। ये भाई वर्षा ऋतु में मक्का लगाएं, मक्का के बाद मस्टर्ड और मस्टर्ड के बाद मूंग, मतलब ये 3 शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जिनमें खर्चा ज्यादा है और गेहूं और धान से आमदनी ज्यादा है। सब्जेक्ट टू की सरकार जैसे गेहूं और चावल खरीदती है तो वैसे ही सरकार को इन 3 प्रोडक्ट्स की खरीदने की गारंटी देनी चाहिए और पीछे भी सरकार ने गारंटी दी भी है MSP पे खरीदने की। आज हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ समय से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश पूरे 4 महीने होती थी, कभी ऐसी बारिश आती है 2 दिन में कि सारे शहर फ्लड हो जाते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम सब जान रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं कि 2030 तक हमारी पॉपुलेशन कहाँ पहुँच जाएगी और जो वाटर टेबल गिर रही है उससे भी हम सब परिचित हैं। और हमारा वाटर पोल्यूशन सबसे बड़ा आज जो हमारा दुश्मन है, ये जो वाटर शहरों का सीवेज नदी में जाके गिर रहा है। मुझे बचपन में याद है जब मैं छोटा था, चांदनी चौक में रहता था, तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो जमुना जी नहाने जाया करती थी, तो मैं भी उनके साथ जमुना जी नहाने जाया करता था और इतना स्वच्छ पानी होता था। लेकिन आज तो वहाँ जाके देखो तो स्मेल, गंध आती है। नेक्स्ट, धानुका ने, अब बातें करने से तो नहीं होगा कि हम विश्व जल दिवस मनाते रहें लेकिन करें कुछ नहीं। भाई सबको मिलकर अगर हम पानी के लिए कुछ करेंगे तभी भविष्य में हमारे लिए पानी बचेगा। तो धानुका ने अब तक ये 8 चेक डैम बनाए हैं और जहां जहां ये चेक डैम बनाए हैं धानुका ने, अलवर जिले में और जयपुर जिले में, जहां जहां ये चेक डैम बने हैं वहां पानी रुकने से उन गांवों के लोगों की जिंदगी बदल गई। इस संडे को भी DD न्यूज पे 6 बजे एक रिपोर्ट आ रही थी गुजरात की, जिसमें उन्होंने गिर वाटर सोसाइटी क्रिएट किए हैं और उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े मतलब चेक डैम बना के आपस में गांव वालों ने मिलकर पानी को रोका है। पानी हमारे देश में बारिश 1000 मिलीमीटर से ज्यादा, लेकिन हम उसको रोकते नहीं हैं, वो बर्बाद होकर नदियों से फिर हम समुद्र में भेज देते हैं। फिर इसके अलावा हमने वाटर के बारे में बहुत से अवेयरनेस कैंपेन, लिटरेचर, 200 स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन, बच्चों की रैली और उनको फिर अवार्ड, ये सब कुछ भी हम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इधर स्कूल में बच्चों की रैली निकल रही है वाटर को लेके। नीचे आप देख रहे हैं एक बहुत अच्छा आपको तालाब नजर आएगा, या आप गिरिराज जी की परिक्रमा करें या आप अपने गूगल पे भी शाम ढाक टाइप करेंगे तो इस जगह आप सीधे पहुंच सकते हैं। तो धानुका ने बातें नहीं करी, प्रैक्टिकल में भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं और बराबर हम करते रहेंगे हर साल। नेक्स्ट, श्याम ढाक तीरथ का इन्होंने लिखा है पेंटिंग कंपटीशन, जो मैं पहले पहुंच चुका हूं। कम्युनिटी वाटर सेंटर हमने बनाए हैं, तालाब बनाए हैं और गांव वालों को हम मिलकर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई खाली बैठे समय में आप लोग अपने गांव में, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने खेत में तालाब खोद सकते हैं, गांव में मिलकर तालाब खोद सकते हैं। जो पानी जाके
आज बाढ़ का कारण पड़ता है या सूखे का कारण पड़ता है, ये दोनों कारण हम रोक सकते हैं। अब देखिए, आज आप पिक्चर में देख रहे हैं लेजेंडरी स्टार अमिताभ बच्चन। उनको हमने 5 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर पानी, कोई पानी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी स्टार को? धानुका ने लेजेंडरी स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर 5 साल तक विश्व जल दिवस के ऊपर कैंपेन चलाया और हमारी पंच लाइन थी, हम पानी बना तो नहीं सकते पर बचा जरूर सकते हैं। ये हमारा कैंपेन था। नेक्स्ट, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, मैं इसके बारे में नहीं जाता, लेकिन माइक्रो इरिगेशन पे जो सब्सिडी है वो बहुत ही मार्वलस है। 60 से 80% तक की सब्सिडी है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह फायदा बड़े किसानों को मिल जाता है, छोटे किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो सरकार की बड़ी बड़ी स्कीमों का फायदा नहीं ले पाते हैं। सरकार की जल शक्ति अभियान, ऑल इंडिया मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जल के ऊपर चर्चा, जल जीवन मिशन, और जो अभी प्रधानमंत्री ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू किया है, ये बहुत ही शानदार काम है सरकार की तरफ से। हिस्ट्री में हम देखें तो ये पढ़ा जाता है कि राजा बहुत अच्छा था कि उसने अपने राज्य में कितने तालाब बनवाए, कितने कुएं खुदवाए। नेक्स्ट, अब ये फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए। वैसे तो हम सब जानते हैं, आज घरों में भी हम पानी बर्बाद करते हैं, तो हम घरों में भी पानी बचा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पानी खेती में यूज होता है, तो खेती में पानी का जो हमारा पुराना पैटर्न है फ्लड इरिगेशन का, उसको छोड़ के हमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ आना पड़ेगा। इतने बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को ठीक कर सकते हैं। और कोऑपरेशन, मैं कल मसूरी में था, वहां पर एनसीयूआई और कोऑपरेटिव्स का, नेफेड के लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो मुझे भी जो अपने मतलब दिलीप भाई सिंघानी साहब हैं उनके साथ जाने का मौका मिला। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम लबासा में जाने का मुझे मौका मिला और देख के बड़ा अच्छा लगा कि कितने पुराने ज़माने की, अंग्रेज़ों के ज़माने की वो प्रॉपर्टी किस तरीके से आज भी मेंटेन की गई है। तो मैं आज आखिर में आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा, यूएनओ किसी भी सबक को सोचती है कि ये भविष्य में इससे समस्या हो सकती है, तो उसका एक दिवस नियत करते हैं और पूरे विश्व में वो दिवस मनाया जाता है। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, तो हम खाली यहाँ जल दिवस मना के भूल ना जाएं। हम सब लोग अपने अपने, चाहे आस पड़ोस में हम लोगों को जागृत करें, किसानों को जागृत करें, सरकार से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ लाएंगे, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। आज बेंगलोर के बारे में हम देख रहे हैं, केप टाउन के बारे में देख रहे हैं, विश्व के बहुत से देशों में, और हमारे अभी लाटू ट्रेन से पानी गया। आज बहुत सी जगह पीने का पानी नहीं है, अभी तो गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है। अगर गर्मी की शुरुआत होगी, और इस साल फोरकास्ट है कि अभी टेम्परेचर जो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पानी की महत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। तो हम सब लोग आप से निवेदन करते हैं कि हम सभी पानी को बचाने के ऊपर काम करेंगे। आप सब यहाँ आए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद आपके स्वागत भाषण एवं अपने विचार साझा करने के लिए। Ladies and gentlemen, the Indian Institute of Public Administration, IIPA, has been actively participating in events related to the World Water Day. On the occasion of the World Water Day last year, they also organized a 5-day activity-based seminar. And I now have the proud privilege in inviting Dr. Rajbir Sharma, Chairman IIPA Delhi Regional Chapter, for his address. Let's put our hands together to welcome sir.
परम आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद जी, the spirit behind the programs like the one which we are a witness today, Shri Dr. R.G. Agrawal ji, Professor R.C. Agrawal ji, और इस कॉन्क्लेव में आए हुए सभी डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स, वर्ल्ड वाटर डे is not merely and should not merely be a formality, as Dr. Agrawal was saying a few minutes ago. ये हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, और इसलिए अगर हमको इस सृष्टि को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा। डॉक्टर अग्रवाल जी ने अभी ये कहा कि we may not create water, but we can save water. But let me say, saving water is also a generation of water. There are so many challenges that we are facing today. Food security, livelihood security, intergovernmental conflicts, and in our own country also, we are the witness to several disputes, river water disputes between the states, which can be taken as the examples of conflicts. There are conflicts between communities, countries, and at the same time, we can say that water is also a source of peace. We can use it as a tool of prevention of conflict, and we can also use water as the great stabilizer, social stabilizer, economic stabilizer, political stabilizer. It provides stabilities to the society, to politics, and ultimately the world. तो जिस जल की इतनी महत्ता है, जो जल इतना महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स जिनका जिक्र डॉक्टर अग्रवाल जी ने किया है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है कि हर घर जल जब तक पहुंचेगा नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कंजर्वेशन नहीं होगा, क्वालिटी वाटर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा, तो वही होगा कि जो यमुना हमको वाकई एक माँ का आशीर्वाद थी, वो आज एक, अगर मुझे कहने की इजाजत हो तो एक गंदे नाले में बदल गई है, जिसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है दिल्ली की, जिसके लिए हम सिटीजन्स भी जिम्मेदार हैं. Why? Because like we need environmental citizenship, we also need water citizenship, in which each citizen must play a responsible, accountable role in using water judiciously
and also contributing to the increase of water supply. हमारे यहाँ दिल्ली में भी, और अगर आप दिल्ली से बाहर गांवों में जाएं, there are so many tanks, so many water bodies जिनका एनक्रोचमेंट करके उनको बिल्कुल विलुप्त कर दिया है। गांवों में हम इस तालाब को कई नामों से पुकारते थे, कोई पोखर कहता था, कोई तालाब कहता था, लेकिन वो वास्तव में हमारे जनजीवन का और हमारे सर्वाइवल का एक हिस्सा था। हमारी पशु शक्ति भी, पशुधन भी और हमारे मानव भी उस सोर्स को, रिसोर्स को यूज करके एक अच्छा जीवन, स्वच्छ जीवन, एक स्वच्छ वातावरण में रहने वाला जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए ये जरूरी है कि आज हम इस पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और इसके लिए मैं धानुका ग्रुप के चेयरमैन और धानुका ग्रुप में काम करने वाले सभी पदाधिकारी एवं व्यक्ति जो इसमें लगे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं। डॉक्टर अग्रवाल हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं और रिमाइंड कराते हैं हम सब लोगों को, डोंट सिट आइडल एट होम, डू समथिंग। Merely talking will not do, he is right. And therefore, such like events which he organizes speaks volumes about his commitment to the society as a whole and to nature as well. क्योंकि ये केवल मनुष्य को ही जीवन नहीं देता है वाटर, ये नेचर को भी मेंटेन करता है, नेचर को भी प्रिजर्व करता है। बायोडाइवर्सिटी में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, उसको मेंटेन करने में, उसको प्रिजर्व करने में। तो नेचर को भी जीवन देने वाला वाटर है। मैं 2-3 एग्जाम्पल देकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और वो ये कि नाउ द वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन rather than conflict. Therefore, conflict resolution through water cooperation is now the emerging theme of the world dialogue. चाहे वो सावा रिवर एग्रीमेंट का सवाल हो, आप जानते हैं कि हमारा जो फ्रेश वाटर फ्लो है वो बहुत सारे कंट्रीज उसको शेयर करते हैं। भारत भी करता है, चीन भी करता है, नेपाल भी करता है, और बहुत सारे देश। हमारी जो नदियां हैं वो अलग जब रूट लेती हैं तो बहुत सारे देशों से होकर के वो रूट गुजरता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम वाटर का उपयोग शांति के लिए करें या युद्ध के लिए करें। कई बार बहुत सारे देश ऐसे हैं which use this flow of water through rivers as a tool of power, as a tool of domination, as a technique, as a strategy of war. Therefore, Dr. Agrawal was right that there is a possibility of having the third world war maybe on water or for water. तो इसलिए जो इंटर गवर्नमेंटल बाउंड्रीज हैं, ट्रांस बाउंड्रीज हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जिनसे वाटर फ्लो करता है, आई थिंक देयर इज ए नीड टू conclude some kind of
बाउंड्री वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स, और वो हुआ भी है। लगभग 24 देश है। पीस डिस्टर्ब होगी, पीस डिस्ट्रप्शन होगी अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो। और फूड सिक्योरिटी को स्थापित मुझे लगता है कि जरूरी है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर यूज हम पूरे ईमानदारी ठीक ठाक तरीके से जुडिशियसली बुद्धिमत्ता के साथ करें। एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी इंट्रोस्पेक्शन के लिए करना चाहिए। तो जज साहब ने उससे पूछा कि आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, उनका बड़ा अच्छा है, तो मैं उसको सप्लीमेंट करूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि 18% आबादी है हमारे यहाँ, लेकिन केवल 4% जो है हमारे पास वाटर सोर्सेज हैं। 18% ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ हमारे यहाँ 15% लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भी है, और वो भी जो पानी है उससे 4 गुना है। इसके साथ ही जो हमें जैसे चिंतन कैसे करना चाहिए इस विषय पे, वो ये है कि हमारे पास जो भूमि है, जो अरेबल लैंड है, वो तो 4% भी नहीं है, वो केवल 2.8% है। महसूस करते पानी की कमी क्या महसूस करते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शनेटली जो जमीन है उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें पानी की इतनी चिंता क्यों है, हमें लैंड की इतनी चिंता क्यों नहीं है। एक इस पे भी एक क्विंटल फूड यदि हम आज से 10 साल पहले एक्स अमाउंट ऑफ वाटर से करते थे, तो आज वो एक्स अमाउंट से कहीं ज़्यादा सेम क्वांटिटी ऑफ फूड यूज करने के लिए कर रहे हैं। उसके 4-5 कारण हैं। पहला उसका कारण है कि हमारे फूड की कंपोजिशन और हमारी प्रोडक्शन की कंपोजिशन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की ओर शिफ्ट हो रही है। लेस वाटर इंटेंसिव से जो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनकी ओर जो है उसका एक ट्रेंड चला हुआ है। आप इंडिया में देखिए, एरिया अंडर राइस इंक्रीज हो रहा है बहुत तेजी से, बहुत राज्यों में इंक्रीज हो रहा है। तेलंगाना में देखिए कितना तेजी से एरिया अंडर राइस इंक्रीज हुआ है। दूसरा उसका कारण है कि हमारी जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो वाटर इंटेंसिव होती जा रही है। तीसरा ये है कि हमारा नेट सोन एरिया तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन ग्रॉस क्रॉप एरिया बढ़ रहा है। क्रॉप इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है और इंक्रीज होने से नहीं बढ़ रही, रबी का इंक्रीज होने से बढ़ रही है। और रबी में जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो रेनफॉल से ग्रो नहीं होती, वो मोस्टली रेन नहीं होती, तो आपको उसे वाटर देना होता है, तो एक और उस पे है। और चौथा जो एग्रीकल्चर में तेजी से पानी का यूज बढ़ रहा है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल किया, और ये डिमांड है कि आज का कंज्यूमर ये सोचता है मेरे को हर चीज साल में मैं जब मर्जी उसे खाना चाहूँ मुझे मिलनी चाहिए और से। लेकिन अब हम चाहेंगे कि मुझे तो मटर सारा साल खाने को चाहिए, मुझे हर क्रॉप सारा साल खाने के लिए चाहिए। तो उससे जो रुझान डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर में, ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन, ऑफ सीजन क्रॉप प्रोडक्शन, वो एक एडेड डिमेंशन है कि यदि आप किसी चीज को मेन सीजन से हट के ऑफ सीजन में पैदा करोगे तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट और भी जो है ज़्यादा उसमें हो जाती है। तो इन ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर जो मेन यूज़र है वाटर का, वहाँ वाटर यूज़ इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें अब सोचने का विषय ये है कि ये जो 4-5 फैक्टर मैंने कोई शेप ऐसी दे सकते हैं कि उनका जो वाटर पे एक प्रेशर पड़ता है वो इतना ज़्यादा ना हो। दूसरा सप्लाई, लेकिन पानी को बचा सकते हैं। और दूसरा एक ये भी है कि वाटर को हम बना नहीं सकते। लिखा है शास्त्रों में कि पानी जब सृष्टि बनी थी जितना था उतना ही आज है, ना एक बूंद कम हुई है ना एक बूंद ज़्यादा हुई है। उसका केवल 25-30% जो है वो रेस्ट ऑफ दी मंथ्स में आती है।
यदि पूरी रेन हर महीने बराबर से आती हो तो शायद हमें इरिगेशन के कहीं पे बहुत ज़्यादा बार करेक्टरिस्टिक्स है हमारे इसका वाटर जो 4000 क्यूबिक किलोमीटर टोटल प्रेसिपिटेशन हमारा होता है, उसका एक ये करेक्टरिस्टिक्स है। तो हम इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स से डील करने के लिए हमें जरूरत एप्रोप्रिएटली एफिशिएंटली ना यूज करें तो रिसोर्स भी वेस्ट होते हैं और वाटर का मैनेजमेंट भी नहीं होता। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, थोड़ी दिन पहले सोर्सेज बिल्कुल नहीं बढ़ा, ये बहुत गंभीर स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं कि हजारों करोड़। इसी वजह से जब ये नई सरकार आई तो पूरे पब्लिक इरिगेशन को एक नया रूप देकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से कि हम एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को कैसे चेंज करें, आरआर रिहेबिलिटेशन, जो मार्च 18 के बाद में एरिया अंडर इरिगेशन इन द कंट्री, मीडियम एंड मेजर इरिगेशन और मिला के हर वर्ष 1% इंक्रीज हुआ और वो 47% से बढ़कर अब 55% पे 55% पे पहुंच गया है। जहां इतना पैसा लगता हो और उसका 20 साल तक कोई इंक्रीज ही ना हो, उसने भी। और अब हम जितने भी मेजर ले रहे हैं, चाहे वो 75,000 हमारे अमृत सरोवर हों, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है उसकी बात आई हो, तो ये सब जो है एक सप्लाई साइड ऑगमेंटेशन का सरकार ने बीड़ा उठाया है और वो उठाना भी हो रहा है। वो एक और समस्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर के राइज का एडवर्स इफेक्ट राइज पर स्टेट गवर्नमेंट की नीतियों में ये कहीं झलक नहीं मिलती कि इंडिया वाटर स्केर्स है या इंडिया में वाटर की शॉर्टेज है। रादर उसे देखकर तो ये लगता कि यहाँ तो अबंडेंट वाटर है, ऐसा वाटर का। प्रोफेसर रमेश चंद जी का आपके प्रेरणार्थी चिन्ह भेंट कर हार्दिक धन्यवाद सर रमेश चंद जी का कि आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और हम सबका मार्गदर्शन किया। Ladies and gentlemen, we are sparing his valuable time and for his he actively contributes to the global dialogue on sustainable water management, emphasizing the critical importance of water for our planet's well-being and stability. To kindly share the initiatives MIT University has been taking towards raising awareness about water conservation and management. So let's put our hands together to welcome Dr. Mrs. Balwinder Shukla. No issue. Used to be done that from what time to what time the water will be given to which house till that canal enters into the forest, so that everybody can manage their agriculture, they can manage their other things, store the water, and everybody used to do it very honestly. Today there are no ponds. We are, in various cities and especially the Bangalore, which used to be sometimes the city of ponds, city of lakes. And slowly, because of this, the greed, I would say, not the need, the builders and all, उठते हैं तो ब्रश करने भी जाते हैं तो हमने क्या किया अपने यूनिवर्सिटी में? We did the three things apart from research, innovation and development, water management strategies, adopting, doing how the water can be, wastewater can be recycled, can be retreated, as well as how the seawater can be converted into the drinkable, potable water. And even today in my campus we are having the 1 week long training and workshop is for water management.
where 100 persons from the different universities are attending it. So the first and foremost is very important हर एक को दें कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे थ्राइविंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी विद 100%, वो कम्युनिटी में जाके इसकी अवेयरनेस करें, तो हम हर साल जो हमने करीबन 100 विलेजेज हमने अडॉप्ट कर रखे हैं, पार्टनरशिप कर रखी है ग्राम प्रधानों के साथ, जहाँ के बहुत सारे इश्यूज यहाँ मुद्दे होते हैं, चाहे न्यूट्री बहुत सारे वो होते हैं जिसमें कि हम इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एक वाटर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि हम अपने स्टूडेंट को एक पूरे सेमेस्टर के लिए कहते हैं कि आप जाइए और कम्युनिटी के साथ काम कर, जब देख कल्चर हाउ कैन वी चेंज द फॉर देयर हेल्थ and to eat those food which require the less water for cultivating. The millets are there which require the less water. The rice requires the lot of water. So how can we create that awareness in the farmers, how we create, in the community, the what kind of food we should eat, which is healthy, but at the same time, requires lesser water. So that also the awareness campaigns are needed, and we as a MIT, we have been promoting the many of the food items, the crops which require the lesser water, and that also is one of the part of our goal, that when we go to villages, we create that awareness, and every year we have the Gram Pradhans meet at the campus, and we try to understand what are their issues so that we make our annual calendar for agriculture. For this convention, I am sure that a lot of new learners, हम वापस जाके समाज में कुछ ऐसा करेंगे जो पानी पे फोकस हो, और पानी को ना कि सिर्फ कंजर्व करें, पर उसको कैसे बढ़ाएं, और उसको सबसे इम्पोर्टेंट है हम उसको कैसे मैनेज करें. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, the Government of India is committed to sustainable water management and promoting peace through effective water cooperation. Today we have the honor and privilege to have amongst us Dr. P.K. Singh, Agriculture Commissioner, Government of India. And may I now invite you, sir, to kindly present the government perspective to today's important topic. So let's put our hands together. में उपस्थित सभी सज्जन, आप सभी को एक बार प्रणाम. साथियों, आज जब अभी आए दिल्ली में और यहाँ आर.के. पुरम में घर में शिफ्ट किए, तो CPWD का जो प्लम्बर है वो आके कहा कि साहब, अगर मानसिक शांति चाहते हैं तो एक टंकी और लगवा लीजिए, क्योंकि पानी ऐसे केवल सुबह 6 बजे से आता है, तो फिर जाड़ा गर्मी बरसात सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा और प्रेशर से पानी उसी समय आता है. तो एक टंकी अगर और बन जाता है कि बहुत से डिजीजेस हैं, रस्ट है वीट में, और भी बीमारियां जो कि बढ़ने का चांस हो जाता है. 40 हेक्टेयर कर दें, 150 हेक्टेयर कर दें बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, तो उसके लिए फिर यही है कि पाइप्ड इरिगेशन जो अभी खुली खेतों तक पहुंचा सकते हैं, और थोड़ा सा जो लॉसेस हैं हमारे, जो पता चला कि वो खुली कैनाल है, गांव में सभी जानते हैं, उसी पे चूहे के बिल भी उसी पे बनते हैं, उसी पे और तमाम तरह के उससे बहता रहता है पानी, वो सारा जो नुकसान है उसको भी बचाया जा सकता है. अब इसके अलावा अगर आप देखें कि दूसरा है, अब जब सरफेस वाटर ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे शुद्ध पानी सरफेस वाटर है, उससे ना तो सैलिनिटी बढ़ने का कोई खतरा होता है, ना कोई ऐसी चीज नहीं आती है, जबकि ग्राउंड वाटर कई तरह का उसमें सॉल्ट्स होते हैं जो कि ऊपर आते रहते हैं. तो अगर सरफेस वाटर को बढ़ाना है तो हमें स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है. तो आप जैसे अभी बताया, बनाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है जितना फायदा कि हमें अपने गांव के जो ट्रेडिशनल स्टोरेज, जैसे बिहार में था चौड़ सिस्टम था, या कहीं पे छोटे पोखरे थे, तालाब थे, लेक थे, जो कुछ भी था, उन सबको डिजीज या ऐसे कुछ बढ़ने की संभावना कम होती है,
वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम का पूरा जो भी इरिगेशन रिलेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसके साथ कन्वर्स कर दिया जाए। वो अलग चले, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल डाइल्यूट होता जाता है पैसा, तो वैसा ना हो, जहां कहीं भी हो सकता है वहां पे हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्कीम इस साल से शुरू की जा रही है, एग्रो फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस का। अगले 5 साल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 50,000 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का मेगा स्कीम शुरू हो जाए। दोपहर के बाद वाले सेशन में हम देख रहे थे कि उनका लेक्चर भी यहाँ पे रखा गया है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल। वहाँ पे इन सारी चीज़ों को वो उन 50,000 जो विलेज होंगे वहाँ पे कार्बन क्रेडिट से लेकर के सभी चीज़ों को एक जगह कन्वर्स करके कैसे उसको क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर कोशिश की जाएगी। तो ऐसा कल ऐसे ही बातचीत में बात हो रही थी कि अगर हम लोग 1 करोड़ रुपए की भी बचत करते हैं एक गांव में, तो 50,000 करोड़ की बचत होती है। चाहे वो कार्बन क्रेडिट की हो, चाहे यहाँ कहीं भी जानवर चढ़ सकते हों और पानी की भी उनको व्यवस्था हो जाए। तो ये जो खेतों में जानवरों के चरने की समस्या है, शायद उसको हम लोग थोड़ा किसी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट आ गया है वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ, इसलिए आप सभी को एक बार इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बुलाने के लिए। किसी की भी इच्छा नहीं होगी कि हम पानी को वेस्ट करें, या हम किसी भी बच्चे की, किसी बड़े की, किसी की भी, क्योंकि ये अगर आप देखें एग्रीकल्चर में देखें तो ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। आप फोटोसिंथेसिस देखें, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को भी अगर हम इसको डिवाइड करें, आपको ब्लू वाटर मिलता है, आपको ग्रीन वाटर मिलता है, एक ग्रे वाटर का भी एक कंसेप्ट आया है। और इनमें अगर आप देखें ग्रीन वाटर वो है जो आपके सॉइल मॉइस्चर के रूप में जो उपलब्ध है, उसको हमें कंजर्व करना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आईसीआर ने बनाई हैं, जैसे आप मल्चिंग कर, एंड देन ग्रे वाटर इज जो वेस्ट वाटर हम लोग करते हैं, उसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो जब हम तीनों का हम जब एक किया है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे पास एक स्कीम जिसको मैं हेड करता हूँ अभी भी, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, और उसमें हम लोगों ने करीब 16 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए। एक सेंटर वाटर कंजर्वेशन के लिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए था, और एक पूरा गांव उन्होंने अडॉप्ट किया, पूरा गांव कन्वर्ट कर दिया उन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर में। और जब वहाँ 5 महिला किसानों से मैं मिला तो उनकी खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे कि ये सब कुछ इनको ज़िंदगी में मिल गया। वो महिला अपने मोबाइल पर देखकर ये इतनी खुश थी कि मुझे पता है कि पानी ऑन हो गया है, अब 80% मेरा पानी बच रहा है, क्रॉप को उतना ही पानी चाहिए जितना कि उसकी डिमांड है। सेंसर्स लगे हुए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बहुत सारे और यंत्र लगाए। तो ये इस तरह की इंटरवेंशंस की हमें एक बहुत बड़े लेवल पर ज़रूरत है। अगर हमें, क्योंकि जैसा सभी वक्ताओं ने बताया है, उसका सिर्फ 1% हमारा फ्रेश वाटर हमारे पास उपलब्ध है, तो इसको हम वेस्ट न करें। तो इसीलिए शायद मैं समझता हूँ कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने 93 में शुरू किया कि पानी की महत्व को हम लोग सब समझें और इसको हम आगे किस तरह से बढ़ाएं। इसमें 1-2 मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप ज़्यादा पानी को एक्सप्लॉइट करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो जिस तरह से जॉर्डन में हालत हुई, एक नेचर में पेपर भी पब्लिश हुआ कि लैंड विदाउट वाटर, उस तरह की सिचुएशन कहीं भी हो सकती है अगर हम इसको कंजर्व नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कितना कम पानी है, लेकिन फिर भी किस तरह से ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड दी ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट, लेकिन जीरो टिलेज यूज़ कर उसको क्रॉप स्टेबल रिटेंशन यूज़ करके, उसमें इम्प्रूव वेराइटी यूज़ करके, बहुत सारे इंटरवेंशन जो हम सब लोग किए। हम हर स्टूडेंट, अभी जो नया कोर्स रिवाइज कर रहे हैं, कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो एनिमल साइंस का हो, चाहे वेटनरी साइंस का हो, सभी को हम उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एजुकेट करें। इसके लिए क्योंकि समय कम है, मैं लास्ट पॉइंट एक बताना चाहूँगा कि हमें कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि पानी, ये जो खेती है हमारी, खेती को हम सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम न समझें, बल्कि खेती को हम
कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड मल्टीपल यूज सिस्टम समझें, इसको एग्रो इकोलॉजी समझकर और एग्रो इकोलॉजी से हम कनेक्ट करें, इकोलॉजी से कनेक्ट करें और बाकी जितने इको सिस्टम्स हैं उससे कनेक्ट करें, तो मैं समझता हूं कि हम लोग एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर जो सभी ने बताया कि किस तरह से हम जो हमारे पास माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम्स हैं। आपके प्रेरणात्मक विचार उपस्थित सभा के साथ धनुका जी को, आप वाइस चेयरमैन और एमडी हैं धनुका ग्रुप के, कि आप कृपया सभी हमारे सम्मानित अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आज हमारे बीच उपस्थित हुए सम्मानित करना चाहेंगे डॉक्टर पीके सिंह जी का, एग्रीकल्चर कमिश्नर, भारत सरकार। हार्दिक धन्यवाद सर। हार्दिक धन्यवाद सर। हार्दिक धन्यवाद मैम। निवेदन है श्री एन.के. धनुका जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन सत्र का समापन करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एम.के. धानुका, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, अपनी तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ सुनो सुनो
देखते हुए यूएन ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया है और यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम बचपन आज है, आज चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, देश में हमारी खेती हो, कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता। धानुका ने भविष्य को जरूरत देखते हुए सन 2005 में नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हमने सिर्फ नारा ही नहीं, डैम भी बनवाए, तालाब बनवाए और उसको एक सही मायनों में लोगों को प्रेरित किया कि जल बचाने के लिए वो भी आगे आए। उन गांवों के लोगों की जिंदगी बदल गई। Nurture their crops with unyielding pride. Amidst the lush green crops that sway and dance, stands a company that helps enhance the yield and quality of food produced on our land. Introducing Dhanuka Agritech Limited, established in the year 1980. Dhanuka Agritech Limited is part of the 56-year-old chemical synthesis plant in Dahej, Gujarat, where we plan to manufacture बीकानेर। सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे मिस्टर राहुल धनुका, जॉइंट एमडी धनुका ग्रुप से। निवेदन है श्री एम के धनुका जी से और कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर अरुण कुमार, वाइस चांसलर, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर उपस्थित होंगे। तो आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं, आमंत्रित करते हुए डॉक्टर सी.डी. मई जी को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन ASRB एग्री कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इससे पहले कि हम अपने विचार, अपने प्रस्तुतिकरण को 10 मिनट के अंदर ही समाप्त कर दें तो आपके बहुत ही हम कृतज्ञ होंगे। Ladies and gentlemen, we would request all our eminent speakers to kindly conclude their sessions in about 10 minutes, as we are running very tight on schedule and we have a timer running in front of you, sir, and we will also give you a warning at 9 minutes. Thank you. और थैंक यू मैडम, आपने 10 मिनट दिया, मैं तो 8 मिनट का सोच रहा था, सो 2 मिनट में आपके लिए बचाता हूं। पहले तो मैं अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो पेस्टिसाइड बेचते बेचते भी सोच रहे हैं कि वाटर का इम्पोर्टेंस कितना है। कई ऐसे लोग हैं कि जो अलग अलग बिजनेस में हैं, लेकिन उन्होंने एक बात सोची है कि एग्रीकल्चर का पूरा डेवलपमेंट होना है तो पेस्टिसाइड अलोन इज नॉट ए सोल्यूशन। तो उसके साथ जो है पूरी उसकी तकनीकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आरजे अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे कई सालों से, ये कार्यक्रम मैं कई बार अटेंड किया हूं, वाटर डे से हमें उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके लिए हर साल हमें वो उद्युक्त करते हैं, तो मैं उसीलिए इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। जब मैं when I come to this particular day, I think that I come from an area where we have only 250 millimeters of rainfall. तो मुझे लगता है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है उस एरिया में, because otherwise it is very difficult for us to get water throughout the year. और ये इम्पोर्टेंस हम इसलिए हमें सिखाया जाता है कि वाटर is tremendous precious for us in a dryland area. और जो एरिया विदर्भ का, जो particularly वेस्टर्न विदर्भ का एरिया है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हर साल आती है और हर ईयर में आती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, वो हम जो कोशिश करते हैं कि हम जो क्रॉप्स लगा रहे हैं, जो हम वहाँ खेती कर रहे हैं, उसमें भी पानी, पीने का पानी, दोनों का एक संतुलित सब
मिले, इसके लिए बहुत कोशिश हो रही है। आज रमेश कुमार जी ने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि वी ऑल वी थिंकिंग कि बड़े बड़े डैम बनने से कोई कोशिश होती है तो उससे पानी की सुविधा हो ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम just because of huge dams that we can really have water availability. On the contrary, अब 2018 से जो पीएम सिंचाई योजना का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके तहत हमारे उधर हम कई चीजों जो है वी आर डेवलपिंग दोज का जो इम्पोर्टेंस है, उन्होंने क्या किया है कि जितने हाईवेज अभी वहाँ ब्रिजेस बना रहे हैं, जैसे पर्टिकुलरली मराठवाड़ा जो एरिया में 400 मिलीमीटर से कम बारिश है, वहां जितने ब्रिजेस बन रहे हैं, वो ब्रिजेस को दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। उनको ब्रिजेस को ऐसे बनाया उन्होंने, क्योंकि उनका कहना है कि चलते वाटर, जो वाटर विच इज रनिंग शुड वॉक। पानी जो बहुत जोरों से भाग रहा है उसको दौड़ने से रोको, दौड़ा हुआ पानी जो रुका हुआ है उसको थोड़ी देर अंदर रुकने को बोलो, और रुका हुआ पानी अंदर जमीन में जाए। सो दैट इज हिज टेक्नोलॉजी वेयर ही इज यूजिंग पर्टिकुलरली द ब्रिजेस विच आर ऑलरेडी बीइंग कन्वर्टेड इन दोज एरियाज। आपको ये भी पता है कि हमें कि हमारे जैसे हमारे डॉक्टर सिंह साहब यहाँ है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के जितने क्रॉप्स है, आई थिंक मैक्सिमम ड्रिप इरिगेशन जो है वो उसी एरिया में होता है, महाराष्ट्र में, पार्टिकुलर गुजरात में, पार्ट ऑफ कर्नाटक में, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। तो ये जितने वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज है उसका फायदा सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई वहां कर रहे हैं, और स्मॉल प्रोजेक्ट जितने आ रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के, दे आर हेल्पिंग अस टू रियली रिवाइव वाटर। अब हमारा यही कहना है कि दिस टेक्नोलॉजीज शुड रियली परकोलेट डाउन टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। अब जैसे शुगर केन क्रॉप है, वी फील दैट द मोमेंट वी गेट मोर वाटर, फार्मर्स आर टर्निंग टू शुगर केन। So there was a time when one of our chief ministers very rightly said that no sugar cane will be grown on flood water. It will have to be on drip. Can we do that? I think this is where it will be very useful, because then once we use drip in sugar cane compulsorily by law, I think there will be a tremendous saving of water in that area for other crops to be used. Likewise, there are so many other crops where we are now converting. So you take, for example, citrus in Vidarbha area. Now, majority of them are getting converted into what we call it as drip irrigation. और drip irrigation के साथ उसको sensor भी लगा रहे हैं, because water requirement जो है, now it is being monitored whether the crop needs water or not. So there are several new technologies which are coming now, particularly in water, and that too in area where there is a continuous drought. And that's why we are able to produce all those crops. You know, for example, grapes, one of the, I think, leading states in the country, not only in the country, anywhere in the world, is our Maharashtra, where we are exporting grapes. Pomegranate, another very important crop. All dryland crops. And they are all now being converted into drips, no flood irrigation. And I think this is where I think we are able to do a lot of justice to the water available in that particular area. And we know that there are problems which are coming with the cropping systems. As I think Ramesh has said, that we are violating some of our the crop pattern by violating the water use. Like as I said, when we have sugar cane, immediately people will turn. If we have canal, immediately we will turn towards a crop which is water guzzling. So all those should be really avoided, and therefore education in this particular field is very important for us. We are always conducting series of programs in a year through our AgroVision Foundation, through by another organization, SABC, where we are teaching farmers, we are empowering farmers, we are educating farmers so that they have the importance of water for every crop. I am happy that I could come to this particular program and share some of my small views, particularly from the area where we know what is the significance of water, which we have to spread more intensively to the northern states, where there are lots of water available. And probably when all the speakers, when they talk about it, it is more towards what we are taking in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Bihar, and all those areas.
So, importance of water is already realized in some of those areas where there is no water at all. So I would say that that situation should not come to north, and therefore it is very important that you learn more from the lessons learned from the area where we are already doing our water conservation work. Thank you very much for giving me this opportunity to be amongst you. Thank you very much indeed, sir. And ladies and gentlemen, we have on the dais with us Dr. Arun Kumar, who is the Vice Chancellor, Swami Keshavananda, Rajasthan Agriculture University, Bikaner. And may I once again request Shri M.K. Dhanuka ji to do the honors of welcoming sir with a floral bouquet. फूल पुष्प भेंट कर स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी का। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद sir. And now, ladies and gentlemen, I would like to request Dr. P. Raghavendra Rao, IAS, Chairman Haryana State Pollution Control Board, to kindly address the August House. जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर पी राघवेंद्र राव जी का। सबका नमस्कार, eminent panelists and my dear friends. जो इंटरनेशनल वाटर डे है हम बात कर रहे हैं, वाटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी बात है। बट मैं सुन रहा था प्रोफेसर रमेश चंद जी का, वो कह रहे थे कि वाटर स्केर्सिटी से ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आई फुल्ली एग्री विथ हिम। बट थोड़ा और एक एंगल के बारे में थोड़ा मैं फोकस करना चाहता हूँ, वाटर क्वालिटी। डॉक्टर बाबूराम जी बैठे हैं यहाँ, उन्होंने ये छोटा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। आई डोंट नो वेदर वी कैन रन दिस प्रेजेंटेशन, वेदर इट विल वर्क। Can we have the next one? There is something missing. Yeah, okay. Anyway, धानुका जी एक मेरे को ये कह रहे थे कि थोड़ा हरियाणा के बारे में थोड़ा फोकस कीजिए कि हरियाणा में क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल वाटर के बारे में, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हरियाणा आप सभी जानते हैं बहुत ही स्मॉल स्टेट है, just about 3 crore population and all that. Yeah, next please. Now, yeah, so you see, if you see the map, on the right side of Haryana state we have the river Yamuna. On the northern side flowing towards the west is the Gagga. And Rajasthan side say small rivers hai, Sahibi and all that. But main river systems are 2 river systems, Yamuna and Gagga. Next please. The main problem in Haryana is that groundwater extraction is very, very high. It is beyond the whatever recharging capacity of the ground. So not a lot of blocks are now gone into the red zone. So there is a crisis of water. That's what I wanted to convey in this. Next. You see, Haryana में सबसे बड़ा problem है, as perhaps must be there in most of the states, is that contamination of water, both on the surface water and the groundwater. It is leading to all kinds of problems, including health issues. Next. Next. Now, you all know this slide, I think. I know most of you must be very familiar. It's a very old slide, 1992 perhaps, Baburam ji, I think, somewhere early 90s का है. CPCB ने कहा है कि वाटर क्वालिटी इन रिवर्स को कैसे क्लासिफाई करना चाहिए, A क्वालिटी से लेके E क्वालिटी तक. So if you see, A, of course, this is you can drink the water, of course, after ensuring that the infection goes, but of disinfection के बाद. But it's very difficult now. So at least B quality तक पहुंच गया तो where you can take a swim in you can take a bath with that water. But unfortunately, if you go to the next slide, we are somewhere in D. Of course, we were in E, we have come to D. But our aim is at least by next year end, at least we should reach B so that you can take safely a bath with that water or at least swim in that river, which perhaps as of today it's very difficult. It's not good advisable. Next. So ये slide में इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो total, क्योंकि 2 sources of main pollution है, sewerage से और industrial effluent से. When we talk of the sewerage system, कि हमारे पास जितने भी cities हैं जो वहाँ fortunately in most of the areas now sewerage system is coming in major towns,
But if you see the last point, I don't know how many of you are able to see, the sewerage generation is about 1600 and odd, and capacity is about 2000. So everybody may be saying that every drop of sewage is getting treated. No, that is not the case. Because कुछ cities में जो generation and treatment capacity में gaps हैं, plus another gap ये है कि even though capacity may be there, sewer lines are not there, so sewer is not reaching the STPs. That also there is a problem. Just to indicate that capacities are now being created. जो नीचे लिखा हुआ है कि additional about 300 and odd MLD will be, capacity will be created. So hopefully by about 2025 end or 2026, at least in terms of capacities, perhaps there should not be that much of a problem. Next. This is as far as the industrial effluents are concerned. We have a lot of industrial estates. So 23 industry CETPs hain, and they are treating about 231. Next. Now, the problem with this, I was just wanted to indicate कि जो हमारा जो effluents है, जो sewerage system है, if this is not good, what are the issues? Because already Gaggar and Yamuna have already been declared as highly polluted, so we have prepared action plans, and we are trying to work on that. Next, please. Of course, what can be done? So what are the steps we can take to ensure that the quality of the rivers, the quality of the drains, so it improves? So installation, new constructions, upgradation, these are all ongoing. Next. Similarly, जो rejuvenation of groundwater के लिए भी lot of steps are being taken, but still a lot of attention is required, particularly action plan. Next, please. These are standard things. I don't want to get into this. This is too theoretical. Next. Oh, यहाँ you see, this is an important slide. If you see the bottom one, the total, I don't know how many of you are able to see, the entire focus of the government now is how do we ensure that the treated water of STPs, at least I'm not talking about CETPs now, I'm talking about only of STPs. जो STPs का जो treated water है, at present is mostly flowing into the drains and going into the river. Of course, it may be diluting the polluted waters, but that is not a good thing. So our aim is, how do we ensure that every drop of treated water is utilized somewhere, at least for non-potable usages, whether it is irrigation or construction and so on and so forth. So at least a beginning has been made. Now we are about 60 and odd has been achieved, and our aim is, in fact, by next year, March, we want to go up to 431 lakh crore liters. Next, please. Now, our aim is also there that at least at that time 170 STPs were there, even though now it is about 183. So, जितने भी STPs का जो पानी है, जो treated water है, so उसको further treat करके we should use it for irrigation, construction and so on and so forth. To that extent, जो हमारा जो treatment gap है, जो fresh water sources का जो gap है, we are able to fulfill that. So this is our aim. By 2026, there's an ambitious plan. A lot of money is being pumped in, and a lot of attention is being there. A lot of review meetings are taking place. I'm sure slowly we should be able to achieve these objectives. Next. These are, of course, somehow, see, in a lot of rural areas, you can't have STPs everywhere. So some of the things, these are standard things. Next one, please. Next. Next. Okay, so this Jalopchar, there is one Japanese company which has established a unit in Palwal. This is for very small micro STP type, like we don't talk of MLDs, we talk of kiloliters per day. So I think it's maximum about 75. It's generally around 50 KLD. So the basic idea is wherever the water is getting polluted, treat it there and utilize it there itself. Decentralized system. This is just slowly becoming popular. Next. This is next. Now, why stringent standards? Of course, you have mentioned all these things. What is the need for this? That's next one, please. This is all theoretical. Now, this is very important. Now, you see, we have two types of systems, as I was mentioning. We have the STPs, treating the water, and we have also natural systems of treating the grey water, like 3-point system, 5-point system, oxidation ponds, which I was mentioning of. Now, unless we lay down standards, unless we ensure कि ये जो पानी है जो after treatment, what is the quality of that water, treated water, whether it is fit for being used for irrigation or construction and so on and so forth, non-potable usages,
Dr. Baburam ji and other technical experts, for maybe 5 months, 6 months, 7 months, they sat through this, discussed with so many people, organizations, including IARI, and then finally came up with some stringent standards. Now, this particular standard which we are talking of is for grey water. That means through natural systems, once the grey water is getting treated, what should be the standard which should be achieved so that you can use it safely for irrigation purposes and other things. So these 23 parameters have been laid down. Next. Now, this particular thing is talking about STPs. So in the mechanical system of treatment, once you treat the water, what are those standards that need to be achieved before you permit the water to be used for irrigation and other non-potable usages? This was done somewhere in September 2023. This includes, of course, parameters like organic, inorganic, next, bacterial contamination, sodium, heavy metals, and so on and so forth. So this is about 51, next please. So these are 51 parameters. So these are the parameters. Now we have given time to the organizations which are running the STPs like Public Health Engineering Department and so on and so forth, HSBP, HSIDC, and so many organizations are running STPs. So we told them that unless you achieve these stringent standards, we will not permit you to, even if you install a tertiary plant, we will not permit you to use it for irrigation and so on and so forth. Now, we are giving them 1 year's time to establish and modify and upgrade their technologies and equipment so that they are able to achieve these particular parameters. Once these parameters are achieved, we permit them. This is a small presentation. I thought I'll just, because time is also over. Thank you so much. All the best. Best wishes. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, I have the proud privilege in inviting for his kind address Dr. Arun Kumar, who's Vice Chancellor, Swami Keshav Nanda, Rajasthan Agriculture University, बीकानेर. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर अरुण कुमार जी का. आप सभी को नमस्कार. आज इस गैदरिंग में मुझे बुलाने के लिए डॉक्टर आरजी अग्रवाल चेयरमैन धानुका साहब का मैं धन्यवाद पे करता हूं. और इसमें हमारे साथ ऑनरेबल डायस ऑफ द डायस एंड ऑल डिग्निटरीज अवर पार्टिसिपेंट्स. आज हम कोई बहुत बड़ी बात कहने के लिए नहीं आए हैं. हम तो राजस्थान में हैं, पानी की सभी समस्याएं वहाँ पर हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी वहाँ के किसान और वैज्ञानिक समझते हैं. आज ये जो बात हम लोग मना रहे हैं, वर्ल्ड वाटर डे, उसके लिए कुछ पॉलिसी बातें हम आपसे करना चाहते हैं. मैं समझता हूँ आज की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई न कोई कर रहा होगा. तो आज जो हम लोग बातें करते हैं, अगर ये किसी तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, पॉलिसी डिसीजन बनते हैं, तो हम सबको बड़ी खुशी होगी. जैसे आपने स्वच्छता अभियान में देखा कि जब हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को एजुकेशन दी तो हमारे बच्चों ने मुझसे कहा कि नहीं, अगर हम गाड़ी में भी हैं तो उनको सामान को फेंकने नहीं दिया. अगर हम वाटर पर इम्पोर्टेंस और उसके प्रोटेक्शन के बारे में प्राइमरी एजुकेशन में हम अपने इसको दें, अपने सिलेबस बना के एक सरल शब्दों में रीजनल लैंग्वेज में, तो मैं समझता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज और इजी वर्ड्स में अगर हमारे प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को दिया जाएगा ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड वाटर प्रोटेक्शन, तो इट विल वेरी इफेक्टिव मैनर. और हमारी जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है, जब वो आएगी तो अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, हम सब के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा. और उसी तरह से हायर एजुकेशन में अगर हमें इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट पे इंस्टीट्यूट हमारे स्टेट लेवल पर खोले जाते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम चलाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस साइंस को, जहाँ पर रिमोट सेंसिंग, हमारे किस तरह से इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम शेड्यूलिंग की जाए, क्रॉप की शेड्यूलिंग की इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, और उससे ज़्यादा ना दें, तो मेरे ख्याल से इट विल बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री. अब आपको बताऊं, बहुत सी अवेयरनेस और बहुत सी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जब हम टैक्स लगाते हैं. हम इनकम टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं,
अगर हम वाटर टैक्स या वाटर का जो पहले आपको याद होगा पानी की भी मीटर लगते थे, अगर इफेक्टिवली वो शहरों में हम जो पानी की बर्बादी करते हैं, अन्य प्रदेशों में मैंने देखे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बिहार में मैंने काम किया है करीब 11.5 वर्ष और राजस्थान में हूँ। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लेते हैं, तो वाटर बिल भी अगर बनाया जाए और वाटर टैक्स लिया जाए तो हम समझते हैं कि इसको पानी को अपने आप अवेयरनेस आ जाएगी शहर में, और सभी गार्जियन या बच्चे अपने घरों में पानी का सदुपयोग करेंगे। और जो फार्मर्स में हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से हैं, तो फार्मर्स में अवेयरनेस की उन्हें मालूम नहीं है कि किस क्रॉप की कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है। अनावश्यक रूप से फ्लडिंग, जबकि आप जानते हैं ड्रिप इरिगेशन में अगर हम ड्रिप से क्रॉप को, लेकिन सभी क्रॉप के लिए इफेक्टिव नहीं है, फ्रूट्स में अगर हम देते हैं तो या प्रोटेक्ट कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें कम से कम पानी में अधिक चीज़ें और समय से पहले तैयार होती हैं। और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो हमें अवेयरनेस की, किसानों के बीच में अवेयरनेस के लिए बात ज़रूर, अगर ये जो जल शक्ति विभाग है या ये जो इम्पोर्टेंट राज्य सरकारें हैं इनको बात जाती है, हमारे नीति आयोग के जो एग्रीकल्चर से संबंधित आए थे यहाँ पर हमारे अगर चंद्रा साहब, उनको तक बात पहुँचती है तो ये हम समझते हैं आज की मीटिंग कारगर होगी। और सबसे बड़ी बात है वाटर रिसाइकलिंग। हम सभी वाटर का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उसके बाद रिसाइकलिंग। मैं जिस कैंपस में रहता हूँ वहाँ पर फैक्ट्री एफ्लुएंट, सीवेज वाटर सब आते हैं, और करीब 45 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री एफ्लुएंट से आच्छादित है। अगर उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो हमारे प्राइवेट फैक्ट्री ओनर्स हैं और हमारा रीको है, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारी गवर्नमेंट है, हम सब मिल के जब तक उस समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम पानी को गंदा करते हैं अपने खुद के कुछ पैसों के लिए या अपने ये ज़रूरतें हमारी होती हैं, लेकिन उसकी रिसाइकलिंग करने के लिए जब तक हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जहाँ पर ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्री एफ्लुएंट के लिए या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमारे उन वाटर को रिसाइकलिंग कैसे करेंगे क्रॉप यूज़ के लिए, अगर हम कर पाते हैं तो हम समझते हैं हमारी इंडस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट और जन समुदाय जो अपने खुद के सीवेज के बनाते हैं सीवर लाइन, अगर हम लोग अपने जो बाथरूम के पानी को यूज़ कर सकें, रिसाइकलिंग अगर हम अपने एग्रीकल्चर के लिए ये कर सकें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी बातें हम समझते हैं, आप लोगों को मालूम है, उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो बातें हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन जब तक हम एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हमारे आर सी अग्रवाल साहब जो डीडीजी एजुकेशन एग्रीकल्चर में हैं, उन्होंने कहा कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ कोर्सेज फॉर्मुलेट किए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। लेकिन एग्रीकल्चर में इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट के कोर्सेज हमने खुद पढ़े हैं और ये चल रहे हैं। जब तक हम अपने प्राइमरी एजुकेशन में नहीं करेंगे और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट नहीं डेवलप करेंगे, तब तक उसमें रिसर्चेस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं उन पर सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे, तब तक इफेक्टिव वाटर प्रोटेक्शन, वाटर सेव हम नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से देखिए, इजराइल अपने यहाँ पर टेक्निक सीख के गए और हमसे बेहतर कर रहे हैं, और हम अपने यहाँ पर जानते हुए भी बहुत सी बातों को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक हम अपनी कमिंग जनरेशन को जागरूक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, राह दिखाएंगे नहीं, तब तक हम जो आज के अभीष्ट उद्देश्य हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत राम राम। आपने मेरी बातें सुनी, और लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम प्रोफेसर रमेश चंद्र साहब को आज जो नीति आयोग से आए थे, अगर वहाँ तक भी बात पहुँचती है और एग्रीकल्चर साइड से उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो हमारे डीडी साहब आए थे, अगर इसको आईसीआर तक बात पहुँचती है और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, सभी स्टेट में हमारे यहाँ पर वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो चुकी है, और हम तब भी पानी के
सदुपयोग कम, उसकी एक्सेस उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसे कैसे हम जुडिशली उपयोग करें, इसके लिए हम सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ जो वाटर टैक्सेस हैं, वाटर मीटर और वाटर बिल अगर हम सभी शहरवासियों को दिए जाएंगे तो हम समझते हैं बहुत सी अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। और अगले वक्ता जो कि हैं डॉक्टर BS तोमर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वेजिटेबल साइंसेज, IRI को आमंत्रित करना चाहेंगे उनके उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर BS तोमर जी का। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर यहाँ चर्चा करने के लिए या उस पर भविष्य की नीति क्या हो, जल उपयोग के बारे में, उसकी उपयोगिता बढ़ाने के बारे में आप सभी हम एकत्र हुए हैं। और सर्वप्रथम मैं धानुका के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर RG अग्रवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार के जो सारे सामाजिक और देश के विकास के जुड़े हुए पहलू हैं, समय समय पे आप अपने इनिशिएटिव के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और आप सभी को उन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अपने विचार बिंदु रखने का अवसर प्रदान करते हैं। सम्मानीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, आज का जो विषय है कि पानी जल, आज हम जो हैं विश्व जल दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। तो इस अवसर पे हमारी कई चिंताएं हैं और उस विषय में हमको जो आज की स्थिति को देखते हुए आज हम कहाँ पे हैं और आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, इस पे हमारा चिंतन होना जरूरी है। मैं बागवानी का विशेषज्ञ होने के नाते और विशेष करके मैं सब्जी किस्मों के विकास और बीज उत्पादन, उसके संवर्धन विकास में मेरा ज़्यादातर सहयोग रहा है। तो मैं अपने विचार बिंदुओं को इन्हीं दो पहलुओं पर रखना चाहता हूं कि हमारा भविष्य की क्या सोच होनी चाहिए और कि किस दिशा में हमें आगे जाना है। आप सभी सहमत होंगे, विश्व स्तर पर जितने भी अनुसंधान के कार्य आज हो रहे हैं उनका अधिकतर सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना और उनको बढ़ाने के लिए रोग और बीमारियों के प्रति रोग रोधिता का विकास करके किस्मों का विकास करना ताकि उत्पादकता अधिक हो, गुणवत्ता बेहतर हो और किसान की लागत कम हो। लेकिन कहीं भी हमारा चिंतन पादप अनुसंधान में इस तरफ नहीं इंगित करता कि हम लोग इन किस्मों के विकास में उन किस्मों की पहचान करें जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दे सकते हैं, यानी कि वाटर यूज इफिशिएंट जीनोटाइप्स की हम लोग पहचान नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा फोकस उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता, रोग रोधिता और औद्योगिक विकास के लिए बागवानी फसलों की किस्मों के विकास पे हमारा ध्यान केंद्रित रहा। अगर हम इस विषय को देखते हैं कि भाई हमें किस प्रकार की फसलों को बढ़ावा देना है, उन सब्जी फसलों को बढ़ावा देना जिनकी जल मांग कम है और उनमें किस्मों का विकास करना, तो एक हमारा लक्ष्य है कि हम अभी अपने जो ब्रीडिंग के जो गोल्स हैं उनमें हम परिवर्तन लाएं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान नेटवर्क है उसके अंदर मैं कभी कहीं नहीं देखता हूं कि कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी जीनोटाइप आई हो या वैरायटी आई हो, हाइब्रिड आई हो जिसको हम ये कहते हैं कि वाटर यूज इफिशिएंट वैरायटी है। तो एक तो मुझे लगता है कि हमें ब्रीडिंग के माध्यम से उन किस्मों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कम पानी में बेहतर उपयोगिता हमारी आ सकती है। और ये एक प्रकार से पूर्णतः सत्य है जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा। डॉक्टर माई साहब ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। बागवानी में जल की उपयोगिता, जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, इनका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है उत्पादकता में भी और गुणवत्ता में भी। लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक में इसमें काफ़ी एरिया इसके अंदर आता है। लेकिन फिर भी पूरे देश के अंदर अगर हम देखते हैं जो बागवानी का क्षेत्र है उसमें बहुत कम मात्रा में इस प्रकार की जो हमारी सिस्टम है, इरिगेशन के जो सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, इसकी इस्तेमाल पे अभी इतना ध्यान हमारे किसान भाई नहीं दे पा रहे हैं। तो दो चीज़ें मुझे लगती हैं, एक तो हमें उन किस्मों के विकास को
आगे बढ़ाना होगा जो कम पानी में बेहतर उपयोगिता दे सकती हैं। उन फसलों को बढ़ावा देना होगा जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दे सकती हैं। तीसरा जो हमारा बिंदु होना चाहिए, मैं समझता हूं कि अभी जिस प्रकार से हमारे लक्ष्य हैं, अमृतकाल के लक्ष्य हैं कि बागवानी में हमको जो उत्पादन प्राप्त करना है, अगर हमें वास्तव में उनको प्राप्त करना है तो उसमें हम दो दिशाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तो हम संरक्षित खेती के विकास में, जहां जल और संसाधनों की बेहतर उपयोगिता है। हमारे देश में अभी बागवानी के अंदर बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है, 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास ही अलग अलग विशेषज्ञ इसको बताते हैं, जिसमें अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि हमारी जो नज़दीक के राष्ट्र हैं, चीन को अगर हम अपना उदाहरण मानते हैं तो वहाँ पे हमसे कहीं ज़्यादा बागवानी का क्षेत्रफल संरक्षित खेती के अंदर है, जहाँ जल की उपयोगिता, पोषक तत्वों की उपयोगिता का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उत्पादकता को बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि हमारी जो बागवानी में सब्जियों की अगर मैं बात करता हूँ, 10.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जियों की खेती, और अधिकतर खेती हम जो है सतही सरफेस के माध्यम से करते हैं, तो उसमें बहुत कम अभी हमारा इनका इंटरवेंशन पहुंचा है। तो एक पॉलिसी के माध्यम से, हालांकि सरकार का प्रयास है राष्ट्रीय बागवानी स्वीकृति कार्यक्रम के अंतर्गत या बहुत सारे राज्यों की राज्य स्तर पर जो योजनाएं हैं इसको इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम वेजिटेबल के क्षेत्रफल को संरक्षित उपयोगिता, जल और पोषक तत्वों की उपयोग को बढ़ावा देना है तो हमें ड्रिप फर्टिगेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उसको बड़े रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जल के इस्तेमाल को हम लंबे समय तक उपलब्ध करा सकें। तीसरी जो स्थिति बनती है वो बनती है कि भाई हमारे पास जब हम संरक्षित खेती के विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने चुनौती हमारे पास किस्में नहीं थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। हमारे संस्थान ने ही संरक्षित खेती के लिए बागवानी में, चाहे आप कुकुम्बर की बात करें, टमाटर की बात करें, चेरी टमाटर की बात करें, मस्कमेलन की बात करें, इसमें सभी में लगभग हमारे संकर किस्में और किस्मों का विकास हुआ है। तो देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। तो ये एक तो ये अवसर है। दूसरा जो हमारी सतही सरफेस है, इसमें किसानों को जागरूक करके, जागरूकता अभियान आवश्यक है। बिना जागरूकता के हम इसमें सुधार नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी जो हम देखते हैं कि हमारे देश में जो वार्षिक वर्षा का स्तर है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बदलाव आए हैं। और जब हम उस बदलाव को देखते हैं कि एक दिन में 100 mm बारिश हो जाती है तो अधिकतर जल नष्ट हो जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमने कभी पानी की कमी को देखा नहीं है। मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट का पैदा होकर के आगे बढ़ा हूं और मैंने देखा वहां पानी की कमी नहीं थी, लेकिन हम पानी की कमी को वहां भी देखते हैं। मैं याद करता हूं कि जब हमने पहली बार हमारे यहाँ ट्यूबवेल शुरू हुई थी तब हमारे यहाँ पानी 30 फुट पे होता था और बारिश में अक्सर कुओं से पानी निकलने लगता था। आज मेरे उसी क्षेत्र की बात को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पानी 240 फीट पे चला गया, यानी कि 50 सालों के इस मेरे अनुभव में 30 फीट से हम 240, 250, 280 फीट की गहराई पे पानी चला गया। डिस्चार्ज रेट कम हुआ है, उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक हुआ है, किसानों को ज्यादा बिल देना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि उस सब का कारण क्या है, हम लोगों ने गन्ने को एक व्यावसायिक रूप में अपनाया। पहले हमारे पास नहरी सिंचाई की व्यवस्था थी, 100% ट्यूबवेल इरिगेशन थी। इन दोनों सिस्टम ने मिलकर, नहरी सिंचाई अब बिल्कुल लगभग समाप्त होने की तरफ चली गई और हम लोग ट्यूबवेलों के माध्यम से इतने पानी का दोहन करते हैं जिस क्षेत्र में कभी ये महसूस नहीं होता था कि हमें पानी की कमी होगी, लेकिन आज हम उन क्षेत्रों में महसूस करते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। तो एक तो ये हमारा अनुभव सामने आता है कि भाई हम कहाँ बढ़ रहे हैं इस दिशा में। तो दूसरा, हमें एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले हमने मैं अपने गांव का दृष्टांत बताना चाहता हूं कि 8 तालाब मेरे गांव में होते थे, आज 2 तालाब बचे और उनका भी इनक्रोचमेंट हो गया। थोड़ी सी वर्षा गांव में फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो ये एक समस्या है, इसका निवारण ग्राम पंचायत को स्तर पे जो तालाब की जमीनें थे उनके एनक्रोचमेंट हुए हैं उनको रोकने की आवश्यकता है, उनको डीप करने की आवश्यकता है। और उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट पहले भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देश भर में चलाया और उसका सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण और जल की उपलब्धता पे पड़ा है। तो जिन क्षेत्रों में अभी कमी नहीं है उन क्षेत्रों में हमें पहले से जागरूक होने की आवश्यकता है और उसके लिए नीति विकास करने की आवश्यकता है। गाँव के स्तर पे कहा जाता है डायलॉग के रूप में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, लेकिन ना तो खेत का पानी खेत में रह पा रहा है और न गांव का पानी गांव में रह पा रहा है। और ये दोनों जब तक हम सार्थक रूप से उसका गांव के स्तर पे उसका संचालन नहीं कर पाएंगे तब तक ये हमारी चुनौती बनी रहेगी और आने वाला भविष्य हम सबके लिए एक बड़ा चुनौती के रूप में होगा।
इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी का मेरे विचारों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजक में मैं पुनः डॉक्टर आरजी अग्रवाल साहब का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया। हालांकि मेरा कोई व्याख्यान बहुत स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन मेरे मन में जो विचार आए मैंने आप सबके सामने रखे। एक ब्रीडर होने के नाते हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, देश की प्राथमिकता, और हमारी जो अप्रोच है वो गांव के स्तर पर होनी चाहिए। और जब तक हम गांव के स्तर पर काम नहीं करेंगे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो बेहतर भविष्य के लिए हमें बेहतर सोच, बेहतर पॉलिसी और उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे बहुत संकल्पकृत होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार संकल्प की बात करते हैं, हम सभी को संकल्पकृत होना है कि हमें पानी की उपयोगिता बढ़ानी है। और पानी की उपयोगिता हमें घर से शुरू करनी है, ऑफिस से शुरू करनी है। मैं देखता हूं घर में कितना पानी वेस्ट होता है, बच्चे ब्रश करते हैं, टेप खोल देते हैं, पानी बहता रहता है। हम कपड़ों के धुलाई में कितना पानी वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक सामूहिक सोच इस विषय में विकसित करनी है कि जल की उपयोगिता घर के स्तर पे, ऑफिस के स्तर पे और हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम है उनके स्तर पे हम कैसे कर सकते हैं। तभी हम इसको बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर देख सकते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद सर। और एक बार फिर मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर आरजी अग्रवाल जी को। आपसे निवेदन है कृपया एक स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं का सम्मान करें। और आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे डॉक्टर सीडी माई जी को। आपका हार्दिक धन्यवाद। स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे डॉक्टर पी राघवेंद्र राव जी को। We now present a memento to Dr. Arun Kumar. We thank you, sir, for being here with us. And also to Dr. B.S. Tomar. और निवेदन है डॉक्टर आरजी अग्रवाल से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन के कुछ शब्दों के साथ इस सत्र का समापन करें। आज के प्रोग्राम में इस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर सीडी माई साहब, जिन्होंने 2 साल पहले 75वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन फिर भी आज हर प्रोग्राम में आते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए। डॉक्टर राघवेंद्र राव, एक्स सेक्रेटरी केमिकल एंड फर्टिलाइजर, प्रेजेंट में चेयरमैन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। कोई भी कभी भी हम उनके पास गए तो उन्होंने इतना कोऑपरेट किया और हमें उनके साथ 1 हफ्ता इंडिया कैंप को प्रमोट करने के लिए हम गए, जापान, सिंगापुर वगैरह। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें रहा। हमें महसूस ही नहीं आया कि वो सेक्रेटरी केमिकल हैं, उतने बड़े अफसर हैं, घर जैसा उनके साथ हमारा संबंध रहा। हमारे पास डॉक्टर अरुण कुमार, वाइस चांसलर केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से, जिनके साथ हमने 3 महीने पहले ही MOU साइन किया। और MOU साइन करने से पहले डॉक्टर साहब से हमारा परिचय हुआ, डॉक्टर साहब से दिल्ली में मुलाकात हुई। तो हमने इनको सीड ट्रीटमेंट के लिए वीटावैक्स का सैंपल भेजा था, जिसका उन्होंने गेहूं, चने और बारले पर ट्रीटमेंट लगाया। और जब हम गए इनके यहाँ MOU साइन करने तो हमने इनके फील्ड भी विजिट किए और उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा था। और मेरा ख्याल है अब कटाई होगी तो पता लगेगा। 28 तारीख को कटाई कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो पता लगेगा जो टेक्नोलॉजी हमने ट्रायल की है तो उसका क्या फ़ायदा है या नहीं है।
क्योंकि आज किसान भी किसी भी बात को बिना देखे मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कार्यक्रम होता है और वो सबके बीच में होता है तो उसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर तोमर साहब ने वेजिटेबल के बारे में और वेजिटेबल के साथ साथ दूसरी बातें भी बहुत अच्छी हमको बताई कि वाटर सेविंग के लिए क्या साइंटिस्ट हाइब्रिड में कुछ ऐसी वैरायटी ला सकते हैं जिसमें वाटर कंजम्पशन कम हो। तो ये वाटर एक ऐसा विषय है कि सभी को मिलकर काम करना है, मतलब एक आदमी के काम करने से इसकी समस्या का हल नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर राघवेंद्र राव, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर CD मई साहब सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर आज के कार्यक्रम में पधारे और उन्होंने विचार हमसे साझा किए। धन्यवाद। और एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे सभी माननीय वक्ताओं के लिए। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे अगले सत्र की। Ladies and gentlemen, we request everybody to kindly remain seated as we straight away move towards the proceedings of the next session, which is the technical session 2. Kindly give us a moment while we arrange the top table for the next session. और अब अगले सत्र की शुरुआत करते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे सभी माननीय वक्ताओं को। तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर HP सिंह जी का, FNAAS, the founder and chairman, CHAI on efficient management. He is going to present on efficient management of water to ensure availability of water to bring peace and prosperity. स्वागत है डॉक्टर राजबीर सिंह जी का, ADG AFNCC NRM ICAR। डॉक्टर राजबीर सिंह जी। स्वागत है डॉक्टर रविंद्रनाथ पडारिया जी का, जॉइंट डायरेक्टर एग्री एक्सटेंशन IARI। और हमारे साथ वर्चुअल मोड पर जुड़े हैं डॉक्टर YG प्रसाद, डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। एंड आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर R शारदा जयलक्ष्मी जी को, वाइस चांसलर अंगराव। पुनः निवेदन है श्री MK धनुका जी से कि कृपया आप पुष्प भेंट कर स्वागत और सम्मान करें हमारे माननीय वक्ताओं का। स्वागत है डॉक्टर HP सिंह जी का। स्वागत है डॉक्टर रविंद्रनाथ पडारिया जी का। और स्वागत है डॉक्टर R शारदा जयलक्ष्मी जी का। हार्दिक धन्यवाद सर। So ladies and gentlemen, we now begin the proceedings of this session on community-led water solutions for sustainable agriculture. We would like to request all our eminent speakers to kindly conclude their presentations in 10 minutes. We would now like to invite Dr. HP Singh, FNAAS, the founder and chairman, CHAI.
He is going to present on efficient management of water to ensure availability of water to bring peace and prosperity. तो जोरदार तालियों के साथ दोबारा स्वागत डॉक्टर एच.पी. सिंह जी. Thank you very much. Good afternoon to all of you. Thanks to Agrawal Saab for inviting me to share my experiences in conservation and efficient use of water. Today we are celebrating a water day which has theme of leveraging the water for peace. John Kennedy told once, the person who solves the problem of water, he should be given 2 Nobel Prizes. One for bringing the peace and another for the knowledge. Why you see the peace? And today we are talking about the peace. Wherever the water scarcity has been there, civilization have changed. Even if you go to the past in India, many of the cities were ruined where the water scarcity was there, and new cities were built where the water was there. So that is the importance of water. I need not explain very much. Not it is only important for a human being, but whole ecological system, for prosperity, for economics, everything depends upon the water. And wherever there is a water crisis, there is a conflict. So there is a need for effective management of water so that we can bring the resolution for the conflict not to happen. Because there are many historical examples of the past where the aggressions have been there for the water. Even here, even in India, if you see, many a times there is a fight between the 2 states. The conflict is there. And often we hear about the Tamil Nadu and Karnataka for Kaveri water. Many times we hear about Haryana and Punjab for water. So there is a conflict. And of course, through the Jal Shakti, we have the various commission. Many times these issues are being addressed. But transboundaries also we have the problems. As in the morning, Mr. Sharma told that many of rivers comes from through the Nepal, through the China, and so on. And many of our rivers also goes to the Pakistan and so on, even Bangladesh. So there has been many a times transboundary conflicts. Recently we have been also hearing about the conflict when our dam was inaugurated about a month back. There was a conflict again aroused in Pakistan because of the water. There will be less of water there. So all these, the conflicts can lead to the war. And so to bring the peace, there is a need for exploring all the possibilities for reducing the scarcity of water. Now look to what is the availability of water. When we had in 1950, of course, our food production was only 50 million tons. Our availability of water per unit of human being was about 5,000 cubic meter. 5,000 cubic meter, which has come down. And if you see, even in the last 10 years, this has been declining, and many of the states we have in the scarcity zone where it has come down to less than 1,100 cubic meter. Of course, many of the states still we have more than 1,750 cubic meters. So this is also declining. With the population, as the morning it was said, yes, our income level is going to increase. Urbanization is going to happen. Today, 35 to 40% of people live in the city.
But tomorrow, more than 55% of people are going to live in the city. It means city demand will be different. And now morning also one of the speakers said that in the tankers water are available in Bangalore and there's a major crisis is happening in Bangalore. So these crises are happening. How to manage that? So the first is the conserve the whatever the water is there. Efforts have been made in the past. Like conservation, you have been encouraging the people to have the water harvesting units. Only the permission will be given in many of the cities to construct, if they construct the water harvesting units, harvest all the water, conserve all the water. Morning also it was said, our Mai Sahab said, that there is a program to check the speed of going river, which takes all the water to the sea. So make them to walk. That also conserves the water, deep percolations will take place. Efficiency of dam has to be increased. So these are the conserved. All the rainwater, what comes, it has to be conserved. As far as the question is concerned, yes, we give the degree in the water, in the engineering in the water, and so on. So there has been the work in the past. Let us not say that we have not done since independence. We are working on the water. How far the success we have achieved, of course, that is the question of the analysis. Now coming to the efficient use of water. Now that's why at global level, we have converted our terminologies of water use efficiency to enhancing water productivity. Water use efficiency is not a correct term to use because always, for example, you take the cactus. It may have the highest water use efficiency, but it will be not productive. It will not giving so much of production to you. Another example is there that many of these Caesarean plant mechanism which has the Caesarean metabolism, mostly it comes in the xerophytic plants. If you want them to be effective, they convert themselves to the C3 plants. It is not always true. We have been trying to make the C4 plants. For example, even rice, a lot of schemes has been there to convert the rice from the C3 to C4. But we have not yet succeeded. Of course, they have the mechanism is there for efficiency. For example, Jowar, Bajra, they have the mechanism. They have the mechanism through which they conserve themselves in the xerophytic situations. But that is always not so productive. And that's why you see that wherever the jowar has been grown earlier, even Rabi, and now when they are giving the irrigation, their productivity has jumped 3 times. And that's why jowar, which was vanishing in the Maharashtra, now again it is coming back because the productivity is high and it can compete with the many other crops. So always to say that, for example, morning it was said, the people are growing the vegetables all around there that will require the water. But you cannot make the change. People will demand it and we have to produce and the farmer will get better income, so we'll continue. So only what we would think that how to make it more efficient system. And when you talk of the more efficient system, micro irrigation system, which was invented, turn of the last century. Of course, there are many examples that was followed in our country, even in some of the civilization. We find that drip irrigation was used and still through the matka irrigation and so on. It has been there, but commercially it has been, say, around the 45 and so, it was there and it was from the Israel that it spread to other parts. And as far as the India is concerned, it was long back in the late 70s, when the Sardar Pawar was chief minister, he encouraged the farmers to adopt, as has been explained, to micro irrigation system, which includes both the drip irrigation, we always say the pressurized irrigation, drip irrigation, as well as a sprinkler irrigation. Morning it was said that if you go for the sprinkler irrigation, there will be a lot of disease problem, but it's not always the true. That depends upon which are the situation. If you have the high humidity there, and under that, if you are using the sprinkler system, definitely it is going to do that. So that's why we encourage the micro irrigation, drip irrigation system. Of course, we have moved forward. There was a committee constituted under the chairmanship of Chandrababu Naidu way back in 2002. We submitted reports 2003. We submitted reports in 2004 February to the Honorable Prime Minister, which clearly suggested that if Indian agriculture has to be saved,
69 million hectares have to be brought under the micro-irrigation system before the 2030. But it is unfortunate that our movement toward that is very, very slow. Many of the states, they have followed, as it has said, that water is scarce area. But people forget that excessive of water is also harmful. You see, for example, if you drink water, we need at least per week 32 liters of water. Per day 4 liters of water to drink. But if you are made to drink, at the time the 32 liters of water, what happens to you? Same thing happens to the plants when they are made to drink whole water in a week. So efficiency can be increased if they are made in the more frequency. And that is the drip irrigation provides that. And technologically we have further moved forward, that we call it pulse irrigation. Under the pulse irrigation, we measure the oxygen content of water. We measure that also the pressure of the water, and then water is given. And that saves 75% of water. Of course, that requires the investment. So here, the investor has to come, government has to invest, and invest. Then definitely you can save. I remember way back in 1978-79, when I was presenting as a scientist that drip irrigation should be there, many of my old colleague scientists said, "You are a fool. Who the Indian farmers will adopt the drip irrigation? Because it is very costly." But today, it is different. People are adopting. Just like in Indian Institute of Horticulture Research, I was there. Once I questioned, then the director who was promoting the head system of grape cultivation, I said, "It's not going to work. We are just always talking about the low-cost technology. It is not going to work." And really, you see, it is not worked. When the root stocks on the grape was being talked, some of scientists said, "Why you need a root stock in the grape?" I am talking of the way back in 77, 78. And today, whole of the grape industries has been saved because of the root stock. So many things, if I say today, it may look impossible. But tomorrow, it is going to be possible. Now you see the digital management of water system has come. Based on the sensor and mechanism, your data availability, machine data, AI using all, the water is managed more efficiently. So we have to look forward to that. So ladies and gentlemen, see, there are challenges, there are opportunities. How we convert these challenges into the opportunities, that is the task before us. And definitely I am sure that we will do so. The scarcity will be used because sometimes, for example, if you see Jalgaon, can you grow Jalgaon, banana in Jalgaon? If you look to any of the books, they will say no. But the best banana is grown in the Jalgaon because disease pressure is minimum. Yes, I'll link in 1 minute. Disease pressure is minimum. So, ladies and gentlemen, something may look different today. That will be needed. And digital system, future of agriculture is going to be the digital agriculture. It will require machine learning, AI, sensors, drones, and so on. And so in the water, and already we are using the auto system water. Through the sensor, the water is managed more efficiently. So once again, I thank the organizer in giving me the opportunity to share my thoughts. Of course, the time has been less, but anyhow, I have tried to share whatever I had gained in the past. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, for the next address, I would like to invite Dr. Rabindranath Padaria, Joint Director, Agri Extension, IARI. So let's put our hands together to welcome sir for his kind address. Honorable Dr. R.G. Agrawal ji, the innovator in terms of agriculture and water all together and having this session today. I'm honored to be with you, sir. Respected Dr. H.P. Singh Saab, Madam from Tamil Nadu, dignitaries and dear friends. It's really a subject to be deliberated, to be acted upon, and to be visualized in the right context
so that the civilization goes on. I have seen the kind of the performance of the various actors who are engaged in water conservation, water management, and water utilization, water harvesting, all kinds of dimensions of water. If you see the kind of perspective of water in our civilization, all of us agree that is vital. But who are the major actors and what kinds of challenges are there and how we can converge together to see that water is utilized properly. And that is the kind of context which I'd like to deliberate as a social scientist. There are the kinds of achievements through innovations in water engineering. There are innovations from breeders, agriculture and scientists, from agronomy and natural resource management. Everyone have delivered. And there are actors like farmers who have utilized it. But the problem is how we value water. Valuation of water has been a subject of debate. And because of that, it is leading to certain kinds of crises in the society. And also we have not visualized what kinds of social cost, what kinds of environmental cost is involved when we create 1 unit of water, either for drinking purpose or for irrigation purpose. There are other communities who have sacrificed, particularly those dwelling in the forest, our tribal friends, whose livelihood has been disrupted, but still we marched on the big dams. But it also created a dilemma. So we need to understand from the social science perspective how the water can be used as a resource, as a commodity, or its vitality in our utilization. It's not that our communities didn't have the wisdom. If you recall some of the publication of late Dr. Anil Agarwalji, he has written a book on dying wisdom. It means centuries old traditions, methods, and the management principles were there through which we had bountiful water and management perspective. How we engaged our communities through Pani Panchayat or the Water Use Association. But we have not only depleted the resources, we have also crumpled the institutions, the basic institutions which were engaged in water conservation or water management. See the kind of communities of Kirkumat in Nagaland, how they have a community-based principles to utilize water. Similarly, in Kutch area, which is a water scarce area, but they have now adopted root water harvesting for drinking and irrigation purpose. We have got the Amrit Sarovar program now to have the water tank. Water tank was our civilization old technologies, but still we are relying and we are promoting things. But how do you build on our cultural heritage? That is the point to be taken into consideration. We are always challenging the farmers for their wisdom. They are not utilizing the technologies or they are not savvy with the innovations, but it's not correct. Many of the farmers have adopted all kinds of technologies related to agriculture and even the water management. But our policy dilemma always says that are we going towards prosperity or are we going towards pauperization? See, one example is of big dams. How we created irrigation potential, but how the water was used. There were problems of water logging. There were problems of bounty, and those landless labor who started cultivating crop on a shared basis or share cropping, they earned a lot, they started become the land owners. But at the same time, the farmers who had the land, because of lack of planning, lack of community engagement, the land development program didn't work, and water logging led to more of siltation and salt accumulation, and some of the farmers lost their land at all, and they were transformed into a dhaba owner or casual laborer. See the quite distinct one water commodity leading to prosperity as well as pauperization. Where we missed, we always miss in our planning process how we see the social processes coming up when the innovation is coming in a system. How the different actors like community, how we engage those communities. That is the lacking part. So how we build on community participation, that is a subject we need to talk about. So as a social scientist, when we started working in different domains, even in the Indo-Gangetic plain, starting from Haryana till Sundarbans, where the water scarcity is there, government is planning for more of the shifting of the paddy to other crops, and also the water luxury kind of thing in West Bengal, where the flood is there, that is also evil.
how we managed by engaging communities. So we need to empower the communities to see how best we can transform in our approach. And they were very kind enough to associate in this process. Many places we created, even like Varanasi and other regions, ponds with the engagement of communities. The Department of Engineering, they have the budget. They want to do something for the communities, but down the channel from the block to village level, they don't have any arrangement to engage the communities, to mobilize the communities. But we try to figure out how this community engagement can be done. So those communities were mobilized to share the labor. They cannot afford to give the cost, but they share the labor, and as a result of series of water tanks, series of check dams were created. These kinds of engagement, we need to have certain kinds of arrangement in the policy itself. How any kinds of implementing agencies will engage the communities. How they will be, what are their perspective, what are their roles and responsibilities, we should honor that. We have the Atma project, we have the district irrigation plan, but when we implement it, when we visualize it, what kinds of imperatives are required for farmers or the other communities to take into part, we miss it out. So we need to spell out the community engagement. Other is what kinds of incentive we are giving to the farmers who are going to conserve water. If they are going to shift to the low-yielding crops or less profitable crop from paddy, what kinds of incentive we have. Thanks to this kind of challenge we are facing with climate change, much of debate happened. Now we are going to have a carbon credit. If the farmers are using more climate-resilient technologies and reducing the greenhouse gas emissions, they will give a carbon credit. What about water credit? Are we also going to have some kinds of incentives for farmers who will be water smart? What kinds of technologies, what kinds of offset in the yield and productivity as well as income will happen? Do we have any kinds of policy set up for that? How we promote those water warriors? See the kinds of Jhansi region, many of the women, they have come forward. And at the same time, you will also feel sad to know the water wives. The polygamy has started because of water scarcity, but at the same time, Jal Sahelis are coming forward to have an institutional arrangement at the village level to ensure water availability to the communities. So these kinds of stark, different kinds of setup emerging in an area gives a kind of special attention to see the community process, community engagement. And that can happen only through once we have certain kinds of strategies to engage communities. And how those kinds of institutions can be initiated once again so that social processes are strengthened. The engagement of the communities are strengthened. So there are several kinds of examples across the kinds of institutions, across the kinds of agencies who are working, but convergence is still lacking. What affects the convergence? Many departments are engaged in transformation of this water setup or the agriculture setup or the development setup, but convergence, it is not coming up in a big way. So we need to have a kind of convergence planning at the beginning itself. Once we have planned, then we are talking of who are the actors who will converge. So can we have a kind of convergence planning and set up for benefit sharing mechanism? Who will contribute what are the roles and responsibilities, and how convergence will lead to certain kinds of outcome. And this also we try to test in our project villages, how the convergence can happen. We tested in Meghalaya, we tested in Chhattisgarh, we tested in Haryana, we tested in Uttar Pradesh, how the different line departments, what are their core strengths, which actor will contribute what, and how much can come forward for doing the different aspect of things. But the problem is of unit of convergence, or point of convergence. So we figured out, can the communities, their groups, like farmers group or farmers organizations or SHGs can be the point of convergence? That worked very well. So farmers know what kinds of incentive they want from different agencies, and agencies also know where I have to converge upon. So that mechanism worked very well. We tested this convergence mechanism, and I'm happy to say that Jal Shakti, this ministry has also worked out a very good framework for convergence. Now it requires to be replicated in all aspects related to water management or input management. I think these kinds of issues are more crucial than other kinds of technological solutions. Until unless we have this transformation in our social process, behavioral dimensions, or institutional perspective, I think
we will still having certain kinds of gaps in water management and utilization. So I'm very, very grateful to Dr. Agrawal Sahab giving me the opportunity to share with you some of the experiences, and I wish everyone safe water and prosperous agriculture. Thank you so much. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, we have our next eminent speaker who has joined us on the virtual mode, Dr. Y.G. Prasad, Director, Central Institute for Cotton Research. Sir is here with us. Over to you, sir. Dr. Y.G. Prasad, sir, can you hear us? Yeah, are you able to hear me? Are you able to hear me? Sir, आप हमें सुन सकते हैं? Yeah, we can hear. So can over to you, me? sir. Over to you for your address. Yeah, you are able to hear me, no? Yes, sir, loud and clear. Thank you very much, and good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais and delegates who have physically present there in this and virtually joined. I offer my greetings on behalf of Central Institute for Cotton Research, ICR Institute at Nagpur, and all the cotton fraternity, research fraternity join me in extending all of you greetings and wishes on this World Water Day, which is being celebrated by, organized by Dhanuka, ACFI and World Cooperator Economic Forum. On this occasion, I would like to greet all of you that water, we all know its importance in our daily lives, especially for agriculture. There are many myths about water use in agriculture, especially a crop like cotton, where we are interested. I would like to bring to your notice that cotton is a very dryland crop which requires only about 600 to 700 mm of rainfall. And this means that about 6 to 7 million liters of water is required per hectare. And since it's a dryland crop, and then its requirement depends upon the crop stage. Early phases of the crop only require about 15% of the water that is consumed by cotton. And mid-season requires about 85% of its water requirement. So that is a window between 50 days and 80 days. So that 1 month period. So most of the 85% of the water requirement of cotton is in that period. And water and nutrients go together. For productivity, these are two critical requirements, inputs, apart from the genotype. Nutrients also 20% only is consumed in the first 40 days in the vegetative stage, in the early seeding stage. And 80% is consumed in the mid-season, not even in the terminal. So 80% before 90 days, the complete nutrient requirement of cotton, and also its 85% of water requirement is, if it is met, then the productivity of cotton would be very high. But there are many myths and facts of water use, cotton and its water use. Many projections, if you see in the Google or in the internet, many things are circulated that cotton is a thirsty crop, cotton is a water guzzler, and projections say that 1 kg of lint, about 20,000 liters are required. And also there are facts and figures presented by different fora, especially different other sectors who are not so favorable to cotton, that 71% of the global cotton comes from irrigated areas, which is not a fact. And they are saying that about 3,333 liters of irrigation water is required to produce 1 t-shirt or per kg lint. And 20,000 liters are required to produce 1 t-shirt or one pant. These are some of the facts which are circulating in the internet and pursued by different people. But the fact is that only 45% of the cotton area is irrigated and 55% of the cotton production comes from rainfall. And although cotton occupies only 2.3% of the global crop land, and it uses only 1.73% of the global irrigation water, and only about 4.3% of the global irrigated area is underwater. And
many times we make comparisons between other crops and cotton, that cotton is a very thirsty crop, maybe thirstier than, say, rye, paddy or some other wheat or some other cereal crops or food crops. The fact that the rice and paddy consume about 13% of the total global irrigation water, 15% by wheat. The cotton consumption is only 3% of irrigation water. These are some of the facts I would like to place before you. And I would like to say that even under cotton, if you come to India, the status of cultivation of cotton, 100% irrigation is there in the northern states, northern zone, where Punjab, Haryana and Rajasthan. But the rest of the area is about 85% of the area is in the central and south zones is occupied by these states, where we have about only 33% of the irrigated area and about 67% is irrigated. So water effectively utilizes the rainwater and then we are able to produce whatever the productivity that we get. But because being a rain-fed area and because of the climate variability, the productivity of cotton is much to be desired in recent years. It's below the global average. Unless we optimize water use and nutrient use in cotton, we will not be able to achieve substantial increases in yield. Water is a very critical component for even for cotton productivity. That much. How do we actually do it? Through harvesting and reusing it, or saved water can be used through micro irrigation, and water saving technologies can be used, especially to support the terminal beyond 90 days after the cessation of the monsoon. We are able to support one support irrigation. Definitely, the cotton productivity can be doubled, and the irrigation water use efficiency of cotton can be really increased substantially. So these are some of the figures that I wanted to put before you, and there are many techniques which CICR and other researchers are working that through the sensor-based irrigation technologies, through precision agriculture, we can definitely reduce the water footprint and increase the water use efficiency, nutrient use efficiency, and then bring better productivity, increase the harvest index of cotton, so that ultimately the cost cutting is there, and then productivity enhances, bring more profitability to farmers. So we all do our bit, but if you want to increase the water use in cotton, more efficient use in cotton, we need to make investments. And the investment should come from the right places, and then the supports that we give should be utilized by farmers, and then we should really increase the productivity of cotton, because cotton and cotton sector is so vital to Indian economy, and through initiatives of corporate social responsibility and other funding opportunities, we need to, and through the government schemes, ongoing schemes, we need to promote micro irrigation, sensor-based irrigation in cotton, so that our consumption matches our production, and we will be able to become an export-oriented country for cotton. This is what I would like to say, because cotton, about 6 million farmers are dependent on cotton, and about 400 to 500 stakeholders are dependent on cotton for their livelihoods. So water and cotton are very much intricately related, but use efficiency, if you are able to do it, water productivity, if you are able to increase, then the profitability is there for all the stakeholders in the cotton value chain. Thank you very much for this opportunity. In this brief time, I wanted to dispel some myths about water and cotton. So I hope I have done that job. Thank you very much, and I wish the conference all the best. Thank you. Thank you. Thank you very much indeed, sir, for being here with us today. And now, ladies and gentlemen, for the final presentation of the session, I would like to invite Dr. R. Sarda Jayalakshmi, Vice Chancellor, Inaugural, and she will be addressing on water footprinting for sustainable agriculture. And may I once again remind you, ma'am, you have 10 minutes, and we have the timer on your left-hand side. Respected dignitaries and all invitees, good afternoon to all of you. Especially I thank Agrawal ji for giving me this opportunity and also inviting me to this important program. We all know that water is the basis of life and all development will be linked with the water. But at present, the water is the major product or major constraint or scarcity.
So if you see per capita water availability in India is only below 1500 cubic meters. That means still lot of deficiency is there for the availability of water. So major agriculture is the largest consumer of the fresh water globally. So climate change and population growth, these are main reasons for the water scarcity. The traditional practices, they are the major things which are leading to the water waste and also pollution, because we will be using the flood water system, that is flooding, and also so many times we will be using more and more water in the agriculture when it is practiced as a traditional system of agriculture. So if you take the food and land, even also there are development challenges, sustainable agriculture and food supply, then efficient use of water and also fertilizers, adapting to the climate change, urbanization, food versus fuel. So all these are the major challenges. And even in the environmental concerns also, it is the biodiversity, then greenhouse gas emissions, then land degradation from unsustainable agricultural practices and waste. So for the sustainable land use, majorly it is depending on the economic viability, stability and resilience, protection, acceptable and equitable, and finally leading to the productivity. So if you take the water, the development challenges are because of the growth of the population and economic growth, urbanization, then to provide the sufficient water to feed the growing population, and also to provide the safe drinking water and sanitation to the all human beings, more efficient use of water resources, and to protect the groundwater resources. These are the major challenges regard to the water. Then environmental concerns, climate change. Nowadays we are facing a lot of situations like droughts, floods, and also sea level rise, and pollution, eutrophication. All these are the different environmental concerns. So for the sustainable water management, we need to have the water quantity, water quality, and ecosystems. So interlinkages, water use for the agriculture. So here, how we are using the water for agriculture. When compared to the previous years, nowadays we need to be very cautious about the use of water in the agriculture. So production of food, which accounts for the largest component of human water footprint. So it is 70% of fresh water withdrawals worldwide for the agriculture. So major water footprint is from the agriculture. So it can be as high as 90% in some low income countries, lower in most higher income countries. So we need to have less water footprint, because when we want to have the more production, more GDP, we need to use water properly. So national sustainable development policies, they'll be having the water, which is in turn becoming the food, and again it will be the energy. So water footprinting is a crucial tool for achieving sustainable agriculture. Here we have to see that identifying the water intensive crops. Why? Because there are some crops which are water intensive crops. Most of the farmers, they are going for the paddy or wheat. So we need to have the less on the water intensive crops. So here the farmers, they have to prioritize cultivating less dirty options. And optimizing the irrigation practices, most of the times they will be going for the flood type of irrigation. Better to go with the other drip system and sprinkler system. Then promoting the water conservation techniques and also planning and action. Here, the farmers can create the roadmap for sustainable water management. Because here we need to have the climate resilient varieties and also the crops which can consume the less water. Then even the virtual water also we can discuss for some time. That is water footprint or the virtual water. So here it is the consumption, direct and indirect water consumption. So there are different means of calculating or measuring this virtual water. So the differences between the virtual water and the water footprint. So we can see the virtual water, which is nothing but the products. Whatever the product that is we are getting, that is having the virtual water. So products, consumer, producers, all the humanity, all will become under the virtual water.
So water footprint means it is a measure of the volume of fresh water consumed or polluted for production. So this is the water footprint. So water footprint of a country mainly depends on the agriculture. Back. So it depends on the agriculture. Water usage efficiency is very, very important. How best we can manage the water is very, very important. And depending on the climate or growth conditions, that is, most of the times in Kharif, lot of water is available because of the rains. That's at that time we can use the intensive crops, water intensive crops. But during Rabi, we need to have the low intensive crops. So like that, we have to manage the crops depending on the water availability. Then volume of the consumption, it is also related to the gross national income. Then consumption pattern. Then if you see, just for example, to make one slice of bread, it requires 40 liters of water. That is starting from sowing of wheat crop up to the value addition of bread. Then similarly, to make one apple, it requires 70 liters of water. Then to make 1 kilogram of wheat, it requires 1,300 liters of water. It is all from sowing to harvesting and then for the production. Then to make one pair of jeans, it requires 10,855 liters of water. So water footprint assessment provides insight. It does not tell the people what to do, but it helps the people to understand what it can be done. That is, nowadays we have to think more, or we have to concentrate more on the what to be done because of the scarcity of water, what we can do. So there are three components: green water footprint, blue water footprint, and gray water footprint. We know green water footprint means it is a volume of rainwater which is consumed or evaporated or incorporated into the product. Whatever the product we are getting from the rainwater, that is considered as the green water footprint. Then blue water footprint, it is the volume of surface or groundwater consumed or evaporated, incorporated in the product or returned to the other catchment. Then grey water footprint, it is the volume of fresh water that is required to eliminate the load of pollutants. So like this, there are three water footprints: green, blue, and grey water footprint. So water footprint is an indicator of the human consumption of fresh water resources, can be measured as the volume over time. So this can be measured individual person or for process or for product or for the entire value chain or business or river basin or nation. Why we need to measure this water footprint? Because how much is being consumed, how we need to protect we need to save the water. That is very, very important. The theme of today is to save the water. So based on this water footprint, how best we can save the water. So these are the different water balance of a catchment area. These are the different average virtual water content of some selected products for a number of selected countries. So in different crops for different countries, there is a different water content, virtual water content that is being consumed. Then this is regarding the processing of the crop and livestock products. What is the water that is being consumed for getting all these crops or all these products? So for water footprint in agriculture, nowadays it is the requirement of water is more for the food grains, even for the all crops. So here we have to concentrate on the water saving. So the conclusions are: declining water resources, increasing water demand for the different sectors with the changing climate poses challenges to maintain the agricultural sustainability. So here we have to think about more, that is, we have to shift for the different types of irrigation system or different types of water supply to the crops, and also we should have to use the climate resilient crops and also varieties. Then overall food sustainability depends on the primary resources. Then the per capita water availability of India is less than standard per capita, that is
our per capita availability of water is day by day it is getting down. So here also we have to think, because our population is day by day increasing, but the availability of water is day by day decreasing. Then the water footprint of Indian agriculture is about 1200 million cube, which is higher than the available utilizable water of the India. Then there are strong interlinkages among food production, land use, energy and water. In addition, India has become major water exporter country. Why it is water exporter country means, suppose we are producing paddy or wheat, that is whatever the water that is available in India, it is being exported to the other countries. So here also we have to think. So there is need of virtual water trade policy in India. Water footprinting empowers farmers to make data-driven decisions that promote water conservation and ensure long-term viability of the agriculture. I thank organizers for giving me this opportunity. Thank you very much indeed, ma'am. That was a wonderful, exhaustive presentation. And I would now like to invite Ms. Madhuri Dhanuka from the Dhanuka Agritech Limited to kindly do the honors of presenting a token of gratitude and appreciation to all our eminent panelists. We present to Dr. H.P. Singh. And once again, thank sir for the insightful address we had from him. Thank you very much indeed, sir. We present to Dr. Rabindranath Padaria. Thank you very much indeed, sir. And we also present to Dr. R. Sarda Jayalakshmi. And I would now like to invite Ms. Madhuri Dhanuka ji to kindly propose a few words of thanks before we close the session. Respected Dr. H.P. Singh ji, Dr. Rabindranath Padaria ji, Dr. R. Sarda Jayalakshmi ji, Dr. Y.G. Prasad ji. I thank you on behalf of Dhanuka Group for taking out time from your busy schedule and sharing your thoughts today on World Water Day. Water indeed is precious, and the best way to make use of it is very important. Your views and strategies, if implemented, will definitely be helpful for transformation and sustainability of water. Thank you. I would invite you, ma'am, to kindly join the panelists for the group photograph. And ladies and gentlemen, with that, we now break for lunch. The lunch is served in this hall itself, and we would request you all to kindly be seated by 2:25 as we begin the next session sharp at 2:30. Thank you very much indeed. Enjoy your lunch and be back in time. Thank you.
बनाया जाता है। हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, हमें कबीर के गुण भी पढ़ाए गए। कबीर के एक दोहा इसमें लिखा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, माटी मानस छू। आज हमारे देश में जल की क्या सिचुएशन है, कितनी शॉर्टेज है। आज चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, देश में हमारी खेती हो, कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता। धन भविष्य को जरूरत देखते हुए सन 2005 में नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हमने सिर्फ नारा ही नहीं दिया, हमने राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले में 8 चेक डैम भी बनवाए, तालाब बनवाए और उसको एक सही मायनों में लोगों को प्रेरित किया कि जल बचाने के लिए वो भी आगे आए। जहां जहां ने चेक डैम बनाए, उन गांवों के लोगों की जिंदगी बदल गई। जहां पहले पीने की भी पानी की समस्या थी, तो आज उनको पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, उनके जानवरों के पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। जो उनके ट्यूबवेल्स थे जिनका जल स्तर नीचे गिर रहा था, वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर आ रहा है और आज वो बहुत अच्छी खेती कर पा रहे हैं, सिर्फ चेक डैम और पानी की वजह से। साहब ये धानुका कंपनी से जो एक निकट निर्माण कार्य किया गया 15-16 में किया गया था साहब। इससे पहले 500 फुट के करीबन वाटर लेवल था, 500 फुट से भी नीचे था, जो भी कुछ था थोड़ी मात्रा में था। और जब ये चेक डैम बनाया गया धानुका कंपनी MPHD RDF के द्वारा, उसके बाद वाटर लेवल 200 से 250 फुट के करीबन हो गया। धानुका कंपनी गया बर्जिया को तो मान फायदा है, कुआं पानी को नहीं, अब मजदूरी करा तो जो कमाओ सब टाइम पास हो तो कोई मतलब को नहीं, पानी हो जाओ खेती कर ले तो सब कुछ फायदा हो जाओ मन। इस पहले हम 1-2 ही खेती कर पाते थे, अब 4-5 खेती हो जाती है। इससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाती है और क्या है कि बाहर कमाने नहीं जाना पड़ता, यहीं पे खेती करके गुजारा हो जाता है खूब अच्छा। मार कुआं पानी होगो, बोरा में पानी होगो, और मार बकरी भैंस सब रखूंगी, अब काहे को रखूं, मार खेती खाली पड़ी है, सरसी बाव से दाव मार दाव से। धानु कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे पहले फसल नहीं होया करती थी, अब फसल है ना अच्छी होने लग गई है। बढ़िया काम होगो साहब, खूब आप तो राज का कुआं में पानी होगो जो सूखो पड़ियो तो। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों से विनती करते हैं, सिर्फ 22 मार्च को ही जल दिवस न माने, कि जो आज इस साल का विश्व दिवस जिसकी थीम है जल शांति के लिए, रोज आप अपने आसपास जहाँ कहीं भी जल की बर्बादी हो रही हो उसको रोकें। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध पेट्रोल के लिए नहीं होगा, जल के लिए होगा। मैं आशा रखता हूँ कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस मैसेज को जल बचाने के ऊपर और घरों के अंदर भी हम जल की बर्बादी रोकें, आप सब जगह सबके साथ पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, तभी भविष्य की जनरेशन के लिए जल हम बचा पाएंगे। धन्यवाद। In the heart of India, where fertile fields stretch wide, where the farmers nurture their crops with unyielding pride, amidst the lush green crops that sway and dance, stands a company that helps enhance the yield and quality of food produced on our land. Introducing Dhanuka Agritech Limited, established in the year 1980. Dhanuka Agritech Limited is part of the 56-year-old Dhanuka Group and is one of the fastest growing agrochemical companies in India. With our 3 fully equipped agrochemical formulation facilities, a new specialty chemicals plant, a state-of-the-art research center, 90+ products,
30 plus warehouses and a pan-India distribution network of 6,500 plus primary and 80,000 plus secondary distribution channels. Dhanuka has been a leader in the growth of the Indian agrochemical market, touching the lives of more than 10 million farmers. As the world's fifth largest producer and fourth largest exporter of agrochemicals, India is among the fastest growing markets for agrochemicals globally. Now the agriculture industry in India has emerged as a ray of hope, showing remarkable growth and resilience. It has also opened up new avenues for India as a global manufacturing hub. Our strong connection with the farmer is at the heart of everything we do. Building on this thought, we recently introduced the India Ka Pranam Har Kisan Ke Naam campaign, which pays tribute to farmers and acknowledges their invaluable contributions to our society. We embark on the synthesis journey with our pharmaceutical division, which was established in the year 1997 for the manufacturing of cephalosporin antibiotics. In 2005, we entered into a joint venture with Otsuka Chemicals Japan to manufacture advanced pharmaceutical intermediates. Our acquisition of Orchid Pharmaceuticals in 2020 has propelled our pharmaceutical business to more than double and now stands at more than $130 million. Orchid's US FDA, PMDA Japan, EU GMP and Visa Brazil approved facilities allow access to life-saving antibiotics exported out of India to every corner of the world. Now, Orchid is setting up a 7 ACA manufacturing facility which would make Orchid the only company in the world to be fully backward integrated and will allow the world to have a new source of antibiotics. To cater for the global market need, we have recently commenced a state-of-the-art chemical synthesis plant in Dahej, Gujarat, where we plan to manufacture specialty chemicals, intermediates and agrochemical technicals. In our manufacturing facility, we are initiating Multi-Purpose Plant 1 in Phase 1 with 2 production lines featuring several glass-lined reactors and stainless steel reactors. The plant has the capability of carrying out chlorination and condensation reactions. And in addition, the Dhanuka team possesses the necessary expertise to carry out a multitude of more complex reactions such as halogenation, hydrogenation, ammonolysis, esterification, nitration and many more. To ensure precise and efficient control over manufacturing process, we have best-in-class distributed control system. To safeguard the environment, we have installed a scalable 3-stage effluent treatment plant ETP with a capacity of up to 2000 KLT. Additionally, we have a Fenton treatment system that can treat high COD effluent along with 3 multi-effect evaporators. With space available for up to 10 additional plants, we are looking for collaborations with international customers who want to move their manufacturing operations from their current location to India. With a rich legacy of long-term partnerships, we want to create new collaborations with technology leaders for manufacturing operations in India and drive innovation and work towards a brighter tomorrow. We are grateful for your support. We are stronger with your support. We are transforming India through agriculture. We are Dhanuka. Ask any farmer, big or small, how precious to him is a plot of land, where he sows his dreams, in sweltering heat or raging storm. Night and day, he lives with his crops, grows and matures just as they do. Over moody seasons, he has no control. Life is but hard, blended with passion and determination. He irrigates the land with perspiration and limitless confidence in Dhanuka. Calling him a food grower just won't do. He deserves a standing ovation from the entire nation. Dhanuka, India Ka Pranam, Har Kisan Ke Naam.
क्या आप जानते हैं हमारे इस देश भारत में विश्व की 16% आबादी रहती है, लेकिन उनके लिए केवल 4% जल ही उपलब्ध है। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, बचाएं पानी की हर बूंद। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह नारा दिया है, प्रति बूंद अधिक फसल। इस विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। धानुका आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। जल की महत्ता को देखते हुए यूएन ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया है और यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, हमें कबीर के दोहे भी पढ़ाए गए। कबीर के एक दोहा, इसमें लिखा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, माटी मानस छू। आज हमारे देश में जल की क्या सिचुएशन है, कितनी शॉर्टेज है। आज चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, देश में हमारी खेती हो, कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता। धानुका ने भविष्य को जरूरत देखते हुए सन 2005 में नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हमने सिर्फ नारा ही नहीं किया, हमने राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले में 8 चेक डैम भी बनवाए, तालाब बनवाए और उसको एक सही मायनों में लोगों को प्रेरित किया कि जल बचाने के लिए वो भी आगे आए। जहां जहां हमने चेक डैम बनाए, उन गांवों के लोगों की जिंदगी बदल गई। जहां पहले पीने की भी पानी की समस्या थी, तो आज उनको पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, उनके जानवरों के पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। जो उनके ट्यूबवेल्स थे जिनका जल स्तर नीचे गिर रहा था, वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर आ रहा है और आज वो बहुत अच्छी खेती कर पा रहे हैं, सिर्फ चेक डैम और पानी की वजह से। साहब, ये धानुका कंपनी से जो एक निकट निर्माण कार्य किया गया 15-16 में किया गया था साहब। इससे पहले 500 फुट के करीबन वाटर लेवल था, 500 फुट से भी नीचे था, जो भी कुछ था थोड़ी मात्रा में था। और जब ये चेक डैम बनाया गया धानुका कंपनी MPHD RDF के द्वारा, उसके बाद वाटर लेवल 200 से 250 फुट के करीबन हो गया। धानुका कंपनी गया बर्जिया को तो मान फायदा कुआं पानी को नहीं,
अब मजूरी कराचा जे कमाओ सब टाइम पास हो कोई मतलब को नहीं, पानी हो जाओ खेती कर ले तो सब कुछ फायदा हो जाओ मन। इस पहले हम 1-2 ही खेती कर पाते थे, अब 4-5 खेती हो जाती है। इससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाती है और क्या है कि बाहर कमाने नहीं जाना पड़ता, यहीं पे खेती करके गुजारा हो जाता है खूब अच्छा। मार कुआं में पानी होगो, बोरा में पानी होगो, और मार बकरी भैंस सब रखूंगी, अब काहे को रखूं, मार खेती खाली पड़ी है, सरसी बाँव से दाव मार दाव से। दानो कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे पहले फसल नहीं होया करती थी, अब फसल है ना अच्छी होने लग गई है। बढ़िया काम होगो साहब, खूब आपन तो गरराज का कुआं में पानी होगो जो सूखो पड़ियो सो। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों से विनती करते हैं, सिर्फ 22 मार्च को ही जल दिवस न माने, जो आज इस साल का विश्व दिवस जिसकी थीम है जल शांति के लिए, रोज आप अपने आसपास जहाँ कहीं भी जल की बर्बादी हो रही हो उसको रोकें। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध पेट्रोल के लिए नहीं होगा, जल के लिए होगा। मैं आशा रखता हूँ कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस मैसेज को जल बचाने के ऊपर और घरों के अंदर भी हम जल की बर्बादी रोकें, आप सब जगह सबके साथ पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तभी भविष्य की जनरेशन के लिए जल हम बचा पाएंगे। धन्यवाद। In the heart of India, where fertile fields stretch wide, where the farmers nurture their crops with unyielding pride, amidst the lush green crops that sway and dance, stands a company that helps enhance the yield and quality of food produced on our land. Introducing Dhanuka Agritech Limited, established in the year 1980. Dhanuka Agritech Limited is part of the 56-year-old Dhanuka Group and is one of the fastest growing agrochemical companies in India. With our 3 fully equipped agrochemical formulation facilities, a new specialty chemicals plant, a state-of-the-art research center, 90 plus products, 30 plus warehouses and a pan-India distribution network of 6,500 plus primary and 80,000 plus secondary distribution channels, Dhanuka has been a leader in the growth of the Indian agrochemical market, touching the lives of more than 10 million farmers. As the world's 5th largest producer and 4th largest exporter of agrochemicals, India is among the fastest growing markets for agrochemicals globally. Now the agriculture industry in India has emerged as a ray of hope, showing remarkable growth and resilience. It has also opened up new avenues for India as a global manufacturing hub. Our strong connection with the farmer is at the heart of everything we do. Building on this thought, we recently introduced the India Ka Pranam Har Kisan Ke Naam campaign, which pays tribute to farmers and acknowledges their invaluable contributions to our society. We embark on the synthesis journey with our pharmaceutical division, which was established in the year 1997 for the manufacturing of cephalosporin antibiotics. In 2005, we entered into a joint venture with Otsuka Chemicals Japan to manufacture advanced pharmaceutical intermediates. Our acquisition of Orchid Pharmaceuticals in 2020 has propelled our pharmaceutical business to more than double and now stands at more than $130 million. Orchid's US FDA, PMDA Japan, EU GMP and Visa Brazil approved facilities allow access to life-saving antibiotics exported out of India to every corner of the world. Now, Orchid is setting up a 7 ACA manufacturing facility which would make Orchid the only company in the world to be fully backward integrated and will allow the world to have a new source of antibiotics. To cater for the global market need, we have recently commenced a state-of-the-art chemical synthesis plant in Dahej, Gujarat, where we plan to manufacture specialty chemicals, intermediates and agrochemical technicals. In our manufacturing facility, we are initiating Multi-Purpose Plant 1 in Phase 1 with 2 production lines featuring several glass-lined reactors and stainless steel reactors. The plant has the capability of carrying out chlorination and condensation reactions. And in addition,
The Dhanuka team possesses the necessary expertise to carry out a multitude of more complex reactions such as halogenation, hydrogenation, ammonolysis, esterification, nitration and many more. To ensure precise and efficient control over manufacturing process, we have best-in-class distributed control system. To safeguard the environment, we have installed a scalable 3-stage effluent treatment plant ETP with a capacity of up to 2000 KLT. Additionally, we have a Fenton treatment system that can treat high COD effluent along with 3 multi-effect evaporators. With space available for up to 10 additional plants, we are looking for collaborations with international customers who want to move their manufacturing operations from their current location to India. With a rich legacy of long-term partnerships, we want to create new collaborations with technology leaders for manufacturing operations in India and drive innovation and work towards a brighter tomorrow. We are grateful for your support. We are stronger with your support. We are transforming India through agriculture. We are Dhanuka. Ask any farmer, big or small, how precious to him is a plot of land, where he sows his dreams. In sweltering heat or raging storm, night and day he lives with his crops, grows and matures just as they do. Over moody seasons, he has no control. Life is but hard, blended with passion and determination. He irrigates the land with perspiration and limitless confidence in Dhanuka. Calling him a food grower just won't do. He deserves a standing ovation from the entire nation. Dhanuka, India का प्रणाम हर किसान के नाम। क्या आप जानते हैं, हमारे इस देश भारत में विश्व की 16% आबादी रहती है, लेकिन उनके लिए केवल 4% जल ही उपलब्ध है। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, बचाएं पानी की हर बूंद। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह नारा दिया है, प्रति बूंद अधिक फसल। इस विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। धानुका आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। जल की महत्ता को देखते हुए यूएन ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया है और यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, हमें कबीर के दोहे भी पढ़ाए गए। कबीर के एक दोहा इसमें लिखा है,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, माटी मानस छू। आज हमारे देश में जल की क्या सिचुएशन है, कितनी शॉर्टेज है। आज चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, देश में हमारी खेती हो, कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता। धानुका ने भविष्य को जरूरत देखते हुए सन 2005 में नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हमने सिर्फ नारा ही नहीं दिया, हमने राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले में 8 चेक डैम भी बनवाए, तालाब बनवाए और उसको एक सही मायनों में लोगों को प्रेरित किया कि जल बचाने के लिए वो भी आगे आए। जहां जहां ने चेक डैम बनाए, उन गांवों के लोगों की जिंदगी बदल गई। जहां पहले पीने की भी पानी की समस्या थी, तो आज उनको पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, उनके जानवरों के पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। जो उनके ट्यूबवेल्स थे जिनका जल स्तर नीचे गिर रहा था, वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर आ रहा है और आज वो बहुत अच्छी खेती कर पा रहे हैं, सिर्फ चेक डैम और पानी की वजह से। साहब ये धानुका कंपनी से जो है निकट निर्माण कार्य किया गया 15-16 में किया गया था साहब। इससे पहले 500 फुट के करीबन वाटर लेवल था, 500 फुट से भी नीचे था, जो भी कुछ था थोड़ी मात्रा में था। और जब ये चेक डैम बनाया गया धानुका कंपनी MPIDRDF के द्वारा, उसके बाद वाटर लेवल 200 से 250 फुट के करीबन हो गया। धानुका कंपनी गया बर्जिया को तो मान फायदा है, कुआं में पानी को नहीं, अब मजदूरी करा तो जो कमाओ सब टाइम पास हो, कोई मतलब को नहीं, पानी हो जाओ खेती कर ले तो सब कुछ फायदा हो जाओ मन। इस पहले हम 1-2 ही खेती कर पाते थे, अब 4-5 खेती हो जाती है। इससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाती है और क्या है कि बाहर कमाने नहीं जाना पड़ता, यहीं पे खेती करके गुजारा हो जाता है खूब अच्छा। मार कुआं में पानी होगो, बोरा में पानी होगो, और मार बकरी भैंस सब रखूंगी, अब काहे को रखूं, मार खेती खाली पड़ी है, सरसी बाँव से दाव मार दाव से। दानो कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे पहले फसल नहीं होया करती थी, अब फसल है ना अच्छी होने लग गई है। बढ़िया काम होगो साहब, खूब आपन तो गरराज का कुआं में पानी होगो जो सूखो पड़ियो छो। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों से विनती करते हैं, सिर्फ 22 मार्च को ही जल दिवस न माने, कि जो आज इस साल का विश्व दिवस जिसकी थीम है जल शांति के लिए, रोज आप अपने आसपास जहाँ कहीं भी जल की बर्बादी हो रही हो उसको रोकें। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध पेट्रोल के लिए नहीं होगा, जल के लिए होगा। मैं आशा रखता हूँ कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस मैसेज को जल बचाने के ऊपर और घरों के अंदर भी हम जल की बर्बादी रोकें, आप सब जगह सबके साथ पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, तभी भविष्य की जनरेशन के लिए जल हम बचा पाएंगे। धन्यवाद। In the heart of India, where fertile fields stretch wide, where the farmers nurture their crops with unyielding pride, amidst the lush green crops that sway and dance, stands a company that helps enhance the yield and quality of food produced on our land. Introducing Dhanuka Agritech Limited, established in the year 1980. Dhanuka Agritech Limited is part of the 56-year-old Dhanuka Group and is one of the fastest growing agrochemical companies in India. With our 3 fully equipped agrochemical formulation facilities, a new specialty chemicals plant, a state-of-the-art research center, 90+ products, 30+ warehouses and a pan-India distribution network of 6,500+ primary and 80,000+ secondary distribution channels, Dhanuka has been a leader in the growth of the Indian agrochemical market, touching the lives of more than 10 million farmers. As the world's 5th largest producer
and fourth largest exporter of agrochemicals, India is among the fastest growing markets for agrochemicals globally. Now the agriculture industry in India has emerged as a ray of hope, showing remarkable growth and resilience. It has also opened up new avenues for India as a global manufacturing hub. Our strong connection with the farmer is at the heart of everything we do. Building on this thought, we recently introduced the India Ka Pranam Har Kisan Ke Naam campaign, which pays tribute to farmers and acknowledges their invaluable contributions to our society. We embark on the synthesis journey with our pharmaceutical division, which was established in the year 1997 for the manufacturing of cephalosporin antibiotics. In 2005, we entered into a joint venture with Otsuka Chemicals Japan to manufacture advanced pharmaceutical intermediates. Our acquisition of Orchid Pharmaceuticals in 2020 has propelled our pharmaceutical business to more than double and now stands at more than $130 million. Orchid's US FDA, PMDA Japan, EU GMP and Visa Brazil approved facilities allow access to life-saving antibiotics exported out of India to every corner of the world. Now, Orchid is setting up a 7 ACA manufacturing facility which would make... Good afternoon, ladies and gentlemen. May I have your kind attention? I would request everybody to kindly take their seats. We are all set to go ahead with the proceedings of the next session. Good afternoon, ladies and gentlemen. Requesting everybody to kindly be seated. आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें जिससे हम अगले सत्र की शुरुआत कर सकें. हमारा अगला तकनीकी सत्र है on optimizing water resources through precision agriculture in a changing climate, AI and ICT perspectives. Ladies and gentlemen, this is going to be a very interesting session. And I would request everyone to kindly be seated. And we would now like to invite our eminent speakers on the stage for this session. May I invite on stage Shri Pramod Chaudhary ji, member MSP committee. Let's put our hands together to welcome Shri Pramod Chaudhary ji. जोरदार तालियों के साथ स्वागत. और स्वागत है डॉक्टर सुधीर सुथार जी का, असिस्टेंट प्रोफेसर CPS JNU. स्वागत करना चाहेंगे श्री विनोद आनंद जी का, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम. स्वागत है मिस्टर सुमित यादव जी का, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर लो टेक वर्ल्ड. और स्वागत है मिस्टर सुमित जी का, को फाउंडर फाइलो. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to this technical session 3 on optimizing water resources through precision agriculture in changing climate, AI and ICT perspectives. And I would now request Ms. Madhuri Dhanuka ji to kindly do the honors of welcoming our dignitaries by presenting them a floral bouquet. We welcome Shri Pramod Chaudhary ji. स्वागत करना चाहेंगे श्री प्रमोद चौधरी जी का एक फूलों के बुके से, मेंबर MSP कमेटी.
हार्दिक स्वागत है डॉक्टर सुधीर सुथार जी का, असिस्टेंट प्रोफेसर CPS JNU। स्वागत है श्री विनोद आनंद जी का, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम। स्वागत है मिस्टर सुमित यादव का, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर IoTech वर्ल्ड। सुमित यादव। Actually, he is Mr. Suraj from IoTech. And we welcome Mr. Sumit, co-founder Philo. Ms. Madhuri ma'am, very thank you to you. And now we go ahead with the proceedings. May I request everybody to kindly be seated. And we would request all our eminent speakers to kindly conclude their presentations or addresses in 10 minutes each. निवेदन है हमारे सभी माननीय वक्ताओं से कि अपने उद्बोधन या प्रस्तुतिकरण को 10 मिनट के अंदर खत्म करें। और आमंत्रित करते हैं पहले उद्बोधन के लिए श्री प्रमोद चौधरी जी को, मेंबर MSP कमेटी से। तालियों के साथ स्वागत श्री प्रमोद चौधरी जी। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंचासीन सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और इतना बड़ा ये सब कार्यक्रम जो करने के लिए माननीय श्री आरजी अग्रवाल साहब जी और सभी ये कार्यक्रम में जितने भी इसमें सहयोगी हैं और यहाँ आए हुए सभी विद्वत जन, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज ये वर्ल्ड वाटर डे, ये बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। भारत में आज यहाँ पर दिल्ली में इतने बड़े स्वरूप में इसको मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं अग्रवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये आज हमारे जैसे 140 करोड़ के जनसंख्या वाले देश के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास में, उनका हमको लंबे समय तक उपयोग करना है। पॉपुलेशन की अभी भी गति कम हुई है, लेकिन अभी भी बढ़ना रुकी नहीं है। आने वाला समय और भी कठिन आने की संभावना है। इतना सब देखते हुए हमने इतने पहले से आकलन करके और ये इस प्रकार के कार्यक्रम हम जो आयोजित किए कर रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में आभार के पात्र हैं हमारे पूरे समाज के लिए। ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत जैसे इतने हजारों साल की हमारी संस्कृति है, हम एक विश्व गुरु माने जाते थे, आज भी विश्व गुरु हैं हर दृष्टि से। बीच का काल जरूर आक्रांताओं का काल रहा है और लगभग हम 700-800 वर्ष हम पीछे रह गए। दुनिया की दौड़ में हम 700-800 वर्ष हम पीछे रह गए। अंग्रेज एक बात में जरूर सफल हुए हैं कि वो जाते जाते हमारे दिमाग में और ये बात भर के चले गए। हमारे यहाँ के पूरे जो नवयुवा हैं, जो पढ़ाई होती है उसमें उनके दिमाग में कूट कूट कर ये भर दिया है, वो एक हीन भावना भर दी है कि हमारे जो पूर्वज थे वो सारे के सारे बगैर दिमाग के थे। यूरोपियंस जब यहाँ आए, जो आक्रांत आए, उसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत चीजें हमने यहाँ के लोगों को सीखने को मिली है। बाकी यहाँ पर इनका कोई प्राचीन कोई इतिहास नहीं है। ये हमारे यहाँ के बच्चों के दिमाग में और पूरा बिठा के चले गए, एक हीन भावना से ग्रस्त हो गए। जबकि यहाँ की जनसंख्या किसी भी कीमत में कम नहीं है। हमारा 700-800 वर्षों का जो इतिहास जो हम पीछे रह गए थे,
पिछले केवल 75 वर्षों में हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने, हमारे यहाँ के विद्वज्जनों ने वो पूरा बैकलॉग पूरा करके आज हम दुनिया की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। सबसे पहला जो, अगर पानी की जो बात करते हैं हम, तो अनाज है। तो अनाज में आज सन 60 के दशक में ये स्थिति थी कि हमारे देश में केवल 45 करोड़ की जनसंख्या थी और हमको उनको खिलाने के लिए अनाज नहीं था। अमेरिका से एक अपमानजनक संधि की गई और जब वो संधि पे हस्ताक्षर करने की परिस्थिति आई थी तो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसमें हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब साइन तो नहीं किए, लेकिन यहां आकर के क्या मुंह दिखाएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या खिलाएंगे। तो उन्होंने यहां पर एक आह्वान किया था कि यदि हम प्रत्येक एक हफ्ते में यदि जो लोग खा सकते हैं वो यदि एक दिन का उपवास कर लें तो हम बची हुई जनसंख्या को एक समय का भोजन दे सकते हैं। उनका कद इतना ऊंचा था कि पूरे देश ने इस बात को माना और एक नेतृत्व क्या होता है उस दिन लोगों को पता लगा। पूरा देश ने हफ्ते में एक दिन उपवास रखा था और वो वर्ष हमने निकाल लिए थे। उस संघर्ष में हम पास हो गए थे और उसके बाद में इस देश के वैज्ञानिकों ने, इस देश के किसानों ने उनके आह्वान के ऊपर ये काम किया कि आज परिस्थिति ये है कि 3 गुना हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। इसके बाद भी आज उसी भारत में, और हम पूरे सारे लोगों को अनाज खिलाने के बाद में पूरे दुनिया को खिलाने की बात करते हैं। इतना बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ के किसानों ने और यहाँ के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। पानी के बारे में तो हमारे यहाँ पूरा, अगर हम देखेंगे, सारे पुराण से लेकर के, वेद से लेकर के सारी चीजें लिखी हुई है। हमने सारी चीजों की भविष्यवाणी की थी, क्या करने से नुकसान होगा ये भी बताया था। हमने उनका पालन नहीं किया, वो एक अलग बात है। आज एक बात जरूर है कि हम पानी को बचाने का जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी एक बात है और सारे स्कूलों से लेकर के जो हमारे यहाँ के बच्चे और उस बात को पालन कर रहे हैं। एक बात जरूर समझ में नहीं आती है या इस पे चर्चा भी नहीं हुई है कि हम जब पानी की बात करते हैं, पानी की कमी हुई है, ये बात भी सही है। पहले वाटर लेवल जो 30 फुट के ऊपर था आज 300 फुट के ऊपर चला गया, ये भी बात सही है। सवाल ये है कि इस पूरे एनवायरनमेंट में ये पानी गया कहां फिर आखिर? ये उपयोग पानी का तो यहीं का यहीं है। पानी ज्यादा से ज्यादा नदियों में जाएगा, नदियों से समुद्र में जाएगा, समुद्र से फिर एवेपोरेट होगा, पानी बरसात के रूप में फिर नीचे आएगा। तो पानी तो यहीं का यहीं होना चाहिए। फिर कहां पर अदृश्य हो गया ये पानी, क्यों आ गया? यदि हम इसमें अच्छे से हम विचार करेंगे तो हमको ऐसा समझ में आएगा कि ये कंजम्पशन जो है, ये जितनी पॉपुलेशन को बेयर करने की पृथ्वी की क्षमता है उससे ये जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी है। यदि हम 1950 के दशक में देखेंगे तो दुनिया की जनसंख्या केवल 2 बिलियन थी, 200 करोड़ थी। आज 750 करोड़ के ऊपर चली जा चुकी है। आने वाले समय में ये 900 करोड़ होने वाली, 9 बिलियन। अब रिसोर्सेज भी फिक्स है, जगह भी फिक्स है, फिर उसमें से हम कैसे कितना अनाज कितना बढ़ाएंगे और फिर इसको कैसे फुलफिल करेंगे? हर चीज केवल एक बार आदमी जन्म लेने के बाद में वो केवल जितनी चीजें हैं वो सब सारी की सारी पानी से रिलेटेड है। यदि पानी से खेती है, पानी से पीने का पानी है, पानी से इंडस्ट्री है, पानी से कपड़ा है, सारी चीजें पानी से रिलेटेड है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता तो हमें बहुत सारा पानी का सारा कैलकुलेशन यदि करेंगे तो आने वाला समय, आज समय हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको हमको ये सबसे बड़ा समस्या, हम जब यूएनओ की बात करते हैं सारी चीजें आती है, WTO में दस्तखत होते हैं, सारे देशों के ट्रेड यूनियंस के बारे में बात होती है, सारी बातें होती आज तक, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर कहीं कोई बात नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। क्यों इसको इतना सेंसिटिव बना दिया है? जबकि सबसे पहले ये केवल भारत का विषय नहीं है। ये भारत में ज्यादा हो सकती जनसंख्या, लेकिन जो आने वाले समय में 9 बिलियन की जो हम बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को ये पृथ्वी नहीं झेल पाएगी। चाहे जंगल हो, चाहे जो कुछ भी हो, हर चीज में उसी से रिलेटेड आ रहा है। तो हमको सबसे पहले ये विश्व स्तर के ऊपर, जैसा ये पानी का दिन मनाया जा रहा है, हमको जनसंख्या के बारे में भी दूरदृष्टि रखना पड़ेगी। और ये केवल भारत का विषय नहीं है, इसके लिए जो भी आवश्यक होंगे, और इसका नेतृत्व भारत कर सकता है, इसका नेतृत्व भारत को करना चाहिए। इसके ऊपर
जनसंख्या केवल एक भारत की समस्या हम ना माने, इसको धार्मिकता से भी ना जोड़ें। हम छोटी छोटी बातों को आजकल धार्मिकता से जोड़ दिया जाता है, ये एक फैशन हो गया है आजकल। हमको देश के सुख के लिए, आज हमारे पास में किसी बात की कमी नहीं है, बहुत एक अच्छा नेतृत्व आज दोबारा फिर से हमारे देश में तैयार हो गया है। लोग आज बहुत जागरूक हो गए हैं, इतना अवेयरनेस आ गई है और इतना ज्यादा देश प्रेम की भावना जागृत हो गई है। हमने देखा था छोटा मोटा जब एक कोई स्ट्राइक होता है, जरा सा कोई एक कारगिल युद्ध होता है, पूरे देश की जनसंख्या देश के साथ में खड़ी हो जाती, नेतृत्व कोई भी हो पूरे नेतृत्व के पीछे खड़ी हो जाती। बोलना पड़ता है कि नहीं हमको अभी आवश्यकता नहीं, अभी पैसा मत भेजिए, चाहे वो मंदिर का मामला हो चाहे कोई भी मामला। अभी हमने देखा जब ये जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल में भी हमने देखा यहाँ की जनसंख्या ने कितना ज्यादा कोऑपरेट किया है। आप कोऑपरेशन की बात यदि करें तो जितनी बड़ी पूरे अमेरिका की जनसंख्या है, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उन सबको जोड़ लीजिए, उससे ज्यादा जनसंख्या को तो देश मुफ्त में उनको अनाज फुलफिल करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, उतने लोगों को तो हम वैसे ही दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। इतनी बड़ी हमारी क्षमता कहीं दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय है। आज ये जो पानी का जो बात चल रही है, ये बहुत एक अच्छा विषय है। इनके ऊपर पूरा एक अध्ययन होना चाहिए और आने वाले समय में यूथ को भी इसके ऊपर जागृति बचपन से लाना पड़ेगी। हमको एक एक चीज के बारे में महत्व देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, वो उनको बताना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियर, दुनिया का जेनेटिक इंजीनियर हजारों साल पहले का है हमारा। जमदाग्नि के समय में हमने देखा है कि उस समय जब एक जो चुरू बना करके दिया था, तो उन्होंने ऋषि ने अपने एक पत्नी को दिया था और उनकी सास थी, उनको भी कोई बच्चा नहीं था, वो एक राजा की कन्या थी। तो उन्होंने बना करके वो 2 अलग अलग खीर के रूप में उनको दिए थे और उनको कहा था कि इसको लीजिए। लेकिन वो जैसा एक रहता है, एक मानवीय स्वभाव रहता है, वो चले गए वहां जंगल में और जंगल में जाने के बाद में उनके क्या किया, वो सास ने उस खीर के बाउल्स को बदल दिया। उनको लगा कि शायद इन्होंने पत्नी के लिए कुछ स्पेशल बनाया होगा, तो उन्होंने वो बाउल्स बदल दिए और ले लिया, उन्होंने खीर का ग्रहण कर लिया। जब वो वहां से ऋषि लौट के आए तो उन्होंने बता भी दिया कि मैंने ऐसे ऐसे बाउल्स थे, तो मैंने वो बाउल्स हमने बदल दिए। वो ऋषि ने कहा था कि नहीं, इसमें जीन्स तुम्हारे हिसाब से डले थे और उनके हिसाब से उनके जीन्स थे, उनके क्षत्रिय जीन्स थे। तो उन्होंने कहा था कि इसको वैसा वैसे कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम नहीं कर सकते, हम इसको आगे एक जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर वहां से जमदाग्नि का जन्म हुआ, परशुराम का जन्म हुआ था और वहां पर विश्वामित्र का जन्म हुआ था। इतना हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना डेवलप्ड था। ये सारी बातें आज हम चर्चा में लाए हैं। आने वाली जनरेशन को ये सारी बातें जब बताएंगे तो ये पानी की नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या से हम निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ विद्वत जनों की कोई कमी नहीं है, हमारे की क्षमता की कोई कमी नहीं है। बस जो कमी थी वो हमारे अग्रवाल साहब ने यहाँ पूरी कर दी है। इस प्रकार के आयोजन, ये बहुत एक अच्छे आयोजन किए जा रहे हैं। मैं इसके प्रति धन्यवाद देता हूँ और सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय। हार्दिक धन्यवाद सर। और अब आमंत्रित करते हैं अगले उद्बोधन के लिए डॉक्टर सुधीर सुथार जी को, असिस्टेंट प्रोफेसर CPS जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर सुधीर जी। A very good afternoon, ladies and gentlemen. Firstly, thank you so much, Agrawal ji, as usual, for inviting me here, and my dear friend Binod for having me here. It's a pleasure always to be part of such gatherings where we sit and discuss some of the critical issues of our times. I would like to be bilingual, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलने की कोशिश करूंगा, तो टाइम थोड़ा डिवाइडेड रहेगा उसी में।
पिछले कई सालों से जब से बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई है, हम लोग बहुत सारे टुकड़ों में इश्यूज पर बात करते हैं, जैसे कि पानी की बात हो, बीज की बात हो, या खेती एक अलग सेक्टर के रूप में बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो। एक बड़ा सवाल जो एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में, एक एकेडमिशियन के रूप में हमारे सामने है, जो पिछले सेशन में एक स्पीकर ने उसके बारे में बात भी की कि इन सब मुद्दों को एक साथ हम लोग इंटीग्रेटेड मैनर में किस तरह से देखें। So in the past few decades we have been talking about different issues in segments, and the big challenge is how to look at these issues in an integrated manner. So today what I am going to talk about such an issue which has received a lot of attention in various committee reports in the last 2 decades, but when it comes to practice this issue continues to remain at the margins. So जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पिछले 20 सालों में अलग अलग कमेटीज ने बार बार बात की है, लेकिन फिर भी अगर नीतिगत तौर पर देखें तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं हाशिए पर है, और वो इशू है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसके बारे में, जिसका जो मेन पर्पस है वो है टेक्नोलॉजी और फार्मर्स या दूसरी कम्युनिटीज को कैसे एक कन्वर्ज्ड फैशन में वो एक साथ काम करें। One major objective of agricultural extension service concept is how to bring different issues concerning agriculture, people, communities, and how to understand it in a more integrated manner. Now I have shown here a Hindi newspaper clipping which I just collected a few days ago from Rajasthan, my hometown in North Rajasthan, Hanumangarh. And if you look at this, it is actually showing that how there were people who were selling spurious drugs in the name of controlling problems in cotton production. And farmers had shown their wisdom and they caught hold of these people, and they were handed over to the agriculture department, and later on they were handed over to police. And the agricultural officials, police and people worked in a very coordinated manner and finally caught hold of an entire group which was functioning in the area and selling some of these drugs which were being sold in the name of increasing production and so on. Now, this problem may look like a separate problem from the issue of water. Is it actually? It is not. Why? Because the clipping which I am showing you, it may only talk about a particular crop, cotton, but actually it also shows the way farmers engage with the issue of technology and the way they look at agriculture. Now, I would like to mention that in the past 2 decades, 3 major committee reports, whether it is Guru Committee report, whether it is Swaminathan Committee report, or Prime Minister Committee on doubling farmers' income report, especially the last report on doubling farmers' income, they all had a section which had emphasized that unless we bring coordination, integration through extension services, whatever questions we are addressing, be it agricultural production, be it marketing, be it distribution, water and so on, none of this actually can see the light of the day. Now, if you look at the real policy implementation aspect, and the Prime Minister's Committee on Doubling Farmers' Income few years ago only highlighted that how this aspect of Dalwai Committee. It was the committee regarding doubling farmers' income. Yeah. So I just wanted to show you the existing structure of extension services in India. It has developed largely in the last 3 decades from state level, district level to national level, and committees like Samiti, Atma, or Agriculture Officers Association, we have Farmer Friends, and finally an institute like Manage, which works on agricultural extension services. And despite that, the extension services continue to remain at extreme margins, and one of the example of this kind of marginalization is how schemes meant for efficient usage of water in agriculture, especially micro irrigation facilities, they continue to remain unexplored. And this is just a graph which I got and I'm just sharing it, which shows that how
the micro irrigated area coverage in most of the states remains extremely low. If you look at the green tabs, it shows as compared to the blue tag, and blue tag shows the net irrigated area, whereas the MI coverage is extremely low. In fact, in most of the cases, it is less than 3 to 4% of the net irrigated area in states. Now, this particular graph which I had shared, it belongs to the Irrigation Association of India's recent conference, where they had talked that the total net irrigated area of 72 million hectares, only 7.8 million hectare is covered by micro irrigation facilities in India. Now, why there is a gap between this micro irrigation system and the irrigation agriculture facilities in India? And one of the reasons behind it is the existing gap between extension services and farmers. Recently, 2 years ago, there was a report which was made public by the Government of India about the situation of agriculture, and you will be amazed that the report had highlighted that only 12% farmers go to KVK or the government agencies to seek technical assistance. More than 30% farmers actually look up to their friends and relatives or neighbors or other community members while seeking such help. Only 2.5% farmers have an access to private sector or market entities to look for support in accessing different technologies in agriculture. Now, the report had actually flagged this existing gap, that despite Government of India focusing on KVK, India having a wonderful network of agricultural universities, our extension services are not reaching to the farmers. तो किसान और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज के बीच का ये जो गैप है, जिसका मैंने माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज के सेंस में बात किया, उस गैप को फिल अप करने के लिए किस तरह के कदम हमें उठाने की जरूरत है। और एक टर्म जो मैं इसमें लिख नहीं पाया, जिसको मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि शायद हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से आगे उठकर रूरल एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में सोचने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे केवीके ऑफिशियल्स और एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स से अपने डिस्कशंस में ये बात सामने आई कि इन ऑफिशियल्स और पंचायत एजेंसीज के बीच में एक गैप है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट फाइनली रिफ्लेक्ट होता है एक साइलोस के रूप में, जहां पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक अलग फील्ड में काम करती हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो जिनको कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को सपोर्ट करना चाहिए, वो एक अलग फील्ड में काम करते हैं। तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड फैशन कैसे हो, उसका एक सॉल्यूशन जो है विच आई वांटेड टू प्रपोज इज टू हैव रूरल एक्सटेंशन सर्विसेज विच कुड एक्चुअली फिल अप दिस गैप बिटवीन फार्मर्स एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और हाईलाइट करना जरूरी है, जिसके बारे में खास तौर से पिछले 15 से 20 सालों में एक तरह का कंसेंसस बना है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दी जाएं और उससे वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे एग्रीकल्चर में ये डिबेट बार बार आती है कि स्टेट और गवर्नमेंट का क्या रोल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, I would like to propose that there is a need to have a balanced view in offering agriculture or rural extension services where state has a major role to play. Most of the states have either not been recruiting agricultural officials or have not been having staff which works on extension services. Couple of states where extension services are in a good shape are Punjab and Haryana, whereas we know even these good so-called good states have a very poor extension services. So I would like to request this August gathering to think about extension services as a model to resolve the problem between trust, technology, agriculture and farmers. I would like to conclude. Thank you very much. Thank you. Thank you very much indeed, sir. And we would now like to invite Shri Binod Anandji, Executive President, World Cooperative Economic Forum, to kindly address the August House. Let's welcome sir with a round of applause, please. Yeah, will not take more than that, for sure.
खाना खाने के बाद सबसे पहले आप लोग थक गए होंगे, खाना खाते खाते लोग थकते हैं, तो थोड़ा नारा हो जाए। मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे बड़े भाई प्रमोद जी नारा लगवाएंगे, तो एक बार हम सब प्रेम से बोलेंगे गंगा मैया की। मैं बोलूंगा, आप बोलिएगा जय गंगा मैया की। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। खाना इतना अच्छा हमारे चेयरमैन साहब ने खिलाया, आपको कस के आवाज आनी चाहिए, लगे कि ये आवाज सच में गंगा मैया के पुत्रों की है। गंगा मैया की धन्यवाद। हमारा जो सेशन है अभी ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो मैं अपनी बात वहीं पे रखूंगा और उसके आसपास वाटर फॉर पीस का जो ये थीम रखा गया है, यानी कि पानी किस प्रकार से शांति का रूप ले सकती है, इस पे अपनी बातचीत रखूंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं प्रधानमंत्री जी की कमेटी में भी हूं और माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, तो दलवाई कमेटी कभी भी प्रधानमंत्री जी की कमेटी नहीं थी। वो सारे देश में, पूरे देश में प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सारी कमेटियां बनाई जाती है। वो कोई हाई पावर कमेटी नहीं थी, वो दलवाई कमेटी थी। अशोक दलवाई एक बड़े साइंटिस्ट थे जो NRRA से सुपर एनवेट हुए। तो ये और उसमें जो वॉल्यूम्स दिए गए, उसमें एक्सटेंशन के अलावा पूरी अभी तक की भारत की कृषि व्यवस्था की जो बात थी उसकी बात रखी गई थी। तो ये मैं पहले इस पे जवाब देना चाहता था। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि व्हेन वी यूज वाटर, so we all have discussed since morning about everything, and it was well explained that why in Rabi water utilization is more than that of the Kharif crops. And India is a land where everybody, all of us, 4.5 ton per capita is a cereal production, and around 5 ton is a fruit and vegetable production. And we all know that the water budget and the kind of crop and the diversification which we are doing and the aiming for. When we aim for the crop diversification, it means that from water juggling crops, we need to go in a different way. So firstly, I will put 5 filters for the all policy level thing and the way we are thinking about the water and water for peace. The first filter, it should be what our committee chairman also speaks. Pramod ji must be aware of that. It should be farmer centric. So is the, whatever the policy, water for peace, the globe has given us task to think now in the place where the world is going from with a 6.4%, we are going 6.4% per annum, the growth. It means that we are world largest grown economy. And it is not the CSO Sahab had said, it is not the MOSPI had said, it is the United Nations has said. So why water for peace was theme in this year, I do not understand. First thing. Second thing is that what we must think about in this whole era of discussion is water is really that kind of challenge for us. हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम पंच तत्व से बने हैं, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जल है और जल के बगैर हम रह नहीं सकते। तो ये समय जब हम विश्व के वैसे समय पे हैं जब दुनिया में हर जगह जो भी आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत हो रही है उसमें हमारा योगदान बहुत ज्यादा है, या वो गूगल हो या वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो जो आईटी के प्लेटफॉर्म पे खास करके आईसीटी पे एक नई रूपरेखा रख रही है। और जिस प्रकार से हम अपने डेटा साइंस को अलग कर रहे हैं, अभी आप लोगों को जान के आश्चर्य भी होगा, रिसैट-1 एक सैटेलाइट था जो अभी तक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता था। पिछले वर्ष रिसैट-1A का एमओयू हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एग्रीकल्चर ने सबसे पहले एमओयू किया। तो आज हम रिसैट-1A का डेटा हम ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो जो कृषि विभाग पहले स्कीमें बनाती थी, IRI पूछा था, ICR के बहुत सारे हमारे 115 के आसपास साइंटिस्ट थे, विभाग था, सभी लोग मिलके लगते थे, वो डेटा 2001 का यूज करते थे। यानी कि पानी कैसे चल रहा है इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। सो देयर इज अ पोर्टल नाउ थ्रू विच you can coordinate the things, you can find out the data intelligence and all those things. That's the first initiative which need to be appreciated at this moment when we are talking about the watershed management and water deficit and all those things. The next most important thing is that our Prime Minister has given a clarion call to bridge this gap. जो वाटर का हमारा टेबल नीचे जा रहा है उसको ऊपर करने के लिए, and it is an integrated effort. आप पानी का बचाव, वाटर का जो सेविंग है, आप अलग किसी कंपार्टमेंट पे कंप्यूटराइज करके या फिर अलग हट के किसी एक
तरीके से आप नहीं कर सकते, इंटीग्रेटेड एफर्ट है ये। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका भी उतना ही बड़ा रोल होगा। जो ये प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी की बातचीत हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 12 कुल मिला के पानी से संबंधित हैं और पानी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करने का जो प्लान था उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, हर जिले में 75 तालाब होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो बजट बना, जो 15वें वित्त आयोग में बना, सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया गया जितना आज तक के इतिहास में कभी भी एक जिले को नहीं दिया जाता था। तो आज की तारीख में एक पंचायत के पास इतना पैसा है जो फाइनेंस कमीशन ने उनको दिया हुआ है। अगर वो करना चाहें तो राज्य सरकारें बहुत सारी है और एक अलग केमिस्ट्री है गांव की, एक अलग केमिस्ट्री है सरपंच साहब की, तो वो एक अलग चीजें हैं उसमें। लेकिन वित्त की, पैसे की कोई कमी कहीं नहीं है ग्रास रूट पे खर्च करने की, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा जाता है कि एक्सटेंशन बड़ा एक विचित्र चीज है, एग्रीकल्चर का नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट सोइंग द सीड एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप, इट्स अ कल्चर। तो आप ऐसे इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, हर गांव में कम से कम सरकार के 5 से 7 लोग होते हैं, आशा वर्कर भी होती हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और उस तरीके से आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे लोग अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको इंटीग्रेट किया गया है। तो आज की तारीख में आप 2.5 लाख पंचायत में कौन कौन से 5 लोग हैं, सरकार में सभी लोग एक माउस क्लिक पे एक जगह रखते हैं। दिस इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द वाटर सेविंग थिंग। आज की तारीख में पानी कैसे चलता है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 75 जो पॉन्ड्स बने हैं वो सब कुछ अवेलेबल है, उसमें पानी का लेवल कहाँ जा रहा है, पानी किस प्रकार से उसके आसपास का वातावरण है, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, वहाँ की एक इकोलॉजी कैसी है। जैसे हम वनराई में वनराई बंधारा बनाते थे, वनराई बंड बनाते थे, ईजीएस स्कीम में जो शुरू हुई थी। पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे पूरी हैप्पीनेस बदल जाती है, वहाँ की केमिस्ट्री बदल जाती है। एंड दैट इज वाटर इज फॉर पीस, वाटर इज फॉर हैप्पीनेस। सो इफ देयर इज एन वाटर हैप्पीनेस इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड, हमारे लिए उसका भी मसाला पूरा उपलब्ध है, डेटा उसके लिए पूरा उपलब्ध है। ये हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से आगे ले जाएं, जैसे अब यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं और बाकी चीजें हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने पिछले वर्ष पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा था और 2021 में जहां मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला था, 2020-22 में भी गया था और 2021 में भी जब उन्होंने उसकी तैयारी कर रहे थे। तो दिस इज ए डिप्लोमेटिक टॉक, दिस इज ए डिप्लोमेटिक डिबेट। इस देश में पानी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि मैं बिहार से आता हूं, बिहार बाढ़ से डूबता है, गंगा नदी का जल स्तर अभी तक, तो अगर जो हमारे वाटर एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बता दें, अभी तक गंगा नदी का जल स्तर 1 सेंटीमीटर भी ऊपर ऑन एन एवरेज नहीं हुआ। लेकिन उसकी जितनी हेल्पिंग रिवर्स हैं उनको डैम करके, जो डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें उस डैमिंग की वजह से पूरा बाढ़ आता है। तो कुसहा डैम टूटना या जो भी सारी चीजें होती है, कई ट्रीटीज ऐसी हुई जैसे काली रिवर ट्रीटी, अभी तक वो रिवाइज नहीं हो पाई। बरसात हो नेपाल में, डूबे बिहार, सो दिस इज वाटर फॉर पीसेस। और उसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, जो सैटेलाइट थे। तो अभी क्या है कि दे कैन मेजर इट हाउ वाटर फ्लोज, वेयर द वाटर विल गो। तो जो राज कपूर साहब गाना गाते थे कि तोहरे गांव मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, प्रमोद जी ध्यान दीजिएगा, आपके समय का गाना है, तोहरे गांव मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो आज की तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पास ऐसा डेटा है कि पानी कहाँ से चलता है और कहाँ पहुंच रहा है, उसका एक पूरा तंत्र है, उसकी एक पूरी मेजर करने का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप अपने मोबाइल से, कोऑर्डिनेट से आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो बस मैं इतनी बात कहूंगा। और पीस एक ऐसी चीज है कि पीस तभी होगा जब आप पावरफुल बनेंगे। कोई कमजोर आदमी कोई शांति का समझौता नहीं कर सकता। तो जब तक हम पावरफुल नहीं होंगे, हम अपने पानी की शक्ति को समझेंगे नहीं, और यानी कि हाइडल एनर्जी को टैप नहीं करेंगे, पानी के बहते हुए रुख को उसको वेलकम नहीं करेंगे, पानी कैसे बहता है वो नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए हमारे चेयरमैन साहब ने, ग्रुप चेयरमैन साहब ने, एक बड़े मनीषी थे, उन्होंने बहुत पहले सोच लिया, 2005 में सोच लिया, और उस समय के जो सबसे बड़े फिल्म स्टार थे उनको लेके आए और कहा पानी कैसे चलता है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अपना मंत्र बनाया है। थैंक यू वेरी मच। मैंने 40 सेकंड बचा लिए जवाब देने के बाद भी। सो दिस इज द बजट ऑल्सो, द टाइम बजट ऑल्सो हैव अप्रूवन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से अगर आप लोग सभी लोग नर्मदा मैया की जय कह देंगे तो बड़ा अच्छा होगा।
गंगा से नर्मदा की तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर से कहें, नर्मदा मैया की। पीछे से आवाज आई। दूरदर्शन से हमारी जो 10 साथी आए हैं, उन्होंने आज ये संकल्प लिया है कि वो पानी के ऊपर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाएंगे और कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटर्स करेंगे। यानी कि जो कोऑपरेटिव्स हैं बाहर के, वो पानी बचाने वाले जितने कोऑपरेटिव हैं, वो किस प्रकार से आपस में समन्वय करके उस पर काम करेंगे। इस पे अशोक राणा जी सुबह से यहाँ 10 लोग बैठे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हार्दिक धन्यवाद सर। तो अब आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर सूरज कुमार जी को, जो कि स्ट्रैटेजी लीड हैं आयोटेक वर्ल्ड से, और ये प्रेजेंटेशन देंगे हमें यूजिंग ड्रोन एंड इट्स इफेक्टिवनेस पर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री सूरज कुमार जी का। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर हैविंग मी हियर। विनोद सर, आपके जितना अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बोर है बिकॉज इट हैज़ सम नंबर वर्क एंड सम कंसेप्ट्स. I will try to explain it to everyone. But before going into the presentation, so yesterday I was having a discussion with Sushil, and Sushil told me that Dhanuka is sensitizing people on saving water since 2005. So I want to give gratitude to the Dhanuka for sensitizing the whole India on such a big level, inviting policymakers, inviting companies, inviting many stakeholders for sensitizing, for saving water. Okay. So, want to state a fact. An average individual consumes 2 liters of water in a day. And the food he eats, it takes 3,000 liters of water to produce that food. Around 70% of the freshwater withdrawals goes into the agriculture. So now coming to the drones part. So basically, we can save water in agriculture through 3 ways by using drones. Number 1 is spraying through drones. Number 2 is identifying the right stage of spraying by drones. And number 3 is planning and maintenance of irrigation system in farms. So the number 1 thing, water reduction in spraying. So if we are using the traditional ways of spraying, then it takes around 150 liters to 200 liters of water in 1 acre of land. And if we are using drones, it takes only 10 liters of water. Water saving is 95%. Then there are some big crops like sugarcane. It consumes 500 to 1,000 liters of water in an acre of land if we are spraying. And if we are using drones, it takes only 10 liters. So the water saving is 98 to 99%. Now I have tried to do some number work. Obviously, it is boring. Let's take example of Chile, in which number of sprays are very high. And chili is a kind of crop in which the business case of drone is very good. Chili crop will see a very quick adoption of drones in the near future. So vegetative stage of chili requires 7 sprays. Maturity to harvesting stage require 18 spray. So, some calculations are there on the screen. So 4,750 liters per acre can be saved. And total area of chili in India under cultivation is 18.35 lakh acre. So here the potential of water saving is 8.7 billion liters of water. That is equivalent to giving water to a tier 4 city having a population of around 2 lakh people around the year. And it is only one crop. Let's take example of another crop. Sugarcane is also a very potential crop for the drone adoption. Sugarcane crop has seen a very good drone adoption,
in the recent times, and it is bound to grow a lot in the near future. In sugarcane crop, in one spray, 500 liters of water is required. And if we are using drone, only 10 liters of water is required. On an average, 4 sprays are done in sugarcane. So here, the potential here is 1960 liters per acre. And in India, a huge area is under sugarcane cultivation. It is 14.71 million acres. So here, the potential is around 28 billion liters of water. So it is equivalent to 4 Tier 4 cities water requirement around the year. These are some number work at the pan-India level. Obviously, it is, a lot of extension activities are required, Sudhir sir, for the drone penetration. And startups and agrochemical companies are working very hard for the awareness of the drones. The gross cropped area of sugarcane is, the gross cropped area of pan-India is 486.3 million acres, assuming 200 liters of water required in a conventional spray. By these calculations, we will be able to save around 646 billion liters of water. That is equivalent to water required for the Delhi population for 150 days, or water requirement of Hyderabad for approximately 450 days, assuming an individual uses 135 liters of water in a day. So that was point number. Point number 1. Point number 2 is, with the help of this survey drones, we can identify when to apply irrigation and how much irrigation to apply, and at which particular plot of the field, how much irrigation should be given. So this is possible through the multispectral cameras and the thermal cameras. These cameras are mounted on the drone. Multispectral camera will be able to identify the crop stress which is happening in the plant before the plant is showing the visual symptoms. Thermal camera can be used for identifying the moisture level of the field, and weather forecasting data is very easily available. Now it is very easy, if we have these 3 data, it is very easy to schedule the irrigation. Now we know in which plot of the field, how much water needs to be applied, and at what stage it needs to be applied. The next way is planning and maintenance of irrigation systems and farms. So if the new irrigation system is being designed, then finding the gradient of the field is very easy using drones. The gradient can be planned, it can be analyzed for better drainage and water retention, especially for the perennial crop. So there are crops like tea, which have a life of 100 years. And there are some orchards having a life of 15 years or 20 years. And if some farmer is planning to have those kind of an orchard, if the planning is done through drones, then a very good amount of irrigation water can be saved. Planning the gradient of irrigation canals as well, so that we can identify the natural slopes and water can flow easily. Moreover, there are many leakages in the current irrigation structures, which may be which may result into as high as wastage of 20% of the water. We can save all those if we are using drones in our planning. That's it. Thank you very much for having me here. Thank you. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, for the final presentation of this session, I would like to invite Mr. Sumit, co-founder, Philo, and he would be presenting on use of precision AG.
हेलो, धन्यवाद सबसे पहले चेयरमैन साहब का हम लोग को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो मेरा नाम सुमित है, मैं को फाउंडर हूँ फाइलो का। फाइलो एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर कंपनी है बेंगलोर बेस्ड। तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव 3 रीजन्स व्हाई यू शुड लिसन टू मी or why I deserve these 10 minutes of yours. First of all, I am from southern part of Haryana, जो राजस्थान के bordering area है, and this water scarcity I have seen since my childhood. So हम लोग के यहाँ तब से स्प्रिंकलर है, जब काफ़ी सारी कंट्रीज में स्प्रिंकलर या इरिगेशन के लिए टेक्नोलॉजीज यूज नहीं होती थी। तो बचपन से हाउ वाटर इज क्रूशियल एंड हाउ इट शुड बी सेव्ड, आई हैव सीन दैट। सेकेंड इज आई एम कमिंग फ्रॉम बेंगलोर, सो बेंगलोर का वाटर स्कैसिटी आप सभी लोगों ने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा। तो आई हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड इन बेंगलोर ऑल्सो। थर्ड इज आई एम वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप फ्रॉम लास्ट 4 years, जहाँ पे हम लोगों ने 70 बिलियन लीटर पानी बचाया है अभी तक फ्रॉम 10,000 फार्म्स इन इंडिया। तो दैट्स व्हाई आई फील यू शुड लिसन मी आउट फॉर नेक्स्ट 10 minutes. This one? Okay. Just the play. Okay. So here are some data points. आप लोगों ने सभी लास्ट ईयर चेन्नई के बारे में सुना होगा, दिस ईयर बेंगलोर के बारे में सुना होगा। Our cities are running out of water. इनफैक्ट डेटा है कि 2030 तक हमें जितना पानी चाहिए उससे आधा ही पानी हमारे पास होगा टू कंज्यूम, राइट। लेकिन फ्रेश वाटर का जो यूसेज है वो मोस्टली सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इफ़ एनीबडी हैज़ टू सेव वाटर, इट हैज़ टू बी इन एग्रीकल्चर। आप घर पे पानी बचा सकते हैं, बाकी जगहों पे पानी बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चर में यूसेज होने वाला पानी नहीं बचाया तो यू विल स्टिल बी लैकिंग द वाटर इन दिस कंट्री एंड विल फेस ए क्राइसिस। तो क्या डेटा है कि हम लोग ओवर इरिगेट कर रहे हैं? हाउ आर वी श्योर दैट द इरिगेशन दैट वी आर डूइंग इट्स ओवर देन व्हाट इट शुड बी डन? तो एक तो सीधा सीधा डेटा पॉइंट्स है कि काफ़ी रिसर्च ड्रिप कंपनीज या डिपार्टमेंट्स या सब लोग कर चुके हैं कि अराउंड 50 to 60 to even 80% ऑफ वाटर सेविंग कैन बी डन विद एन यील्ड इंक्रीज यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन, राइट। तो सीधा सीधा एक है कि अगर हम यील्ड बढ़ा सकते हैं और पानी कम यूज कर सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। दूसरा है, हम जो पानी दे रहे हैं ओनली पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वो पानी जब आप जब फार्मर्स ओवर इरिगेट करते हैं, काफ़ी सारे डिजीज पेस्ट उससे अटैक होते हैं, काफ़ी रूट रिलेटेड डिजीज हैं जो फार्म्स में आते हैं। इनफैक्ट मॉनसून पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज वी आर ओवर इरिगेटिंग। तो ओवर इरिगेशन एक फार्म तक लिमिटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो इट्स गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी एज ए होल, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द क्लाइमेट एज ए होल। उसका काफ़ी रिसर्च उसके बारे में हो चुकी है। नाउ जो फार्मर्स ड्रिप यूज करते हैं, इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि वो लोग भी ओवर इरिगेट करते हैं। इनफैक्ट इफ यू सी द डेटा, हम लोग सारे हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के साथ काम करते हैं, मोस्टली ड्रिप इरिगेटेड फार्म्स होते हैं। उसके बाद भी ऑन एन एवरेज 37% मोर वाटर यूसेज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू इज सेव अप टू 40% ऑफ वाटर यूसेज। इनफैक्ट कुछ क्रॉप्स में जहाँ जैसे जो न्यूली ड्रिप अडोप्टेड क्रॉप्स हैं, बनाना जैसे, वहाँ पे 60% तक हम लोग पानी बचा पाए हैं। सो इट्स नॉट ओनली प्रॉब्लम ऑफ हैविंग द ड्रिप इरिगेशन बट राइट वे टू यूज इट। दैट्स वेयर द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय फाइलो कम्स इनटू हैंडी। तो हाउ डज इट वर्क इज, हम लोग डिवाइसेस डिप्लॉय करते हैं फार्म्स पे। दी डिवाइसेस कंटेन वेरियस सेंसर्स, सम सेंसर्स आर बिलो द सोइल, सम सेंसर्स आर अबव द सोइल। बेस्ड ऑन दिस डेटा वी हेल्प फार्मर्स टेक प्रिसाइज डिसीजंस on when to do, what to do on his farm। कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कौन सी बीमारी आने के चांसेस हैं, कब आपको स्प्रे लेना है, ये हम उसको मोबाइल पे उसकी एकदम इजी लैंग्वेज में, कन्नड़ा में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज फार्मर समझता है, जिस प्लेटफॉर्म पे समझता है, अगर उसको ऐप की बजाय उसको SMS चाहिए, उसको IVR कॉल चाहिए, तो एनी प्लेटफॉर्म दैट ही अंडरस्टैंड्स एंड द वे दैट ही अंडरस्टैंड्स वी प्रोवाइड दिस डेटा टू फार्मर्स। और इसका रिजल्ट क्या है कि पिछले 5 सालों में हम लोग 25% प्रोड्यूस बढ़ा पाए हैं फार्म्स पे जहाँ पे हम लोग काम किया है, और 80% ये प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। तो 80% ऑफ फार्मर्स हैव बीन एबल टू एक्सपोर्ट द प्रोड्यूस इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ग्रो, एंड दिस हैज इम्पैक्टेड इन देयर इनकम बाई 30%। तो एक सर बोल रहे थे कि माइक्रो इरिगेशन का एडॉप्शन क्यों नहीं हो रहा।
क्यों होगा? आप फार्मर को आप बोलो कि पानी बचाने के लिए 20,000 रुपए खर्चा कर दो, क्यों करेगा? कोई नो सेन पर्सन विल डू, राइट? बट इफ यू आर एबल टू शो, इफ यू हैव इनफ डेटा एंड उसके बगल वाले खेत में आप दिखा दो कि यार आप अगर ड्रिप लगा रहे हो तो आपकी इनकम जो है, आप जो 20,000 डाल रहे हो, आपको एक साल में उसका 50,000 होके मिल जाएगा, देन इट मेक सेंस फॉर एनीवन टू डू, राइट? तो ये फार्मर पे बर्डन ये नहीं होना चाहिए कि आप पानी बचाओ और इसके लिए आप ड्रिप लगाओ, बल्कि आप ड्रिप लगाओ, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, वो डेटा उसके लोकल फार्म या उसके पड़ोसी के फार्म में उसको दिखना चाहिए. That's how it will work. And obviously the water saving has been 35% on this. एक जर्नी है, ये एक ग्रेप फार्मर है नासिक के. तो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था 2019 में, देन वी डिप्लॉयड दिस डिवाइस टू हिज फार्म. पहले उनकी जो यील्ड थी वो 10 टन थी और एक साल के बाद फाइलो यूज करने के बाद इट वेंट अप टू 13 टन, और जो 6 टन वो एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, वो उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी वेंट अप टू 10 टन. तो उनका 40% एक्सपोर्ट बढ़ा, उसकी वजह से जो उनकी ओवरऑल इनकम है वो करीब करीब डबल हो गई. और ऑल दिस वाइल सेविंग हिज एफर्ट दैट ही यूज्ड टू गो ऑन द फील्ड एंड चेक इट, प्लस जो पानी दे रहे थे उसमें 33% का रिडक्शन हुआ. So that's how we have been able to do this now at 93,000 plots. 7,000 से ज़्यादा हम लोग फार्मर्स के साथ काम करते हैं, और पिछले 5 साल में हमने 70 बिलियन लीटर पानी बचाया है. तो जैसे सूरज बोल रहे थे कि 28 बिलियन पूरे देश में ड्रोन लगा दोगे तो बच जाएगा, हमने 10,000 फार्मर्स पे 70 बिलियन बचा दिया अभी तक 5 साल में. सो द वाटर यूसेज इन एग्रीकल्चर कैन बी ब्रॉट टू ड्रास्टिकली डाउन. और दूसरा है कि इसके साथ साथ हमारे जो 100% फार्मर्स हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले स्टार्ट किया था, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू सब्सक्राइब टू अस. तो दे पे अस ऑन अ ईयरली बेसिस फॉर दिस डिवाइसेस एंड द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड. तो 100% अभी तक रिटेंशन है. इसका मतलब वो फार्मर जो 5 साल पहले आज से स्टार्ट किया था, आज तक फाइलों के साथ जुड़ा है, और उसकी जो इनकम है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है. एंड वी हैव डन दिस एट अराउंड 35,000 acres now across the country, starting from the apples in Jammu Kashmir to Andhra Pradesh, Guntur, Chili region. We are present across the country and have been doing this for last 5 years. So there's a video, if you could play. Can you play this? ओके, ठीक है, नो इशू. सो दैट्स वाई अगर आप वही जितना पानी हम लोग ने बचाया उसी को लेंगे तो बेंगलोर की वाटर रिक्वायरमेंट्स अगले 5 महीने के लिए पूरी हो जाएंगी. तो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा वाटर, यू जस्ट नीड टू सेव दैट वाटर दैट वी हैव डन ऑलरेडी. सो नाउ वी कैन इमेजिन द इम्पैक्ट इफ दिस हैपन्स अक्रॉस द कंट्री, राइट? सो अगर हम पूरी कंट्री के जितने भी फार्म्स हैं उन पे इमेजिन करें कि ऐसे डिवाइसेज या ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, तो आवर यील्ड विल गो अप 35%. जो आज हम जो फार्मर आज कमा रहा है उसका 40-50% ज़्यादा कमा पाएगा. विल बी एबल टू सेव द 50% वाटर यूसेज इन एग्रीकल्चर, राइट? और फिर हम ये पानी की शॉर्टेज की या वर्ल्ड वाटर डे शायद मनाने की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज विल हैव द इनफ वाटर. क्यों बात करें जिस चीज़ की वो हमारे पास जो इनफ अवेलेबल है, राइट? सो माई आस्क टू एवरीवन प्रेजेंट हियर इज, जैसे धानुका ने Dhanuka has already been a part of Philo's journey from last 4 years. They have been collaborating with us to take these devices to more and more farmers. So जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री के लोग इस सभा में हैं, मेरा सभी से यही है कि जितने भी लोग इंसेंटिवाइज कर सकें फार्मर्स को टू अडॉप्ट दिस डिवाइसेस, मे बी थ्रू कोलैबोरेशन, थ्रू एनी अदर सब्सिडी और एनीथिंग दैट दे कैन डू, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन हैंड्स. थैंक्स अ लॉट. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. Let's once again put our hands together for all our eminent speakers. एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं सभी हमारे वक्ताओं के लिए. और मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे दोबारा श्री M.K. धनुका जी को. आपसे निवेदन है, कृपया एक स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे सभी अतिथियों को सम्मानित करें. We begin with Shri Pramod Chaudhary ji.
चौधरी जी, आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आप आज यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर सुधीर सुथर जी का, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे श्री विनोद आनंद जी को। सूरज कुमार, और अंत में श्री सुमित जी को। और श्री M.K. धनुका जी से निवेदन है, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के कुछ शब्दों के साथ इस सत्र का समापन करें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस सेशन के अंदर में पानी की महत्ता के ऊपर में ही बातचीत हुई। सबसे पहले मिस्टर प्रमोद चौधरी, मेंबर MSP कमेटी, ने अपनी बात रखी। उसके बाद मिस्टर सुधीर सुथार, असिस्टेंट प्रोफेसर CPS JNU, मिस्टर विनोद आनंद, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम, मिस्टर सूरज कुमार, स्ट्रेटेजी लीड आयोटेक वर्ल्ड, एंड मिस्टर सुमित, को फाउंडर ऑफ फाइलो बेंगलोर। मैं धानुका एग्रीटेक की तरफ से इन्हीं सब पैनलिस्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे इनविटेशन पे वो यहाँ पे आए और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। सभी ने ये बात रखी कि पानी बचाया जा सकता है अगर उस दिशा में कोशिश की जाए। अमिताभ बच्चन जी की भी एक लाइन है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अगर कोशिश की जाए तो पानी अवश्य हम बचा सकते हैं। सिर्फ मन में ज़ील होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि पानी बचाने की दिशा में हम सब लोग मिलजुल के कार्य करें ताकि इस दिशा में हम जो है सक्सेस हमें मिले। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। निवेदन है ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, आगे की ओर आ जाएं आप सभी। और उपस्थित अतिथिगण से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। हम अब बढ़ रहे हैं अगले सत्र की ओर, जो कि हमारा आज के इस कॉन्क्लेव का आखिरी सत्र है, धन्यवाद ज्ञापन का सत्र। Ladies and gentlemen, we would request everybody to kindly remain seated. We are straight away moving to the next session, which is the valedictory session. Kindly give us a few minutes while we arrange the top table for the valedictory session. Thank you.
Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? We are all ready to go ahead with the proceedings of the valedictory session. May I have your kind attention, requesting everybody to be seated. And I would like to invite on stage our guest of honor for the valedictory session, Dr. Kadambari. Let's put our hands together to welcome Dr. Kadambari, Chief Executive, PhD, RDF on Water Conservation for Sustainable Agriculture. A very warm welcome to you, ma'am. I would like to invite Dr. Sen Das, former Director, Directorate of Maize Research, ICAR. आपका हार्दिक स्वागत है सर। और मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री राजबीर राठी जी को, डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, बायर, inviting Mr. L.O. West, Project Manager, KWS. And also inviting Dr. R.J. Agarwal, Chairman, Dhanuka Group, to kindly grace the stage with his august presence. और एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी माननीय अतिथिगण का स्वागत जो मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं। Namaskar and good evening. Eminent dignitaries on the dais, our special invitees, senior officials, distinguished participants, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the valedictory session of the conference on the occasion of the World Water Day 2024, which is being organized by Dhanuka Agritech Limited. I would request Dr. R.J. Agarwal to kindly do the honors of welcoming our eminent dignitaries with floral bouquets. We welcome Dr. Kadambari, Chief Executive, PhD, RDF on Water Conservation for Sustainable Agriculture. A very warm welcome to you, ma'am. आपका हार्दिक स्वागत है. We welcome Dr. Sen Das, former Director, Directorate of Maize Research, ICAR. हार्दिक स्वागत है, sir. And we welcome Shri Rajbir Rathi ji, Director, Public Affairs, Science and Sustainability, Bayer. And ladies and gentlemen, we would begin the proceedings of the valedictory session by inviting Dr. Sen Das, former Director, Directorate of Maize Research, ICAR, who will be addressing on efficient use of natural resources in different parts of India through cropping systems. तो तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर सेन दास का उनके उद्बोधन के लिए। रिस्पेक्टेड अग्रवाल साहब, राजवीर मैडम, महेंद्र कुमार जी, राजवीर, अन्य इस हाल में बैठे हुए विद्वान लोग, मेरा आप सबको नमस्कार। और किसान भाई भी हैं तो उनको भी नमस्कार। मुझको नहीं लगता वो किसान है अभी, अगर किसान है तो ठीक है, तो एक बाहर के डेलीगेट बैठे थे, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। ये दे तो तुम चलाना, ये चलता है क्या? देखिए, अभी तक हम सब लोग पानी की बात कर रहे थे और पानी कैसे मैनेज भी किया जाए, कैसे बचाया भी जाए और कैसे इसको कंटिन्यूटी इसकी रिचार्जिंग भी की जाए। और सबके लिए क्या है कि हम कई बार बात करते हैं परंपरागत खेती। मैं कहता हूं कि हम ट्रेडिशनल खेती की बजाय हम ट्रेडिशनल क्रॉप का अगर जाएंगे तो हम पानी का सोल्यूशन दे सकते हैं। और वही एक सोल्यूशन है। एक टाइम था
हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप लगाते थे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी और इसलिए किसानों को शिफ्ट करना पड़ा। इश्यू क्या था कि फूड सिक्योरिटी का था। हमारे पास वैरायटी ऐसी थी मेज की, बाजरा की या दूसरी क्रॉप्स की जिनकी पैदावार बहुत कम होती थी। एक समय आया कि जब वी गॉट हाई यील्डिंग वैरायटीज, फूड सिक्योरिटी इश्यू था, गवर्नमेंट पॉलिसी बनी जिसके कारण हमको शिफ्ट करना पड़ा। हमारी जरूरत थी और मजबूरी भी थी नॉट टू बैक द फूड फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, और उसके लिए हमने किया, हमने उसको अचीव भी किया। और ये सब सपोर्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारे वैज्ञानिक कंट्रीब्यूशन, एंड वी सल्यूट अवर फार्मर हु डिड इट्स ऑल। नाउ द टाइम इज चेंज। आज की डेट में हमारे पास फूड सरप्लस है, स्टोर भरे पड़े हैं, वाटर इश्यू हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और फार्मर की इनकम घट रही है और फ्यूचर जनरेशन को सोचना है। और उसके लिए हमारे पास जो अब टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स की है, वी हैव वंडरफुल टेक्नोलॉजी एंड दे कैन बीट द राइस क्रॉप वैरायटी एनी इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी मेज की है आज की डेट में, इवन बाजरा की भी है। जहां राइस लोग ग्रो करते हैं, बाजरा के कारण उनका पानी का स्तर ऊपर जा रहा है, साथ में सॉइल भी खराब हो रही है और ग्राउंड वाटर भी खराब होता जा रहा है, उसको भी हम बचा सकते हैं। और तीसरा हमारे पास ऑयल सीड क्रॉप जो है वो उनकी बहुत प्रोडक्टिव वैरायटी है जो कि हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ। और हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट बंद कर सकते हैं, हमारे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल लेकर के कम खर्च करके। मस्टर्ड की क्रॉप को कुछ भी नहीं जरूरत चाहिए, मुश्किल से थोड़ा सा फर्टिलाइजर चाहिए और 1-2 इरिगेशन चाहिए। इवन ब्रेकिश सॉइल के अंदर भी मस्टर्ड को वंडरफुल क्रॉप क्रिएट कर सकते हैं। और एक कंसेप्ट था मेज मस्टर्ड मूंग का। क्यों था कि मेज लगाओ लॉन्ग ड्यूरेशन की, मस्टर्ड लगाओ लॉन्ग ड्यूरेशन की, मूंग लगाओ लॉन्ग ड्यूरेशन की। सॉइल फर्टिलिटी को भी इंप्रूव कर लो, ऑयल इंपोर्ट को बंद कर लो, प्रोटीन को इंपोर्ट करना बंद कर दो। और मेज थैंक्स टू इथेनॉल गवर्नमेंट अलाउड, आज मेज को इथेनॉल इंडस्ट्री को जो यूज हो रहा है, जो कि यूएसए के अंदर 140 मिलियन टन होता है, और उनके आज हम वो अपना पानी बचाए बैठा है, अपना तेल बचाए बैठा है, अपनी सॉइल को बचाए बैठा है, और वो उसकी हर ऑल राउंड विन विन सिचुएशन है। एंड हमने फॉलो तो किया दूसरे कंट्रीज को, बट वी डिड नॉट यूज अवर ब्रेन। एक समय था हमको भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। नाउ टाइम इज चेंज, अवर माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज अवर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट स्पेयर अस। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें फूड सिक्योरिटी लंबे समय तक के लिए चाहिए। उसके लिए हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, पर डे पर यूनिट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। रमेश चंद्रा जी ने कहा था लैंड को हम कोई नहीं सोचते, तो उसका आंसर यही है कि until unless we increase per day productivity, and India has a potential, farmer of this country has the potential, and Indian technology has the potential to generate the technology. They have already generated technology. अब जो उनको करने के लिए पर डे प्रोडक्टिविटी के साथ हमें नेचुरल रिसोर्स को एफिशिएंट यूज करना है। और कैसे होगा देखिए, रिप्लेसमेंट विद द ट्रेडिशनल क्रॉप्स विद हाई प्रोडक्टिविटी available, then technology intervention, farmer public private partnership and government policy, ये सभी को मिलकर के इस इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, enhancing the land productivity is only through the following cropping system, उसके कारण ही हम अपने नेचुरल सेव को सेव कर सकते हैं। और जो ये मॉडल बता रहे हैं क्रॉपिंग सिस्टम का, हम सिर्फ पानी नहीं बचा रहे, हम पावर भी बचा रहे हैं। आज की डेट में 90% पावर वी कैन सेव बाय शिफ्टिंग द क्रॉप ओनली फ्रॉम राइस टू अदर कोर्स सीरियल लाइक बाजरा, मेज एंड ऑयलसीड एंड पल्सेस। और 70% पानी बचा सकते हैं, और 70% पानी को हम शिफ्ट कर सकते हैं जिन एरिया के अंदर पानी नहीं है, वो इरिगेटेड एरिया का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और इसके कारण क्या है, जो पावर के ऊपर हमको सब्सिडी खर्च होती है
उसको हम उसका लोड भी गवर्नमेंट का एक्सचेकर बचा सकते हैं। अगर यही पैसा गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाए तो फार्मर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगी और साथ के साथ गवर्नमेंट को पैसा भी बहुत बच जाएगा, विच कैन बी यूज फॉर अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, नाउ जो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है जो सजेस्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट देखिए, हमारा पंजाब हरियाणा विच वाज ए नॉन ट्रेडिशनल पॉकेट फॉर द राइस एंड आवर ट्रेडिशनल क्रॉप्स वर मेज एंड बाजरा एंड कॉटन and oilseed and pulseed. Because of the low yielding variety, we were forced to shift to rice and wheat. Now the time has come. आज की डेट में हमारे पास 3.2 to 3.5 टन प्रोडक्टिविटी के हाइब्रिड पर एकड़ के हैं, जो राइस की प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा है और पर डे प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा है, पर डे प्रोडक्टिविटी, और शॉर्ट ड्यूरेशन है। और नेक्स्ट क्रॉप जो भी आएगी उसकी 15 से 20% यील्ड बढ़ जाएगी, चाहे मस्टर्ड लगा लो, चाहे इवन व्हीट लगा लो, चाहे कोई भी और दूसरी क्रॉप लगा लो, फायदा हो गया। उसके बाद जो तीसरी क्रॉप आएगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन की आएगी, ऑयल सीड पल्स लगा लो या मेज लगा लो दोबारा, मेज के बाद पोटैटो लगा लो, मेज के बाद पी लगा लो और उसके बाद फिर मेज लगा लो, क्योंकि आज मेज की हमारे को डिमांड भी है। और ताकि हम मेज तो कभी भी स्टोर में गया ही नहीं, either consume in the country or export it to the neighboring country, because our is non-GM crop. Though if we can bring the GM crop further, we can enhance the productivity. Next, again ये हो गया है, चलो नेक्स्ट चलिए। लो देखिए, अब जो ये बेल्ट है, this is the most suitable belt for the rice cultivation where rainfall is more than 1200 millimeter. Haryana, Punjab, Western UP was not at all rice belt, they were the maize belt और अदर कोर्स सीरियल बेल्ट। दिस बेल्ट के अंदर आप राइस लगाइए, लेकिन विंटर में मत लगाइए। क्यों? विंटर में लगाएंगे तो हमको ग्राउंड वाटर पंप करना पड़ता है, रेनफॉल होता नहीं है, और इरिगेशन जो विद डीजल या पावर से करना पड़ता है और एक्सेस वाटर यूज होता है। राइस जो है वो माइल्ड कोल्ड क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं करती, जबकि मेज कैन टॉलरेट इट। और साथ में राइस की प्रोडक्टिविटी लेस देन 2 टन है और मेज की प्रोडक्टिविटी मोर देन 8 to 9 to 10 टन है, इवन 12 to 15 टन तक भी है। बिहार के अंदर एक फार्मर 4 टन से ज्यादा पर एकड़ की प्रोडक्टिविटी ले रहा है, जिससे क्या है कि हमारा गर्मी में राइस लगाए, रेनफॉल बहुत है, ग्राउंड वाटर कम जरूरत तो हरियाणा पंजाब में मेज लगाए, और विंटर में वहां राइस की बजाय मेज लगाए, ताकि कम पानी यूज होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और पर डे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, जो ये ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है, बाय फॉलोइंग दिस क्रॉपिंग सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री यू कैन सेव रिसोर्सेज, प्रमोट ट्रेडिशनल क्रॉप्स। आजकल हर रोज हम कहते हैं कि न्यूट्रिशनल क्रॉप जो है ना, ट्रेडिशनल क्रॉप ही थी, मेज था, बाजरा था, ओट था, जो भी थी, रागी था, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपकी घट जाएगा और फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो फार्मर की इनकम नेचुरली, और से बायोडाइवर्सिटी विद द कल्टीवेशन सम ऑफ दिस क्रॉप। हम बहुत केमिकल यूज करते हैं, तो ग्राउंड वाटर भी खराब होता है और हमारे जो मित्र कीड़े हैं वो भी खराब, वो भी मर जाते हैं, जो कि हमारी फ्यूचर सॉइल और उसको भी थ्रेट है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जो हमारे डॉक्टर रमेश चंद्रा जी ने सवेरे बात कही थी, आई डोंट कंट्राडिक्ट हिम, बट ही इज आल्सो राइट कि पर टन फूड को प्रोड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग 2 to 2.5 टाइम मोर वाटर देन इंडिया। अब देखिए, यूएसए के अंदर 85% एरिया अंडर मेज है और राइस का एरिया ओनली 2% है, जो कि 62% था 1981 में। 2021 के अंदर 85% हो गया। राइस का एरिया 3% था, 2% हो गया। चाइना के अंदर राइस वॉज द प्रीडोमिनेंट क्रॉप एंड टुडे मेज हैज द प्रीडोमिनेंट क्रॉप। 21% एरिया था 1981 में
आज क्या है उनके पास 43% एरिया अंडर मेज है और 34% एरिया अंडर राइस है, जो कि 51% होता था। ब्राजील में देखिए, ब्राजील के अंदर जो 66% एरिया मेज में था और 26% एरिया अंडर राइस में था। अब 66 से 80% एरिया मेज में हो गया और 10% एरिया ओनली राइस में रह गया। जब उनका राइस ही नहीं रहा और मेज क्रॉप शिफ्ट हो गई, जो कि मेज टेक 70% मोर वाटर, राइस टेक 70% मोर वाटर देन द मेज, तो नेचुरली आपका 2.5 टाइम मोर वाटर आपका ज्यादा लगता है इंडिया में पर टन फूड में। तीसरी बात, वहां का क्लाइमेट माइल्ड है, हमारा क्लाइमेट हार्श है। जब हार्श क्लाइमेट है, नेचुरली यू हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ इरिगेशन। थर्ड बात, वहां की वाटर होल्डिंग, लैंड होल्डिंग, जो वाटर जो होल्डिंग ऑफ द लैंड इज, उसकी वाटर होल्ड कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग इज मोर देन इंडियन लैंड। आखिरी बात क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल इज मच मोर देन आवर्स, which number of irrigation reduces। तो इन चंद बातों के साथ मैं उनकी बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, बट दीज आर द फैक्ट्स। दैट इज वाई our water requirement per ton food is more, but if we shift the cropping system like as per his suggestion, rice to maize, naturally we will be at the par with the Brazil, US and China। Thank you very much। एक और बात भी है, आज की डेट में हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं तो क्वालिटी ऑफ द इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल अनलेस द क्वालिटी ऑफ इनपुट नहीं होगा तो हमारी पर डे प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी, साथ में आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। थर्डली, फार्मर को क्या है, जो प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ा पाएंगे जब उनको क्वालिटी का सीड नहीं मिलेगा, क्वालिटी का केमिकल नहीं मिलेगा, क्वालिटी का जो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर इनपुट इज कोरिलेट विद यील्ड के साथ उसका कोरिलेशन है, एग्रीकल्चर का कोरिलेशन है। तो मैं इन चंद बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे हरियाणा में भी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ था, कुछ लोग स्पूरियस केमिकल बना रहे हैं। आई कम फ्रॉम हरियाणा, आई डोंट लाइक दैट इन सच स्टेट इट इज टू हैपन। और हम चाहेंगे तो अग्रवाल साहब जी का थैंक्स करते हैं, जो एक सिर्फ ये काम ही नहीं कर रहे, he is organizing wonderful farmer awareness program about the new technology। जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो कि thousands of farmer पर जा रही है, about new technology of agriculture, how to enhance the income। वो भी एक बहुत बड़ा इनका रोल है, क्योंकि अभी हमारे भाई साहब सवेरे कह रहे थे कि वो अपने प्रोडक्टिव की भी जो तो नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, रादर ही इज आल्सो हेल्पिंग द फार्मर about awareness program of new technology, how he can utilize them through the interaction of the scientists of ICR, university and other private seed company and private industries. They are also supporting the cause what he is taking। मेरा तो हो गया है, अगर अच्छा आपने तो मैं तो बोल ही रहा था, आप चला ही नहीं, मैं क्या करूं। चल रहा था, चल गया तो ठीक है, हो गया चल गया है। चलूं? ओके, थैंक यू वेरी मच। और जोरदार तालियां हो जाएं सेनदास सर के लिए। बहुत ही खूबसूरत उनका उद्बोधन और प्रेजेंटेशन और वीडियो हमने देखा। तो आइए अब आमंत्रित करते हैं डॉक्टर कादम्बरी जी को, चीफ एग्जीक्यूटिव PhD RDF ऑन वाटर कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आपके एड्रेस के लिए तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर कादम्बरी जी। Very good evening to everyone. Thank you, sir, for inviting me today for this today's important session.
आज सुबह से मैंने देखा टॉपिक्स बहुत ही अच्छे थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थे। सबने बोला आईसीटी के लिए बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट फर्टिलाइजर के लिए किस तरह के एग्री इनपुट्स होने चाहिए, किस तरह के सीड होने चाहिए। हम लोगों की कल एक डिस्कशन हो रही थी और सबसे पहले बात ये आई कि हम लोग पानी पे काम करते हैं, जैसे सर का भी दिल है पानी में। क्या पानी के बिना ये सारी कोई एक्टिविटी आपकी कामयाब होगी अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए? तो शायद जवाब है नहीं। सारी प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ को आपको एग्री इनपुट को अगर आपको एनहांस करना है तो आपको पानी, फर्टिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, सबके लिए आपको पानी की आवश्यकता है। और स्लाइड्स कौन मूव कर? थैंक यू सो मच। राजस्थान में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं और राजस्थान को ये सिचुएशन जो है, अभी भी अगर आप जाएंगे तो कुछ इंटीरियर विलेजेस में इसी तरह की सिचुएशन आपको दिखती है कि जहाँ पे लोग अभी भी मटके भर के पानी के लिए काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी सारी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली पानी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा एक विशेष साइकिल है पानी के लिए। इसके लिए हमारे को वाटर कंजर्वेशन करने के लिए सबसे बेस्ट एफर्ट जो भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हो वो हमें करने पड़ेंगे, सो दैट हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रहे। दैट इज व्हाट वी कम इनटू कि एग्रीकल्चर और हमारा वाटर दोनों का एक इंटीमेट रिलेशन है और दोनों को हमारे को अगर साथ में चलना है और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो वी हैव टू हैव सम ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथडोलॉजी, सस्टेनेबल मेजर्स जिससे हम लोग पानी वाटर को कंजर्व कर सकें। एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन चेक डैम्स फॉर सम टाइम नाउ, जिससे चेक डैम्स के साथ वाटर ग्राउंड वाटर लेवल हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड with the availability of water you can diversify to some other cropping patterns also. So जो हम लोग अभी तक कर ही रहे हैं डिस्कस की फार्मर्स को बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देनी चाहिए, लेकिन साथ में दे हैव टू डाइवर्सिफाई टू द अदर क्रॉपिंग पैटर्न ऑल्सो, सो दैट जो वो ट्रेडिशनल क्रॉप कर रहे हैं उसके साथ दे कैन हैव एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड दैट वे इन अ सस्टेनेबल मेजर। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट, erratic rainfall and pattern, and they have a climate resilient agriculture, what we call it. And for all these things, I think community level पे, agriculture level पे सभी लोग जाते हैं farmers के पास. It is very, very highly important to have the community mobilized to understand the need, mobilize them, understand them, the technology, the schemes that the government is providing, the different varieties that have come into the picture, the different technologies that are come into the picture that can help them mobilize and help them increase the productivity. We at PhD RDF has been actively working in water conservation. So far, we have established more than 400 water check dams across different states. And if you see, we have already working in 600 plus villages. And across this, the major impact that has increased is that the groundwater level has in these areas have increased up to 40%. So जहाँ पानी आपके तकरीबन 400, 450, कई जगह 700 फीट पे पानी था, वहाँ पर पानी आज की डेट में 200 फीट या 150 फीट पे आ गया है. और उससे हुआ क्या है? उससे हुआ ये है कि जो फार्मर्स पहले 2 क्रॉप लेते थे इस सीजन में, साल में, वो आज की डेट में 3 क्रॉप ले रहे हैं. उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो डबल हो गई है. डबल क्यों हुई है? क्योंकि पहले वो अपनी लैंड फैलो छोड़ देते थे, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी. नाउ बिकॉज पानी उनके पास है, उनके कुएं में भर गया है पानी, तो वो जो ये बीच का समर का सीजन है उसमें भी वो वेजिटेबल्स ले लेते हैं, जिससे उनकी क्रॉपिंग पैटर्न इंक्रीज हुआ और उनकी इनकम भी इंक्रीज हुई है. इसके अलावा एक बड़ा ही अच्छा है उनके उसमें है इनकम के लिए मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न आप 3 क्रॉप्स ले रहे हैं, आपकी फैलो लैंड आप नहीं छोड़ रहे हैं, आप जो फर्टिलाइजर जो बेस्ट इनपुट्स हैं उसका आप मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं, तो उनकी जो इनकम है, बिकॉज दे हैव डाइवर्सिफाइड टू द अदर क्रॉपिंग्स ऑल्सो, सो उनकी जो इनकम है दैट मेनी प्लेसेस हैव इंक्रीज लाइक 3 times. ये मैं एक केस स्टडी बताना चाहूँगी कि जिसमें ये किसान हैं जो जयपुर में है और उनका ग्राउंड वाटर लेवल पहले 500 फीट में था. आज के डेट में वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल फ्रॉम नीचे से 300 फीट पे है, और ये पर्सन पहले अपना घर छोड़ के जाना चाह रहा था बेच के. और मैंने ये जानबूझ के पिक्चर रखी है आपको उसके घर की कंस्ट्रक्शन की. ये रीसेंट फोटोग्राफ है. आपको मैंने एक पीछे पिक्चर दिखाई थी जहाँ झोपड़पट्टी है, बिल्कुल कच्चे घर हैं. ये वाकई में रियलिटी है और ये वाकई में ये फैक्ट है कि उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है कि वो इतना बड़ा घर
जहां वो गांव को अपनी ज़मीन को बेच के जाना चाह रहा था, आज बिकॉज उसके एरिया में चेक डैम बना है, पानी का लेवल इंक्रीज हुआ है, उसके आसपास के जो कुएं हैं उनमें पानी आया है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ नाउ ग्रोइंग लेडी फिंगर, टोमेटो, सीजनल, साथ में फूल की खेती भी करता है 1.5 महीने के लिए। और अभी उसने स्टार्ट कर दिया है आंवले का ऑर्चर्ड। तो 2 साल हो गए हैं उसको। सर भी बहुत पौधों पे काम करते हैं, फ्रूट प्लांटेशन पे, और फ्रूट्स का हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, और जैसे सबने जो भी काम कर रहे हैं माना गया है कि ये आपकी आमदनी को वाकई में 2 से 3 गुना बढ़ा सकता है। तो इस तरह के केस स्टडीज हैं जो बाकी सब एक तरफ और पानी एक तरफ। अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो आप सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू श्री अग्रवाल जी एंड धानुका ग्रुप। They have been very actively working in water conservation. They have invested during the last decade for more than 8 check dams, and this is one of the check dam in earliest, the first check dam I would say. So I've just tried to pick up because it was Dhanuka's program, so I wanted to have a photograph, know people that they are really doing at the ground level also. And this is the first check dam that was sponsored by it, and it is standing tall, benefiting people, and changing the lives of the people in the ground level. So this is what is all about. And सिर्फ एक ही थॉट आज मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी। हम लोग कहते हैं कि गांव में जब जैसे अभी बात हुई कि पानी अवेलेबल कम है तो लोग मिलेट लगाते हैं, बाजरा लगाता है, थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ गया, अवेलेबिलिटी है तो गेहूँ लगाने लग गया। तो सवाल ये है कि क्या और मिलेगा तो क्या हम शुगर केन लगा सकते हैं? नंबर 1, जैसे जैसे पानी की डिमांड के हिसाब से या हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, हम पानी कितना अवेलेबल है हम उसके हिसाब से क्रॉप लगा रहे हैं। जैसे कई जगह पे वाटर लेवल्स बहुत कम है लेकिन फिर भी हम चावल लगा रहे हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एक आई वुड लाइक टू लीव विद अ थॉट इन योर हार्ट्स इन द अर्बन एरिया जहाँ हम शहरों पे रहते हैं। क्या हम अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से करते हैं या डिमांड के हिसाब से? पानी आज मेरे पास ज़्यादा है तो हम नहीं सोचते कि हमारे शहरों में नलकों में पानी है तो हमें कितना इस्तेमाल करना है। तो लेट अस थिंक ऑफ इट। रूरल एरियाज़ में पानी की कंजम्पशन क्रॉपिंग पैटर्न से बहुत जल्दी एविडेंट हो जाती है। अर्बन एरियाज़ में शायद वो डेटा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है। बट आई थिंक everyone individual is equally responsible to conserve water, be it whatever level. So I think let's vouch for this at individual level. Let's put small little efforts to conserve water and make it more healthy place, as what sir mentioned, पानी आज के लिए भी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद मैम। और अब सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर आरजी अग्रवाल जी को, चेयरमैन धनुका ग्रुप। और एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर अग्रवाल का। तो पहले आमंत्रित करते हैं श्री राजवीर राठी जी को, डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी बायर से। और तालियों के साथ स्वागत श्री राजवीर राठी जी का। Good afternoon, everyone. Honorable, experts on the dais and colleagues in the audience. I've been requested to put forward the concluding remarks for such an important topic, for such an important day which began on time. So there are 2-3 ways to do it. I know it's a long day, but definitely there are really important, doable, and which leaves a great thought that how we should be vigilant, aware, and keep a lot of things in mind. So I may be a little repetitive, but I think it's important to summarize the day with the key messages, with the people right from the inaugural session and all 3 technical sessions they had captured over there. So maybe I'd just begin with the first inaugural session where Mr. R.J. Agarwal has started emphasizing that how important is water, and everyone is talking about that if we don't manage it well today and tomorrow, it's going to be the biggest threat leading to whatever we call world war or civil unrest or whatever it is, it is there. So it's really important that how important it is just to work around the water
not just conservation, but its management also today to make it sustainable for consumption, for agriculture, for biodiversity, for forestry, and ultimately for the preserving this planet as it is, or it was beautiful earlier, like, you know, how to revive it back over there. Our chief guest, Dr. Professor Ramesh Chand, I think he categorically mentioned that we have put a lot of emphasis on the conservation, but I think let's move towards how we properly manage it, which is really important. Later on, Dr. P.K. Singh, emphasized that what is important to do it, like, not just thinking too much in terms of big solutions and everything, but let's pick up small things which is doable, which are practical, which can provide very tangible benefits in terms of water usage, conservation, and its management, not just in agriculture, but in the allied sectors as well. Later on, the second session in which Dr. C.D. Mai, Raghunandan Rao-ji, and Arun Kumar and Dr. Tomar, so they have just emphasized that, how important it is, because agriculture is the major consumer of the water, or it consumes close to 70%, that what different irrigation practices can be adopted. Like, you give an example of Maharashtra, where the sugarcane is being switched on from the flood irrigation to the drip irrigation. Just one example he has given. And then again, from the government side of it, examples of Haryana has been given, that how they are managing the water quality, how they are managing its conservation management, and so on and so forth. In the third session, where people have emphasized that what needs to be done for its proper harvesting, and then it's cycling back again. And each and every participant has, clearly emphasized, like, and based on their experience. So what has come out really from there is that we know what we are doing today. We know what can be done. So I think it's the time to act now. अगर आप उधर हिंदी में देखते हैं कि अगर आज पानी नहीं बचाया तो what will happen tomorrow? And I think currently we are facing, I'm not sure whether the colleague from Bangalore is still here or not, but that's how we are facing it today, like, And the last session, where the emphasis was made on, the precision farming key tool again over there, where Chaudhary Sahab had just mentioned about a lot of things, जो पारंपरिक चीजें थी, ancestral time के ऊपर, how we revive back with the information, knowledge, and the tools and techniques available in the modern time. हम उनका समावेश कैसे करें, like, learning from the past, implementing what we have today to make sure that we have the right amount of water for everything where it is needed for the future. In the last session, let me start with Dr. Sai Das, where he has emphasized that simply switching from the crop, the way it is being produced, to make it a little bit based on what used to happen earlier, significant improvement can be done, not just water saving, but also improving the productivity. So thank you, Dexter. And we have just seen, not to be repetitive, but I think it's really important what Dr. Kadambari has mentioned in terms of how you work in a community, because water is not just one person can do it. I think it needs a holistic community approach in an institutionalized manner. So it was really good. I'll just take 1 minute with your permission, Chairman sir. Since I work for Bayer, we also have a water commitment in all three spheres, like, whether it's in agriculture, whether it's on manufacturing sites, where we just work on proper optimal use of water, rainwater harvesting, and also zero waste discharge and optimal moisturization. The people who know about the chemistry, like, how to efficiently use it. Direct seeding rice, we have direct acres, which has a potential of saving water up to 25% on an average, and 25% water translating into 40 million hectares. You can imagine, which Dr. Saidas also emphasized, that how we switch over from rice to the corn or other crops in the rotation. So with that, thank you so much. I'll just conclude the summary of the full day deliberations. Like, thank you so much. और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आरजे अग्रवाल को।
एक बार फिर से मेरा प्रणाम आप सबके नाम। सुबह से हम जल पे चर्चा कर रहे हैं और कुछ बोरियत सी हो जाती है, तो आज मैं फिल्मों से बात करूं कि हमारे देश में पानी के ऊपर कितनी फिल्में बनी हैं या पानी के ऊपर कितने गाने बने हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, या जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर की बहुत पुरानी फिल्म। मतलब पानी पे आप देखेंगे तो सैकड़ों गाने और पिक्चर्स आपको मिलेंगे, आज के ज़माने के भी और पुराने ज़माने के भी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर हम उस दृष्टि से बात करें कि आज सृष्टि में 5 चीज़ें जिनसे हम बने हैं, भाई जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हम ये मानते हैं ना, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, या खेती भी है या जो भी लिविंग चीज है, ये 5 चीजों के ऊपर चलती है और किसी भी तत्व की महत्ता कम नहीं है। क्या आज हम वायु की महत्ता को कम कर सकते हैं? क्या हम 2 मिनट भी बिना सांस के जी सकते हैं? आज जो हमारे पास मोबाइल फोन है वो आकाश और वायु उसी की वजह से काम कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। पृथ्वी, अगर पृथ्वी नहीं है तो हम, पानी भी होगा तो पैदावार कहां करेंगे, अनाज कहां उगाएंगे। और सूर्य, अग्नि, भाई प्राचीन काल में पढ़ते हैं तो हमारे आदि मानव काल में हम कुछ भी खाते थे, लेकिन क्या आज हम बिना पका हुआ कच्चा खाना खा सकते हैं? तो ये 5 तत्व की बहुत महत्ता है, लेकिन क्योंकि आज हम जल दिवस मना रहे हैं तो इसलिए जल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सुबह पहले सेशन में काफी सीनियर लोग थे हमारे साथ, प्रोफेसर रमेश चंद जी नीति आयोग से, जिनका एग्रीकल्चर पॉलिसीज और वाटर, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लगता है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। फिर इसी सेशन में हमारे पास डॉक्टर पी.के. सिंह एग्रीकल्चर कमिश्नर साहब थे, उन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि वो लखनऊ से आए थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से वाटर की महत्ता को बताया। हमारे साथ डीडीजी एजुकेशन डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल साहब थे, तो उन्होंने एजुकेशन के एंगल से कि हम लोगों में कैसे एजुकेशन की भावना ला सकते हैं। और सुबह हमारे इनॉग्रल सेशन में डॉक्टर राजवीर शर्मा जो थे, दिल्ली रीजनल चैप्टर IIPA के, उन्होंने भी, उनका काफ़ी तजुर्बा है, तो उन्होंने भी अपने विचार शेयर किए। पहले सेशन के जितने भी स्पीकर्स थे, मैं वो धन्यवाद करता हूं, वो अभी है तो नहीं, लेकिन आज समय बहुत कीमती है, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और हर आदमी की एक के बाद दूसरी या मीटिंग कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग समय निकाल के आए। दूसरा सेशन में हमारे डॉक्टर CD माई साहब थे, जो ASRB के चेयरमैन रहे हैं और नागपुर से आए। डॉक्टर P. राघवेंद्र राव रहे, जो पीछे सेक्रेटरी केमिकल्स थे, अभी हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी बताया कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम रीसर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इंडस्ट्री में भी हैं, और इंडस्ट्री में है तभी तो माल बना के बेचेंगे। और पेस्टिसाइड में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं पोल्यूशन मैनेजमेंट के, तो आज सभी इंडस्ट्रीज ने, रेस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज ने नई नई टेक्नोलॉजी लाके
और उस पानी का उपयोग गार्डनिंग के लिए कर रहे हैं काफ़ी हद तक, और जो यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आज जो भी उसका पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको यूज़ करते हैं, उसका डिस्पोजल करते हैं। उसके बाद हमारे बीच में श्री फ्रैंकलिन कोलंग साहब से जॉइंट सेक्रेटरी NRM, उन्होंने भी अपनी विचार शेयर किए, और डॉक्टर तोमर साहब ने वेजिटेबल्स, आज जो पानी बचाने की बात हो रही है, पैडी से वेजिटेबल्स की तरफ, शायद वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर भी कम पानी लेते हैं और हमें बेटर न्यूट्रिशन भी इनसे मिलता है। अगले सेशन में हमारे पास DDG हॉर्टिकल्चर डॉक्टर HP सिंह साहब थे। उन्होंने भी अपनी बात में हॉर्टिकल्चर को फोकस करते हुए और ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जोर दिया। वो जैन इरिगेशन के बोर्ड पे डायरेक्टर भी हैं। हमारे डॉक्टर राजवीर सिंह साहब सुबह जो नहीं आ पाए, अब वो हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और फॉर्मल तरीके से मैं हमारे MD साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, धानुका जी को, कि वो लाके फूलों को बुके से डॉक्टर राजवीर सिंह जी का स्वागत करें। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र पडारिया साहब थे, जो जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, और इन्हीं के साथ इनके पूरे डिपार्टमेंट, इनके DDG डॉक्टर UC गौतम, और पूरी टीम के साथ हमने MOU साइन किया कि आज इतने बड़े देश में जहां 14-15 करोड़ किसान 6.5 लाख गांवों में रहते हैं, तो इतने लोगों तक ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी ले जाना किसी एक के लिए संभव नहीं है। यहाँ और एक मिलकर 2 नहीं होंगे, एक और एक मिलकर 11 होंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक नई तकनीक पहुंचा पाएंगे। उसके बाद हमारे पास डायरेक्टर कॉटन नागपुर से जुड़े थे, और उन्होंने भी कॉटन के अंदर कैसे क्या हम पानी बचा सकते हैं, क्योंकि आज कॉटन क्रॉप को हमें घटाने की नहीं बढ़ाने की जरूरत है। नॉर्थ इंडिया में तो पिंक बॉलवर्म की वजह से कॉटन का एरिया काफ़ी कम हो गया, लेकिन पिंक बॉलवर्म कोई बहुत डिफिकल्ट पेस्ट नहीं है, इसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पेस्टिसाइड किस टाइम पे यूज हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज पिंक बॉलवर्म के अंडे होते हैं, और आप फेरोमोन ट्रैप से पता कर सकते हैं, और जब अंडे हों, अंडे वाइट होते हैं, 3 दिन में येलो हो जाते हैं। जब अंडा येलो हो उस टाइम पे आप स्प्रे कर दीजिए, आपका पिंक बॉलवर्म खत्म हो जाएगा। और एक दफे उसमें से लार्वा निकल के बॉल के अंदर चला गया, तो आप उस पर तोप भी चला लो तो भी वो मरने वाला नहीं है। तो आज पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल की तकनीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छे से अच्छा पेस्टिसाइड हो, अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमारे पास पेट दर्द है और हम सर दर्द की गोली खाएं तो क्या होगा, कोई फायदा होगा? शायद नहीं होगा। और आज हमारे इस पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे डीलर्स भाइयों को या किसान भाइयों को बहुत जानकारी नहीं होती, और बहुत से किसान जिनको कृषि विज्ञान केंद्र या वैज्ञानिकों को के पास जाना चाहिए, कंपनी के फील्ड में काफ़ी लोग रहते हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। सभी कंपनियों के, अच्छी कंपनियों के कॉल फ्री सेंटर्स हैं, फ्री में कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बिना सोचे समझे किसी दवाई का इस्तेमाल करने के, उसका सही तरीके से करेंगे तभी उनका फायदा हो सकता है। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर आर शारदा जयलक्ष्मी, वाइस चांसलर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, उन्होंने फिजिकल ज्वाइन किया, उनका भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं।
अगला सेशन था हमारा क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम्स हो रही है और उसमें हम एआई और आईसीटी का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो एमएसपी कमेटी के हमारे श्री प्रमोद चौधरी जी ने उसमें अपने विचार रखे। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सुथार साहब से श्री विनोद आनंद जी थे और हमारे सूरज कुमार जो आयोटेक के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ड्रोन्स के बारे में कि ड्रोन्स में कैसे 10 लीटर पानी में हम पूरे एकड़ का स्प्रे कर सकते हैं और कितना एक्यूरेट स्प्रे कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने 15,000 ड्रोन दीदी की बात की है। मैं समझता हूं कि ये 15,000, अभी 4 दिन पहले उन्होंने 1,000 ड्रोन डिलीवर किए और वो एक साथ अलग अलग जगह से वो 1000 ड्रोन उड़े। आज वर्ल्ड में सारा स्प्रे ड्रोन से होता है और ड्रोन से प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसका बहुत फायदा है। 2 साल से हमने भी 5 ड्रोन्स लगा के अलग अलग क्रॉप्स पूरे हिंदुस्तान में उसके ट्रायल करके देखे और कई क्रॉप्स में तो चमत्कारी रिजल्ट्स मिले हैं ड्रोन से स्प्रे करने के। जहां दवाई नहीं पहुंच पाती मैनुअल स्प्रे से, वहां ड्रोन से अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसके प्रेशर से दवाई नीचे रूट्स तक जाती है और बीपीए जैसे इंसेक्ट उसका काफी अच्छा कंट्रोल मिलता है। इसके बाद हमारे मिस्टर सुमित, को फाउंडर फाइलो ऑन यूज ऑफ प्रेसिजन एग्रीकल्चर, इनका भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आज जैसे कहते हैं ना कि आप मोटर फोन से चला सकते हो, तो आज इनकी टेक्नोलॉजी है कि भैया इनका इंस्ट्रूमेंट खेत में लगा लो तो आपको रोज देखने जाने की जरूरत नहीं है कि कब इरिगेशन करनी है। वो इंस्ट्रूमेंट आपको फोन पे फोन कर देगा कि भाई अब आपके खेत को पानी की जरूरत है, तो आप इससे एक्सेस पानी का कंजम्पशन रोक सकते हैं। एक्सेस पानी भी ज्यादा फायदा नहीं करता। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर एक साथ में 5 लीटर पानी पी लूं तो क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। इसी तरह हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, उसकी बजाय ड्रिप इरिगेशन करें और वैज्ञानिक लोग बैठे हैं और दोनों की ईल्ड कंपेयर करें, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां आपने ड्रिप इरिगेशन की है वहां ज्यादा पैदावार होगी बजाय जहां आपने फ्लड इरिगेशन किया। तो हर चीज का जुडिशियस यूज बहुत जरूरी है। लास्ट के सेशन में हमारे डॉक्टर साईं दास साहब थे, जिन्होंने 3M के फार्मूले को बताया कि पानी बचाने के लिए, कि आज 1 लीटर राइस एक्सपोर्ट करते तो हम 4000 लीटर पानी भी एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने 3M के फार्मूले पे फोकस करा कि पैडी से हटकर किसान, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जरूरत से ज़्यादा है, तो धान की जगह, पैडी की जगह किसान मेज से शुरुआत करे, मेज के बाद मस्टर्ड लगाए, मस्टर्ड के या मेज के बाद आलू लगा सकता है, आलू के बाद फिर मेज लगा सकता है, मूंग लगा सकता है। ऐसी क्रॉप्स के रोटेशन से उसका खर्चा कम होगा, साल में 3 क्रॉप ले पाएगा और गेहूं और धान से जो फायदा होता है उसको प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब ने बताया कि उससे ज्यादा इनकम हो सकती है। डॉक्टर साहब ने नकली पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी जिक्र किया, वो वीडियो शायद वो उस समय ठीक से हम नहीं चला पाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से वो वीडियो तैयार रखें। डॉक्टर कादम्बरी ने बताया पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि जहां जहां चेक डैम बने, उन्होंने हमारे पहले चेक डैम की भी पिक्चर दिखाई और ये बताया कि पहले कितनी इनकम थी
और चेक डैम लगाने से वहां किसान की कितनी इनकम हो गई और कुओं का पानी जो नीचे जा रहा था वो कितना ऊपर आना शुरू हो गया। इंडस्ट्री के हमारे ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन मैं सब लोगों से मैसेज भेजूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब CSR में पैसा खर्च करते हैं। अगर ऐसा पैसा हम खर्च करें कि एक चेक डैम से पूरे गांव की जिंदगी बदल जाए, तो इससे बढ़िया शायद कोई इन्वेस्टमेंट या CSR पे खर्च नहीं होगा। उसके बाद राजवीर राठी जी ने सुबह से शाम तक हमने क्या किया उसको समअप किया। गागर में सागर वाली बात है कि भाई सुबह से इतनी डिटेल में चर्चाएं चल रही थी। मैं आखिरी बात एक जो है इम्पोर्टेंट, हमारी देश की GDP चाइना के मुकाबले 1/3 है और बहुत से और लोगों ने भी बताया कि प्रति हेक्टेयर हमारी पैदावार क्या है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण किसान को जो इनपुट मिलते हैं, बीज हो, खाद हो, कीटनाशक हो, वो नकली मिलते हैं। सुबह जो हमारे कौन साहब थे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो किसी भी प्लेटफार्म पे बोलने को तैयार हूं कि भाई इससे कितना नुकसान हो रहा है और इसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। आज कितनी ही रेट्स हम प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग कराते हैं, क्योंकि जब हमारा ब्रांड डुप्लीकेट होता है तो हमारी इमेज खराब होती है। किसान तो हमारा प्रोडक्ट समझ के लेके जाता है और जब वो इस्तेमाल करता है उसको रिजल्ट नहीं मिलते तो समझदार किसान का, क्योंकि हमारे पास कॉल सेंटर होते हैं, ईमेल होती है, तो मैसेज आता है और हमारे लोग जाते हैं, पता करते हैं कि अरे ये तो हमारा माल ही नहीं है, नकली माल है। फिर उसके बाद हमारी डिटेक्टिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, फिर पता लगाते हैं कि कौन है, उसके बाद रेड डलवाते हैं, लोगों को पकड़वाते हैं। फिर भी तकलीफ इस बात की है, ऐसे लोगों के खिलाफ अभी 2 दिन पहले फ्रंट न्यूज थी जो नकली कैंसर के इंजेक्शन बना रहे थे और लोगों ने डिमांड करी कि ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए जो इंसान की जिंदगी से खेल कर रहे हो। इसी तरह जो नकली पेस्टिसाइड बना रहे हैं, नकली बीज दे रहे हैं, वो किसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सोचने की बात है। सन 2021 में 9 लाख एकड़ चिल्लीज की फसल साउथ में बर्बाद हो गई। एक नया एग्जोटिक पेस्ट आया, ब्लैक थ्रिप्स, और वहां पे उन्होंने कॉकटेल ऑफ 10-12 पेस्टिसाइड की यूज करी। सरकार ने एक कमेटी बना दी, MP गोपाल कृष्ण गुंटूर के उनकी चेयरमैनशिप में बाकी साइंटिस्ट हो गए और उन्होंने रिपोर्ट दे दी, इट इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमारे वैज्ञानिक भी गए, वो डेप्थ में गए, उन्होंने जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुए उनके भी सैंपल लिए, मिर्ची के भी सैंपल लिए, किसानों से बात भी की। तो असली कारण जो था रेसिस्टेंस डेवलपमेंट का, वो जो 10-12 पेस्टिसाइड की कॉकटेल, और आज कर्नाटका गवर्नमेंट की खुद की एनालिसिस रिपोर्ट है 250 सैंपल की, इसमें ऐसे पेस्टिसाइड भी हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो कैसे आए, स्मगलिंग हो के आए। ऐसे प्रूफ होने के बाद भी अगर कल्प्रिट्स के खिलाफ एक्शन ना हो तो कल्प्रिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? आप बताइए, कल्प्रिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? भाई उनको तो इजी मनी मिल रहा है, 1 के 10 हो रहे हैं। सुबह कह रहे थे कि वो ऐसा माल बेचते हैं कि उसमें 50% मार्जिन मिलता है, उसमें तो 50 क्या 200% मार्जिन भी मिल सकता है। असली कंपनी का माल बेचेंगे तो उसमें एक रीजनेबल मार्जिन मिलता है और जो समझदार किसान हैं वो बेवकूफ़ नहीं बनता। लेकिन आज भी इंटीरियर में जाएं तो हमारे किसान बहुत सीधे हैं, अनपढ़ हैं
और उनके साथ जो गलत करता है भगवान उसको माफ नहीं करेगा। हम तो कौन है, लेकिन जो किसी के साथ गलत करता है तो देखने वाला भगवान है। अगर वो वीडियो फिल्म चला सकते हैं, अभी पिछले हफ्ते सोनीपत में रेड हुई, सोनीपत में, और ये आप देख रहे हैं कि वहां के फोटो भी हैं जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे, और उसके बाद एक वीडियो भी है जो टीवी चैनल पे चला। वैसे तो हमारे पास 50 वीडियो है ऐसी रेड्स के, लेकिन ये कहते हैं ना लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, ये लास्ट सोनीपत में जो रेड हुई उसके वीडियोज हैं। साहब का फोन आ रहा है। अगली खबर सोनीपत से है। सोनीपत के अकबरपुर बरोटा में नकली दवाइयों के फैक्ट्री और गोदाम में छापेमारी की गई। फैक्ट्री में सल्फास की नकली दवाई तैयार की जा रही थी और फैक्ट्री में बिना मानकों और लाइसेंस के चल रहा था। कृषि और किसान कल्याण विभाग की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और कृषि अधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा की अगुवाई में छापेमारी की गई। सोनीपत के अकबरपुर बहरोटा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एक बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां नकली सल्फास की दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री पर विभागीय कार्रवाई की गई है। मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वो गोदाम है जहां मैन्युफैक्चरिंग गोदाम भी है, और खास तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनें भी लगी हैं और ये पैकिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा था। मैं साथी से कहूंगा कि सामने भी तस्वीर दिखाए कि पूरी तरह से ये यहाँ पर लेबर काम कर रही थी। हाँ की मौके पर जब कार्रवाई की गई तो इसी प्रकार से जो है हड़कंप मच गया। लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो कई हजार तैयार पेटियां मिली हैं, दवाइयां पैकिंग करने वाली खाली हजारों कंटेनर यहाँ मिले हैं, और वहीं किसानों की तरफ से जो यूरिया के 150 से ज्यादा कट्टे जो खेतों में प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर मिले हैं। मैं साथी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएंगी किस प्रकार की यहाँ पर ये कंटेनर है और किस प्रकार की दवाइयां हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से पैकिंग मशीन भी बरामद की गई है, और ये जो दवाइयां हैं ये नकली सल्फास की गोलियां हैं, और इन्हें पैकिंग करने के लिए यहाँ पर लेबर काम कर रही थी। और खास तौर पर बात करें तो अनाज के गोदामों में लगने वाले कीड़ों और खेतों में चूहों की रोकथाम के लिए टिकिया विष निवारण पोटेशियम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मौके पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और 50 से ज्यादा लेबर यहाँ काम कर रही थी, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा की अगुवाई में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, और मौके पर पुलिस को भी सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की रही है और फैक्ट्री को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। खासतौर पर बात करें तो कई घंटे से लगातार ये छापेमारी चली है। हालांकि जिस प्रकार से ये फैक्ट्री चल रही है ये माना जा रहा है करीबन कुछ महीने से ही ये स्टार्टअप किया गया था, लेकिन पूरे मसले को लेकर न केवल किसानों के साथ बल्कि आम लोगों के साथ भी एक धोखा हो रहा था। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए पुलिस द्वारा जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण है। अगर पूरे हिंदुस्तान में आप देखें तो रोज इस किस्म की रेड होती है, खबरें आती हैं। यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट लोग बैठे हैं या किसान बैठे हैं या बाकी लोग बैठे हैं, टीवी पे हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है, जागो ग्राहक जागो। सबने देखा होगा या नहीं? आज किसान को जागरूक करने के लिए कौन काम करेगा? क्या जागो किसान जागो कैंपेन नहीं होना चाहिए? हमारी एसोसिएशन ACFI ने जागो कैंपेन चलाया। लास्ट अभी मैडम शारदा देवी चली गई, हैदराबाद में हमने 10 वैन चलाई, जिसमें किसानों को एक ही मैसेज था, जो भी सामान खरीदें बिल से खरीदें, अगर नकली होगा तो बिल नहीं मिलेगा। 5 गाड़ियां हमने चंडीगढ़ से चलाई जिसको हरी झंडी JP दलाल साहब ने दिखाई। 5 गाड़ियां नागपुर में हमने चलाई जहां नितिन गडकरी जी ने उनको हरी झंडी देके रवाना किया। विजयवाड़ा में 5 गाड़ियां हमने चलाई, वो वहां के वाइस चांसलर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। अब इंडस्ट्री कितना कर सकती है? इंडस्ट्री की भी अपनी लिमिटेशन है। जब तक ये बात सरकार नहीं समझेगी कि हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन दोगुनी करनी है,
या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2027 तक, जिसमें $1 ट्रिलियन की इनकम एग्रीकल्चर से चाहिए, तो ये जब तक किसानों को हम असली इनपुट नहीं देंगे तब तक शायद इस समय में ये हम अचीव ना कर पाए। तो ये मेरी लास्ट निवेदन है कि इस इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, हम किसी की पर्सनल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहा है हमें उसको लाइट में लाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो ऐसे गलत लोगों के खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में, अलग अलग जगह से आकर, मैं आप सबका आभारी हूँ। बीकानेर से वाइस चांसलर साहब आए, हैदराबाद से मैडम वाइस चांसलर आई, अभी जबलपुर से हमारे एमएसपी कमेटी के मेंबर ये पधारे, और भी बाहर से बहुत से लोग आए हैं। तो मैं सभी हमारे विक्रेता बंधु हैं, फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, सभी का आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि वाटर डे एक जैसे सेलिब्रेशन होके ना रह जाए, इस मैसेज को दिल में डालें और दिल की तरंगे और लोगों की दिल की तरंगों से मिलाकर उन तक ये मैसेज पहुंचाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद सर। और अब हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर राजवीर सिंह, एडीजी आईसीएआर से। आपसे निवेदन है कृपया सभा को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें, और तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर राजवीर सिंह जी। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय अग्रवाल जी, डॉक्टर साईदास जी, राजवीर, डॉक्टर कदमरी मैडम, बहुत ही वशिष्ठ श्रोतागण। एक्चुअली मेरा जो आपने प्रोग्राम दिया था वो लंच से पहले था, लेकिन सुबह मेरे को बहुत ज़रूरी काम था, मैं आ नहीं पाया। मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं जो ही फ्री होऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। अग्रवाल जी ने मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि समय पहले ही ज़्यादा हो चुका है। 2-3 बातें कहनी थी मैंने, कि जो बात पीस की बात चली थी कि वाटर फॉर पीस, मुझे लगता है प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस, इन सब का रास्ता पानी से होकर गुजरता है। पूरी दुनिया के अंदर जब से संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है, आप देखेंगे कि वही सभ्यता वहीं बसी है या स्टार्ट किया है जहाँ पानी के अच्छे स्रोत थे। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पानी सिर्फ इंसान की नहीं, हर जीव जो इस धरती के ऊपर, उसकी ज़रूरत है। और लोग ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं तो इस तरह प्रोग्राम करने पड़ते हैं, जैसे वर्ल्ड वाटर डे। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें इतना जागरूक होना चाहिए। देश को 70 साल हो गए आज़ाद हुए। आप उन इलाकों में जाके देखो जहाँ में पानी नहीं है, तो उनसे पूछ के देखो पानी की क्या वैल्यू है। और जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो पानी की दुर्गति जिस तरह से हम करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। इसके लिए एक बहुत बड़े अभियान की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगा, क्योंकि किसान से और खेती से भी रिलेशन है, तो 80-82% जो पानी है टोटल यूज़ हो रहा है, उसका 82-84% जो पानी है वो खेती में यूज़ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ खेती के अंदर किसान को जागरूक करने की ज़रूरत है। अग्रवाल जी ने कहा कि जागो किसान जागो, तो इस अभियान के अंदर पानी के महत्व को बताते हुए, एनवायरनमेंट के महत्व को बताते हुए इसके ऊपर और ज़्यादा प्रगति करनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 बातें कहने आया था यहाँ पे कि नंबर 1, यदि हम खेती की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा एकड़ेज जो है वो राइस के अंदर है। धान और चावल की खेती सबसे ज़्यादा एरिया में होती है। करीब 45 से 47 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर, देश के अंदर राइस होती है। उसके बाद कोई दूसरी फसल है तो वो है कणक, वीट। 32 से 34 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो वीट का है। तो कुल मिला के यदि दोनों फसल को देखें तो 80 मिलियन हेक्टेयर मतलब खेती होती है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं जो हम यदि किसान को यदि इस बारे में जागरूक करें तो पानी की बचत, जो आपने कुछ साथियों ने बताया था, सुधीर जी ने बताया, मेरे साथी सूरज जी ने बताया कि ड्रोन का यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं, वो तो बहुत नगण्य है यदि उनकी सेविंग की बात करूं तो मैं।
यदि धान की बात करूं तो DSR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट सीडेड ड्राई, जिसके अंदर हम ये समझते हैं 25 से 30% पानी की बचत होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर जहाँ पे 30-32 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर राइस होती है, तो सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग की इंडस्ट्री की बात करूं तो 3500 करोड़ रुपए की बिजनेस है। ट्रांसप्लांटिंग राइस की 35 दिन चलती है। 13 लाख जो लेबर है भारत के दूसरे भाग से पंजाब आते हैं। 35 दिन में करीब करीब 30-32 लाख हेक्टेयर के अंदर ट्रांसप्लांटिंग होती है। 3500 करोड़ का बिजनेस है और करीब करीब हर लेबर जो वहाँ से आती है 40,000 रुपये या 35,000 रुपये कमा के अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ चले जाते हैं। अब आप मेरे से सहमत होंगे, जिसने धान की खेती देखी है, तो करीब पहली इरिगेशन जो होती है पडलिंग की और उसके बाद जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो कम से कम 10 सेंटीमीटर पानी यूज होता है। यदि हम इसके ऊपर DSR की बात यदि मैं करूं, हालांकि ये एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, पर मैं ये कहता हूं कि अब आने वाले समय में पानी की बचत की बात करनी है तो उन तकनीकों के ऊपर भी सावधानी और भी चर्चा करनी होगी और किसानों को उनको ट्रेंड करना होगा कि किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है 2003-04 में हम जब शुरू में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेजर लेवलर के ऊपर, तो सभी मना कर रहे थे ये टेक्नोलॉजी नहीं चलने वाली है। बोले इतनी महंगी टेक्नोलॉजी फार्मर कैसे करेगा। और आज आपको विश्वास नहीं होगा कि करीब करीब 75% से ज़्यादा एरिया पंजाब के अंदर फुली हर तीसरे साल लेवल्ड होता है। इतना ही रकबा जो हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में है, और इस एरिया में नहीं और भागों में भी लेजर लेवलर काफ़ी मतलब प्रचलित हो गया है। तो इस तरह की तकनीकें जो हैं वो किसानों तक लेके जाना पड़ेगा। कट शॉर्ट करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डॉक्टर साईंदास ने बताया था, ये मैं बताना चाह रहा था लेकिन इन्होंने विस्तार से बताया है कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी ध्यान देना पड़ेगा। जो 3M की इन्होंने बात की थी, यदि उस फसल चक्कर पे आ जाए हम मेज, मूंग और मस्टर्ड को कर लें तो आधे से कम पानी, और प्रॉफिटेबिलिटी में उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वो और भी ज़्यादा सस्टेनेबल सिस्टम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मेरा ये मानना है अगले 5 साल में यदि हम ये उद्देश्य रखें, ध्येय रखें कि अगले 5 साल में करीब 5 लाख हेक्टेयर एरिया भी यदि इस फसल चक्कर में आ जाते तो देश के लिए और एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इजराइल के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है, अदरवाइज इजराइल में एक्सटेंसिवली घुमा हुआ हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे हर जो सिटीजन है वो जागरूक है, पानी की महत्व का पता है। थोड़ा पानी पीना तो उतना ही पानी लेगा जितना उसको पानी की जरूरत है, और एक दूसरे को वॉच भी करते हैं कि ये पानी का वेस्टेज तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, अपने किसानों को, सबको इस मुहिम में शामिल करना पड़ेगा। तभी वास्तव में जो ये वर्ल्ड वाटर डे की बात करें वो चितार्थ तभी होगी जब हम इस मैसेज को घर घर तक, गांव-गांव तक ले जा सके। मैं एक बार फिर धानुका और आयोजन करने वाली जो एजेंसीज हैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को सम्मान दिया। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। और एक बार फिर मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री M.K. धनुका जी को। आपसे निवेदन है कृपया स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे माननीय अतिथिगण का सम्मान करें। सबसे पहले प्रस्तुत है डॉक्टर कादम्बरी जी को, चीफ एग्जीक्यूटिव PhD RDF। हार्दिक धन्यवाद। स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे डॉक्टर सेन दास जी को, फॉर्मर डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च ICAR। हार्दिक धन्यवाद सर। श्री राजवीर राठी जी को एक स्मृति चिन्ह। हार्दिक धन्यवाद सर। और अब सम्मानित करना चाहेंगे डॉक्टर राजवीर सिंह जी को। श्री धनुका जी से निवेदन है एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए माननीय अतिथिगण के साथ आ जाएं। आप सबसे निवेदन है कृपया सामने की ओर आ जाएं। और इसी के साथ हम वर्ल्ड वाटर डे 2024, विश्व जल दिवस 2024 के आयोजन का समापन करते हैं।
आप सबको आमंत्रित करते हैं हाई टी के लिए. Ladies and gentlemen, with that we close the proceedings of the celebrations of World Water Day 2024, which was being organized by Dhanuka Agritech Limited, and we invite all of you to kindly join us for high tea. And with that, once again, thank you to each one of you. Have a wonderful evening ahead. Safe drive home. Good evening and namaskar.